श्री हरि को करते हैं नमन। सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। 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 सारभरित जीवन। सारभरित जीवन। SUSHILA सुशीला। कुलदेव दर्शन घेरे। कलिमल नाशन बल भक्तिवर्धन। कलिमल नाशन बल भक्तिवर्धन। कुळा रहे गेले कुलदेवस्थान। कुळा रहे गेले कुलदेवस्थान। कुलदेव दर्शन घेरे। कुलदेव दर्शन घेरे। कुलदेव दर्शन घेरे। कुलदेव दर्शन घेरे।
लक्ष्मीनारायण परशुराम लक्ष्मीनारायण परशुराम लक्षदवरी देवकी कृष्ण चरण लक्षदवरी देवकी कृष्ण चरण अक्षय फलाचे लक्ष्मी नरसिंह अक्षय फलाचे लक्ष्मी नरसिंह साक्षात विष्णु महालसा नारायणी अनंत विष्णु महालसा नारायणी कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे महालक्ष्मी कामाक्षी कात्यायनी महालक्ष्मी कामाक्षी कात्यायनी महामाया नवदुर्ग पावनी महामाया नवदुर्ग पावनी भगवती चामुंडेश्वरी जननी भगवती चामुंडेश्वरी जननी शांता दुर्गा विजय दुर्गा आर्या दुर्गा विजय दुर्गा कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे सप्तकोटेश्वर शंभू रामनाथा सप्तकोटेश्वर शंभू रामनाथा दामोदरा मंगेश शिवनाथा दामोदरा मंगेश शिवनाथा महादेव नागेश रवळनाथा बेताळ महादेव नागेश रवळनाथा बेताळ विमलेश्वर बाणेश्वर विमलेश्वर बाणेश्वर श्री हरी प्रीता कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कलिमलनाशन बलभक्तिवर्धन कलिमलनाशन बलभक्तिवर्धन कुळार हे गेले कुलदेवस्थान कुळार हे गेले कुलदेवस्थान कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे I think very picturesque video. I think thank you very much World Konkani Center and C. Nandagopal Shanai for this initiative. Now we have a very most awaited presentation of today's Shefali Vaidyaji.
I request her to take the stage and give the address. नहीं सांग होगी इतने टाइम Shefali Vaidya is an award-winning multilingual writer and media professional with a keen interest in history of Indian textiles and temple architecture, history of Goa, and contemporary politics. She manages these diverse areas of interest with great aplomb. She holds a postgraduate degree in communication studies and postgraduate diplomas in Indology and Spanish. She has over 20 years of work experience in the field of media and film and TV production. She has given several lectures on textile history in India and abroad. Currently, she is the chief curator of the Western Ghats Literature Festival, Coimbatore. Shefali has participated in several literary and cultural conferences and festivals. Her series of research articles on the significance of motifs used in Indian art and the synergy across multiple art forms has been critically acclaimed. Shefali has written columns on temple architecture and textiles in both English and Marathi for leading publications. She has been an expert member of the Committee of Textiles appointed by the Central Ministry of Textiles. Shefali is a best-selling author of 3 books in Marathi. Her coffee table bilingual book on Temple of India is slated for a release in early 2023. Shefali has curated conferences on the history of Indian textiles and read several papers on Hindu temple architecture, textile art, and Hindu traditions of arts and crafts. Shefali has been invited by prestigious national institutions like IGNCA, Delhi, and DIAT Pune to give lectures on textile history. Shefali Vaidya is a fellow of Ananta Leadership Academy and is a recipient of the prestigious Infosys Fellowship from BORI Pune. A keen collector of heritage views, Shefali is a firm believer in giving back to the society, and her career reflects a consciously chosen balance between professional appearances and pro bono work for weavers and other social causes close to her heart like heritage conservation, craft preservation, and Vedic education. Shefali has worked for the welfare of weavers in 5 Indian states during the pandemic period by conducting fundraisers for them online. She also supports a Vedic Gurukul in Varanasi. Shefali Vaidya lives in Pune with a family and 2 rambunctious dogs. Shefali Vaidya for you, audience. Dhanyavad. That was a long introduction. हमारे परम पूज्य गुरु चित्रापुर मठाधीश श्री स्वामी सद्योजात शंकराश्रम जी और काशी मठाधीश श्री स्वामी संयमिन तीर्थ जी, इन दोनों के पावन चरणों को वंदन करके आज मैं यहाँ अपनी बात हिंदी में रखने का साहस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ बैठे हुए आधे लोग से ज़्यादा लोग हिंदी में ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। मेरा विषय है हमारे मंदिर, गोवा के मंदिर और सारस्वत आस्था। परंतु मैं इस विषय पे थोड़ी देर में आऊँगी, मुझे 45 मिनट का समय दिया गया है। मेरे विषय पे आने से पहले मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहती हूँ। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस सभागृह में आज एक ही बार में कितनी भाषाएं हम सब लोग सुन पा रहे हैं। अगर आप इस सभागृह में ऐसे ही घूमेंगे तो आपको लगेगा कि कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई कन्नड़ में बात कर रहा है, कोई कोंकणी में बात कर रहा है, कोई मलयालम में बात कर रहा है, कोई मराठी में बात कर रहा है, और हैं हम सब एक ही। हम सब सारस्वत हैं, हम सब सरस्वती की संतान हैं। एक तरह से ये पूरे भारत का माइक्रोकॉज़म है। पूरे भारत में जिस तरह से हमें इतनी सारी विविधता दिखने को मिलती है, लेकिन उसके बीच में हमें हमेशा ही एक एकता के सूत्र में बांध रखा है, वैसे ही आज इस हॉल में भी मुझे मेरे भाई बहन अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, कम से कम 10 राज्यों से आए हुए हैं, लेकिन हम सब इसी मंच में, इसी सभागार में बैठे हैं क्योंकि हम सब सरस्वती की संतान है। वही सरस्वती, अगर आपने कल जनरल बख्शी जी का लेक्चर अगर सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये वही सरस्वती है जिसके किनारे पर कभी पहला वेद घोष हुआ था। ये वही सरस्वती है जिसके पानी से सींचकर हमारे देश की संस्कृति पनपी है।
ये वही सरस्वती है जो आज प्रकट रूप में हमारे सामने पहले जैसी नहीं है, लेकिन हमारे संस्कृति में, हमारे अस्तित्व में सरस्वती नदी आज भी ऐसे समाई हुई है जैसे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आपको गंगा जी तो दिखती हैं, यमुना जी तो दिखती हैं, सरस्वती दिखती नहीं है, किंतु वो है, वो हमेशा से ही है और हम हैं उसकी संतान। ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है जो हमें कई शताब्दों से जीने की शक्ति प्रदान करते आया है। कितने ही आक्रांता आए, हमारे मंदिर तोड़कर चले गए, हमारे ग्रंथ जलाकर चले गए, नृशंस नरसंहार कर कर चले गए, परंतु हमारी आस्था जीवित रही। क्यों जीवित रही? क्योंकि वो आस्था जीवित रखी आपने, हमने, मैंने, सबने, हमारे पूर्वजों ने बहुत कीमत देकर हमने अपनी आस्था को जीवित रखा। इसीलिए हम आज इस सभागृह में हैं। ये हमारा सांस्कृतिक संचित है और इसी के चलते हम आज 10 राज्यों से आए हुए लोग एक ही सूत्र में बंधकर इस जगह पर विश्व सारस्वत सम्मेलन कर रहे हैं। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, रादर 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये 2 प्रश्न आप में से सबको अपने आप को पूछना चाहिए। वो प्रश्न है, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ से क्या लेके जाना चाहते हैं? Why are you here? What are you going to take away from this meeting? क्या आप इस सम्मेलन को केवल 2 दिन की छुट्टी की तरह देखना चाहते हैं? क्या ये केवल एक धार्मिक पर्यटन है कि आप हरिद्वार आए, आप गंगा जी में नहाए, आपने 2 दिन खाना खाया, अच्छे मंदिर देखे और चले गए? क्या आप इससे कुछ लेना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को देखते हैं एक सूत्र में बंधे हुए? क्या आप अपने आप को कैन यू सी योरसेल्फ टेकिंग समथिंग ट्रिमेंडस फ्रॉम हियर? क्या हम अपने अस्तित्व की खोज में यहाँ आए हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये अस्तित्व की खोज आवश्यक है भी? क्या कोई बता सकता है आप में से? Can anyone answer? Yes, please. Who wants to answer? Quick answer. Why do we need this? अस्तित्व की खोज क्यों आवश्यक है? इसलिए कि हम प्राचीन भारत की बहुत बड़ी धरोहर है और वो लुप्त हो चुकी है, उसे जागृत करना बहुत जरूरी है। उद्दिष्ट जागृत प्राप्त करा भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न मैं केवल आपसे पूछ रही हूँ। मैंने ये प्रश्न खुद से भी पूछा था। तब पूछा था जब गोवा के इतिहास के बारे में पढ़ रही थी, जब पहली बार पढ़ा था कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। जीवन तो वैसे भी अच्छा खासा कट रहा था, अच्छी गृहस्थी है, बच्चे हैं, घर है, पति है, चाहो तो मैं अपना जो गृहस्थ धर्म है वही निभा सकती थी। लेकिन मैं ये क्यों कर रही हूँ? मैं जगह जगह जाके गोवा के इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर सबको बता क्यों रही हूँ, क्यों लेक्चर दे रही हूँ? ये जो सम्मेलन आयोजित किया है, उस सम्मेलन के आयोजकों ने रात दिन मेहनत करके, कष्ट करके ये पूरा जो सम्मेलन है वो क्यों आयोजित किया है? चाहो तो वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकते थे, पर वो इतनी एफर्ट्स क्यों ले रहे हैं, वो इतने कष्ट क्यों ले रहे हैं, वो आप सबों को अपने अपने घर से यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, कैसे उनकी संस्कृति नष्ट करने का प्रयास बार बार हुआ, हर बार हुआ? हम सभी अपने आप को सारस्वत कहते हैं। सरल है कि हम सभी के पूर्वज, आपके, मेरे, सभी के पूर्वज कभी तो सरस्वती नदी के तट पर रहा करते थे। फिर जब सरस्वती जी का प्रवाह कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से धीरे धीरे लुप्त होने लगा, तब हम बिखर गए। कुछ कश्मीर की तरफ गए, कुछ गंगा जमुना के दोआब में जाकर बसे, कुछ बंगाल बिहार तक चले गए, कुछ गुजरात राजस्थान में बैठे। आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग वहाँ से आए हुए। कुछ परशुराम क्षेत्र में बसे, जिन्हें हम आज दाक्षिणात्य सारस्वत कहते हैं। जो सारस्वत गोवा में बसे थे, अपरांत में बसे थे, परशुराम क्षेत्र में बसे थे, उनके साथ तो घोर अन्याय हुआ। पहले इस्लामी शासकों ने उन पर जुल्म ढाए,
फिर 1510 में जब पुर्तगालियों ने गोवा जीत लिया, तब क्रिश्चियनिटी के नाम पर उन पर इतना अत्याचार हुआ कि आज भी जब मैं उस कालखंड के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरी आंख नम हो जाती है। ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये हर दाक्षिणात्य सारस्वत की कहानी है। गोवा में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करने पर विवश किया गया। हजारों की संख्या में हमारे मंदिर तोड़े गए, हजारों की संख्या में। केवल 2 वर्ष में गोवा में 600 से ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े गए। इसके बारे में कोई बोलता नहीं है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सच है। मूर्तियां ध्वस्त की गई। जो अत्याचार इस्लामी शासकों ने हमारे उत्तर भारत के भाई बहनों पर किया, उतना ही क्रूर और उससे भी घिनौना अत्याचार पुर्तगाल के ईसाई शासकों ने गोवा की हिंदू जनता पे किया। गोवा के हिंदू मूल निवासियों को जबरन ईसाई बनाने के लिए इंक्विजिशन के नाम पे उनको बंदी बनाया गया, उनका छल किया गया और कईयों को तो जिंदा जला दिया गया। हिंदू धर्म त्यागने के लिए कई प्रलोभन भी दिए जाते थे, पैसे तो दिए जाते थे, जमीन दी जाती थी, उनको अधिकार दिए जाते थे। फिर भी गोवा के बहुतांश हिंदू मूल निवासियों ने अपना धर्म नहीं त्यागा। उन्होंने अपनी भूमि त्याग दी, उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, अपनी संपत्ति त्याग दी, अपने जो रिलेटिव्स थे उनको छोड़ दिया, परंतु अपनी धर्म को नहीं त्यागा, अपनी भाषा को नहीं त्यागा, अपनी संस्कृति को नहीं त्यागा। वो जहाँ गए वहाँ उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी सारस्वत होने का जो उनका अस्तित्व है, उसको जीवित रखा। Human face to this tragedy, to this mass genocide and mass migration, पर उसके बारे में आपको कोई बताता नहीं है। जब गोवा के मूल निवासी हिंदुओं को ये बोला गया था कि आप अपने ही बच्चे को अपने ही धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, आप अपने बेटे को रामायण नहीं सुना सकते, आप अपनी बेटी को महाभारत की कहानी नहीं बता सकते, आप अपने घर में गीता की पुस्तक नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो आपको बंदी बना दिया जाएगा, आपका छल किया जाएगा। अपने माता पिता को उनकी मृत्यु पर आप दाह संस्कार नहीं कर सकते, आपको उनके शरीर को एक राफ्ट में डालकर नदी में छोड़ना होगा, क्योंकि सरकार तय करती है कि हिंदू संस्कारों की जाते हुए कोई अग्नि संस्कार पोर्तुगीज गोवा में नहीं करेगा। आप जनेऊ नहीं पहन सकते, शिखा रखने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप अपनी बेटी का विवाह हिंदू विवाह पद्धति से नहीं कर सकते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज यहाँ बैठकर कि उन लोगों पर क्या बीती होगी? नहीं कर सकते। अब आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे भी हाँ ये पुरानी बात है, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, ये तो 400 साल पहले हो गया, तो छोड़ दीजिए, आगे की सोचते हैं। लेकिन क्या ये होना बंद हो गया है? अगर इस सभागृह में कोई कश्मीरी सारस्वत है तो वो पीड़ा, मेरी बात समझ सकता है कि मैं किस पीड़ा की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं 400 साल पहले की पीड़ा की बात कर रही हूँ। ये पीड़ा उन्होंने 30 साल पहले भुगती है। जो मेरे पुरखों को बोला गया था कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप गांव छोड़ दो, या तो आपको मार दिया जाएगा, वही चॉइस कश्मीरी हिंदुओं को भी दिया गया था कि रालिव गालिव या चालिव, या तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा, या तो आपको मार दिया जाएगा। जो सारस्वत पुर्तगालीज गोवा छोड़कर, सारस्वत और बाकी के भी हिंदू, सब हिंदू, रादर मुझे हिंदू कहना चाहिए, जो गोवा छोड़कर अन्य जगहों पर बस गए, वहाँ उन्होंने कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। वहाँ रात दिन प्रयास करके उन्होंने अपनी एक अलग हस्ती बनाई। वो जहाँ गए वहाँ उन्होंने केवल जोड़ा, कभी तोड़ा नहीं। पर अपने पुरखों की ज़मीन से भी उन्होंने नाता नहीं तोड़ा। आपने अभी जो फिल्म देखी, उस फिल्म में जो बहुत सुंदर मंदिर आपने देखे, वो सभी दाक्षिणात्य सारस्वतों की ग्राम देवता, कुल देवता के मंदिर हैं। जो मंदिर पुर्तगीजों ने तोड़ दिए थे, लेकिन वो मूर्तियाँ वहाँ के लोगों ने जान पर खेलकर दूसरी जगह पे ले गए थे वो, और फिर वैसे उनके मंदिर बना दिए गए, जो आप मेरे प्रेजेंटेशन में देखेंगे।
गोवा के ये जो मंदिर हैं, जो इतना सुंदर वीडियो आपने देखा, वो सदैव ही दाक्षिणात्य सारस्वत की आस्था का प्रतीक बने रहे। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि इन मंदिरों का, जिन मठों के आशीर्वाद से हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन 4 सारस्वत मठों का हमारे समाज जीवन में क्या स्थान है, ये हमारे पूर्वजों के त्याग का श्रद्धापूर्वक किया हुआ स्मरण है। हम आज गंगा किनारे हैं, ये उनको दिया हुआ एक तर्पण है। जब तक आपकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक नहीं जाती, तब तक आप एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकते। घास तो सहजता से आप एक झटके में उसको उठा लो जमीन से, वो आ जाएगी बाहर, लेकिन जो बड़ा वृक्ष है, जिसकी जड़ें बहुत गड़ी हुई हैं जमीन में, उसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। अगर ऊपर का पेड़ आपने काट भी लिया, तो जब तक उसकी जड़ें जीवित हैं तो पेड़ भी फिर से जीवित उठता है। हमारे साथ भी यही हुआ, हमारे संस्कृति के साथ भी यही हुआ। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये निश्चय आपको करना है कि आपको सबको छाया देने वाला विशाल वटवृक्ष बनना है, या बकरी भी जिसे अपने दांतों से उखाड़ सकती है ऐसी घास। बस इसीलिए आज हम हैं। हमारी संस्कृति, हमारा आत्मसम्मान, हमारी भाषा, हमारा देश, हमारे मंदिर, हमारा धर्म, इसकी रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपना पड़ोसी देश जो खाने को रोटी के लिए तरस रहा है। जरा सोचिए, इसलिए हम आज आए हैं। ओके, 15 minutes are over, so next half an hour I am going to my presentation. धन्यवाद। Can you play? Yeah. ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है टेम्पल्स ऑफ गोवा। जैसे मैंने बताया कि जो दाक्षिणात्य सारस्वत हैं, जो आज कई देशों में, कई राज्यों में बिखरे हुए हैं, वो कभी गोवा से आते थे और उनके ग्राम देवता, उनके कुल देवता के मंदिर गोवा में थे, छोटे छोटे गांवों में थे। लेकिन जब पुर्तगालियों ने वहाँ पे आक्रमण किया और उनको ज़बरदस्ती से ईसाई धर्म के लिए, धर्मांतरण के लिए प्रवृत्त किया गया, तब बहुत से जो गोवा के हिंदू हैं वो गोवा छोड़कर बहुत से जो गोवा के हिंदू हैं वो गोवा छोड़कर कोई कर्नाटक चले गए, कोई केरल तक चले गए, कोई महाराष्ट्र चले गए। लेकिन जब वो गए और कुछ गोवा में रहे, गोवा जो आज का गोवा है वो गोवा तब का गोवा नहीं था। जब पोर्चुगीज़ टेरिटरी, जब पोर्चुगीज़ आए थे तो बहुत छोटा था। जब उन्होंने मंदिर तोड़े थे तो वहाँ से मंदिर दूसरी जगह पे स्थलांतरित किए गए। उन मंदिरों की कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज। ये जो मंदिर है, ये गोवा का एक टिपिकल मंदिर आर्किटेक्चरल स्टाइल है। आप में से कितने लोग गोवा गए हैं? हाथ ऊपर करिएगा। आपने ये मंदिर तो देखा ही होगा, ये मंदिर बहुत फेमस है, ये शांता दुर्गा जी का मंदिर है, कवड़े का। लेकिन इस मंदिर की जो स्टाइल है, आप कह सकते हैं कि ये गोवा का एक टिपिकल मंदिर है। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करूंगी, क्योंकि जब तक हमको इतिहास समझ में नहीं आता तब तक हमको हमारा वर्तमान नहीं समझ में आएगा। सह्याद्री खंड स्कंद पुराण के उसमें लिखा है कि परशुराम जी ने 7 बाण अरेबियन समुद्र में छोड़े थे और वो समुद्र को पीछे हटा दिया गया था, और वो जो ज़मीन जो उभर आई थी उसको सप्त कोंकण बोलते हैं। और जियोलॉजिकल एविडेंस भी ये प्रूव करता है कि एक ऐसा सीस्मिक इवेंट हुआ था जहाँ से ज़मीन उभरी थी और समुद्र पीछे हट गया था, और जो ज़मीन उभरी वो सप्त कोंकण है। ये जो जिसको हम आज भी परशुराम क्षेत्र बोलते हैं, जो कोची से लेके महाराष्ट्र के कोंकण किनारे तक, उसको हम परशुराम क्षेत्र बोलते हैं। उन सप्त कोंकण में से गोवा राष्ट्र गोवा था। एग्जैक्ट प्लेस जो बोलते हैं कि जहाँ परशुराम जी का बाण जहाँ समुद्र में गिरा था, वो आज भी उस जगह का नाम बाणावली है और वो गोवा के सासष्टी तालुका में है।
इतिहास बदल जाता है, राज्यकर्ता बदल जाते हैं, लेकिन भूगोल कभी नहीं बदलता, जगहों के नाम नहीं बदलते और नाम से आपको अपने इतिहास का पता चलता है। बाणावली में आज हिंदू बहुत कम है, लेकिन उसका नाम आज भी बाणावली ही है, क्योंकि वहाँ पे परशुराम जी का बाण गिरा था। वहाँ एक मंदिर था कात्यायनी बाणेश्वर, जो तोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ की मूर्ति अवेरसा कर्नाटक में ले गए थे और वहाँ पे उसका मंदिर आज भी है। नेक्स्ट प्लीज। ऐसा कहते हैं कि जब परशुराम जी ने ये ज़मीन बनाई तब उन्होंने एक यज्ञ किया था हरमल में, और उन्होंने ये पूरी की पूरी ज़मीन थी वो कश्यप मुनि को दान में दे दी, और कश्यप मुनि ने 96 सारस्वत फैमिलीज़ को उस यज्ञ का पौरोहित्य करने के लिए बुलाया था। और जब ये यज्ञ पूर्ण हुआ तब वो 30 फैमिलीज जो हैं वो तीसवाड़ी नाम की जगह में स्थित हो गए, इसीलिए उसको तीसवाड़ी बोलते हैं। जैसा मैंने कहा, इतिहास बदल जाता है, भूगोल नहीं बदलता है। और बाकी के जो 66 फैमिलीज थे जो बचे हुए, वो सहाषष्ठी मतलब 66 नाम के एरिया में, कोस्टल एरिया में बस गए थे, एंड दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ दाक्षिणात्य सारस्वत्स ऑफ टुडे। Goa is known historically as Go Rashtra, Go Manchala, Aparanta and Gomanta। इसका साफ अर्थ ये है कि वहाँ पे कभी बहुत गोधन हुआ करता था, और वो भी आज भी इतना समृद्ध और इतना सुंदर वो कोस्टलाइन है कि जाहिर है वहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा गोधन हुआ करता था। नेक्स्ट प्लीज़। ये गोवा की पोर्चुगीज आने से पहले की टाइमलाइन है कि 3rd-4th सेंचुरी से। याद रखिएगा कि आज आप जो मैप में गोवा देखते हैं उस गोवा की मैं नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जो बाउंड्रीज हैं वो कभी बड़ी हैं कभी कम हुई हैं, लेकिन ये रफ उसका टाइमलाइन है। पहले भोज, फिर मौर्य, फिर चालुक्य, फिर शिलाहार, फिर कदम्ब। और कदम्ब जो थे उनके काल में गोवा का बहुत विकास हुआ, क्योंकि कदम्बों की जो राजधानी थी वो गोवा में थी, उसका नाम था चंद्रपुर, जिसको आज चांदर बोलते हैं। वहाँ अभी भी आज एक बहुत बड़े मंदिर के अवशेष आपको आज भी मिलेंगे। उसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस्लामिक रूल आया गोवा में, तब भी कई मंदिर ध्वस्त किए गए, लेकिन फिर जब विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ तो गोवा भी उसके अंदर आ गया और कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया। फिर 15th सेंचुरी में बहमनी इस्लामी रूल वहाँ पे हो गया, और फिर उसके बाद 1510 में पुर्तगीज़ आए। फिर 17वीं सदी में मराठाओं ने कुछ पार्ट्स लिए गोवा के। 17वीं सदी में आदिल शाह ने भी कुछ पार्ट, जो आज का गोवा हम देखते हैं, वो उनके अंदर था। नेक्स्ट प्लीज। तो आज जब हम गोवा जाते हैं और गोवा की मंदिर देखते हैं तो हमको दिखता है कि वहाँ के ज़्यादातर मंदिर 17वीं सदी में और 18वीं सदी में बनाए गए हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि पुर्तगीज़ों के आने से पहले गोवा में कभी मंदिर थे ही नहीं? ऐसे मंदिर गोवा में आज भी हैं। जो हमारी प्रगति है, जो हमारे मंदिर स्थापत्य की प्रगति है, उसको अगर आप भारत भर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे पहले तो हमने केव मंदिर मतलब गुफा मंदिर बनाए थे, और उसके बाद फिर मंदिरों की प्रगति होकर बड़े बड़े गोपुर और बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे। वैसे ही गुफा मंदिर गोवा में भी हैं, आज भी हैं। जहाँ लेटराइट स्टोन वहाँ हुआ करता था, उसके जो क्या कहते हैं उसको, पर्वत थे, उनमें से गुफाएं खोद कर उन्होंने मंदिर बनाए थे। ये मंदिर 4वीं सदी से 12वीं सदी तक के आपको गोवा में दिखते हैं। कांसुआ और नेत्रावली में सिर्फ एक गर्भगृह के मंदिर दिखते हैं, और अरावले, खांडेपार और रिवना में मल्टी सेल्ड केव्स मतलब एक ही गुफा समूह में अलग अलग मंदिर वाले केव्स आपको दिखते हैं। अरावले में एक ही गुफा में 5 शिवलिंग हैं पंचलिंग वर्शिप के लिए। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो 5 शिवलिंग हैं जो आपको इस स्लाइड में दिखेंगे, उनका सबका आकार अलग अलग है, और यहीं पे एक शिलालेख भी है जिससे साफ ये प्रतीत होता है कि उस समय में भी गोवा में शिव पूजा थी। नेक्स्ट प्लीज।
अब मैं आपको दिखाऊंगी जो कल क्विज में भी दिखाया गया था, वो मंदिर जो एकमात्र मंदिर है जो 11वीं 12वीं शती से आज भी गोवा में उसी अवस्था में इंटैक्ट है। ये है शिवजी का मंदिर जो कदम्ब राजवंश ने बनाया था। ये ब्लैक बेसल्ट स्टोन में बनाया था और ये कर्नाट द्रविड़ और हेमाडपंथी दोनों स्टाइल्स का मिक्सचर है। यादवा एरा आर्किटेक्चर with elements of Chalukyan architecture, and it is the only pre-Portuguese temple to survive intact due to its remote location in a deep forest. इस मंदिर में एक गर्भगृह है, एक अंतराल है, एक नंदी मंडप है जिसके 10 पिलर्स हैं और एक मुखमंडप है। इसका शिखर जो है वो 2 टियर्ड है और वेसर स्टाइल का है और मूर्तियां यहाँ पे बहुत देवकोष्ठ में छोटी छोटी सी हैं। नेक्स्ट प्लीज, ये उस मंदिर का क्लोज शॉट है। ये अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में इस शैली के आपको मंदिर दिखेंगे, महाराष्ट्र में आपको इस शैली के मंदिर दिखेंगे, लेकिन गोवा में आपको इस शैली का ये एकमात्र मंदिर दिखेगा। क्यों दिखेगा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही मंदिर उस शैली का था, बहुत और भी होंगे लेकिन वो तोड़ दिए गए। ये एक और कदम्बकालीन मंदिर है गोवा में, कुरुडी में है। ये लैटराइट स्टोन में बनाया गया है और इसका जो मंडप के जो पिलर्स हैं वो बेसल्ट में बनाए गए हैं और इसमें सिर्फ एक गर्भगृह है और आगे एक मुखमंडप है। ये मंदिर यहाँ नहीं था जहाँ आपको दिख रहा है, एक दूसरी जगह पे था। जब वहाँ पे डैम बना दिया तो इस मंदिर को पूरा का पूरा रिलोकेट किया और पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया। नेक्स्ट प्लीज, ये जो मंदिर है, नेक्स्ट प्लीज, ये जो मंदिर है ये आपने अभी वीडियो में भी देखा, ये सप्तकोटेश्वर का मंदिर है, ओपा का। सप्तकोटेश्वर के गोवा में कई मंदिर थे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था सप्तकोटेश्वर का जो दीवार में था, जो 2 बार तोड़ा गया और दूसरी बार उसका छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्निर्माण किया गया, क्योंकि सप्तकोटेश्वर कदम्ब राजवंश के कुल देवता थे। वो कदम्ब राजे अपने आप को सप्तकोटेश्वर के दास बोलते थे। ये जो मंदिर है ये खंडेपा रिवर के किनारे पे बनाया गया है, लैटराइट स्टोन से बनाया गया है। इसका शिखर भी लैटराइट स्टोन से बनाया गया है और ये पहले तो कदम्बाओं ने बनाया था, फिर उसको विजयनगर साम्राज्य के काल में उसका जीर्णोद्धार किया गया और ये जैसा मैंने बताया कदम्ब राजवंश की ये फैमिली डीटी है। नेक्स्ट प्लीज, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर आज का सप्तकोटेश्वर मंदिर है जो नार्वे में है, जो मैंने बोला कि 2 बार तोड़ के 2 बार इसका पुनर्निर्माण किया गया था। पहली बार इस्लामी आक्रांताओं ने इसको तोड़ा था और फिर विजयनगर के एक माधव मंत्री नाम के सरदार थे, उन्होंने उसी जगह पे उसका पुनर्निर्माण किया था। लेकिन जब पुर्तगीज गोवा में आए तब उन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया दीवार में और वहाँ पे एक चर्च बना दिया और यहाँ का शिवलिंग जो है उसको जानबूझ के एक कुएं के आगे उसको बिठा दिया, शिवलिंग को, जिसकी लोग पूजा करते थे, कि जिन लोगों को उन्होंने ईसाई बना दिया जबरदस्ती, वो उस मंदिर पे उस शिवलिंग पे पांव रख के वो कुएं का पानी निकाले, क्योंकि उससे उनको जो आस्था थी उनकी इस ईश्वर के प्रति, उस आस्था को उनको डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन जब शिवाजी महाराज जब गोवा आए तब उन्होंने ये शिवलिंग देखा जो तब तक किसी और एक हिंदू व्यक्ति ने उसको उठा के नार्वे में एक छोटे से झोपड़ी में रखा था। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ये मंदिर बना दिया और अभी गोवा सरकार ने, अभी ये जो फोटो है ये पुरानी फोटो है, अभी गोवा सरकार ने इसका फिर से जीर्णोद्धार किया है और उसको जैसे था वैसे बना दिया है, बहुत सुंदर बना दिया है। आप कभी गोवा गए तो इस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये मंदिर गोवा की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब मैं आती हूँ टेम्पल डिस्ट्रक्शन पे। जैसे मैंने बताया कि 16वीं शताब्दी में ही 900 हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए थे। 1540 की एक एडिक्ट थी पुर्तगाल गवर्नमेंट की, उस एडिक्ट ने गोवा सरकार को, मतलब तत्कालीन पुर्तगीज सरकार को, ये सारे अधिकार दिए थे कि जब चाहे वो कोई भी हिंदू मंदिर तोड़ के उसकी ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ पे चर्च बना सकते हैं। हिंदुओं को अधिकार नहीं था कि वो अपने तोड़े हुए मंदिर का पुनर्निर्माण करे, अपने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करे या मंदिरों का बड़ा बनाए। 1600 तक
जो हिंदू कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे वो सब या तो गोवा छोड़ के चले गए थे या तो उनको वहाँ से हकाल दिया गया था। और जब वो चले गए तब उन्होंने अपने साथ अपने भगवानों की, अपने कुल देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियाँ वो अपने साथ लेके गए थे। और वो जहाँ भी गए उन्होंने अपने पूरे जो देवी देवता थे जिनकी वो पूजा करते थे उनके मंदिर बना दिए। अगर आप भी आज कोची जाएंगे तो कोची का जो मेन सारस्वत मंदिर है, वेंकटरमण मंदिर, उसी के पास जो सारे बाकी के मंदिर, जो जिन जिन भगवानों के मंदिर आपने उस वीडियो में देखे थे उनके छोटे छोटे मंदिर आपको दिखेंगे। आप कर्नाटक में बसरूर नाम की जगह पे जाएंगे तो आपको उस एक ही गांव में कई सारे ऐसे मंदिर दिखेंगे जिनके मूल मंदिर गोवा में हैं, लेकिन जब लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी छोटी मूर्तियाँ लेके वहाँ पे मंदिर स्थापित किए गए। Mahalsa Mandir of Kumta, temples of Basrur and the Saraswat temples of Kerala belong to this period. अब हम आते हैं कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन हुआ कैसे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट प्लीज। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो उस जगह का है जहां पे कभी शांता दुर्गा का मंदिर हुआ करता था ओरिजिनल। अब वो मंदिर कवड़े में है, लेकिन ये जो पत्थर आप देख रहे हैं वो पत्थर उस पुराने मंदिर के अवशेष हैं, बस आज वो पत्थर ही वहाँ पे हैं। सासष्टी का एक राचौल में एक किला था, उसमें एक कैप्टन दिएगो फर्नांडिस था, वो बहुत क्या कहते हैं उसको, फैनेटिक था। उसने एक ही साल में सासष्टी में सालसेट डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए। और ऐसे पत्र आज भी मिलते हैं कि उन्होंने एक फादर थे लुइस गोम्स करके, उनको वहाँ का महालसा मंदिर जो मेरी कुलदेवता है, जो आप में से कईयों की भी होगी, उसका बहुत सुंदर मंदिर था, उस मंदिर का सर्वे करने के लिए उसको भेजा था। तो उसने जब वो मंदिर देखा तो उसको वो मंदिर का जो काठ का वर्क है, जो काष्ठशिल्प है, वो इतना सुंदर लगा कि उसने दिएगो को बोला कि इसको मंदिर को मत तोड़ो, आप इसी को चर्च बना दो, आप बस मूर्ति तोड़ो। मतलब कितने महान थे वो लोग। लेकिन फिर भी दिएगो रोड्रिगेज ने इस मंदिर को तोड़ा 7 मार्च को, और जो मूर्ति है, जो मेन मूर्ति, बड़ी मूर्ति थी, कहते हैं उनके रिपोर्ट्स हैं कि वो तोड़ी गई, लेकिन जो दूसरी मूर्ति थी महालसा की वो मारदौल में लेके गए और वहाँ पे वो कई सालों तक एक छोटे से टेम्पररी स्ट्रक्चर में थी, जहाँ पे आज महालसा का बहुत बड़ा मंदिर है। और जो ओरिजिनल साइट था महालसा मंदिर का वेरणा में, वहाँ पे भी अभी एक नया मंदिर बना हुआ है। मेरी जो एंसेस्टर्स थे, मेरे जो पूर्वज थे, वो जो 2 गांव थे वेरणा और नागोवा, वो गोवा के सबसे बड़ा क्लैन था, और वो जो महालसा का मंदिर था वो सबसे बड़ा था। तो जब ये सब हो गया था तो मेरे पूर्वज वहाँ से निकल के फिर वो कई सालों तक ठिकाना ढूंढते रहे, और फिर कुंकली नाम का मेरा जो करंट एंसेस्ट्रल विलेज है वहाँ जाके वो सेटल हो गए। ये जो नेक्स्ट प्लीज, ये जो फोटो आप दिख रहे हैं ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो शांता दुर्गा का मूल मंदिर जहाँ था वहाँ पे किया है। और वहाँ आपको पीछे जो बड़ा बरगद का पेड़ दिख रहा है वो शायद 400-450 साल पुराना है। मतलब जब वो मंदिर था तब भी ये बरगद वहाँ रहा होगा, और आज भी ये बरगद है। और आज अगर आप शाम के समय वहाँ जाते हो तो आपको वो आपके पास अगर वो कल्पना शक्ति है तो आपके इमेजिनेशन में आपको वो चीखें आज भी सुनाई देगी जो वहाँ के लोगों ने कभी उच्चारण किया था उसका, जब उनका मंदिर तोड़ा गया था। ये जो मंदिर है, नेक्स्ट प्लीज, ये जो मंदिर है ये वेरणा में जहाँ महालसा का ओरिजिनल मंदिर था वहाँ पे ये अब नया भव्य मंदिर बना दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। जब ये मंदिर मूल जगह पे तोड़े गए थे तब वहाँ के हिंदुओं ने क्या किया, ऐसा सवाल मुझे कई लोग पूछते हैं जब मैं इस विषय पे भाषण देने जाती हूँ। तो उसका उत्तर बहुत सरल है। हिंदुओं ने जितना वो मूर्तियों को बचा सके उतना उन्होंने मूर्तियों को बचाया, और उनको वो हाथ से लेके वो मांडवी और जुआरी नदियाँ क्रॉस करके अंतरुज महल में गए, वो तब हिंदू राजाओं के अंदर था। और वहाँ पे अलग अलग गाँव में उन्होंने ये मूर्तियाँ रखी, छोटे से एक हट में रखी कई सालों तक।
17वीं शती में जब मराठा पावरफुल हो गए तभी वहाँ पे पूरी तरह से मंदिर बन सके. Almost for 100 years, the temples were housed in very small huts. Huge temples that you see now today are only because the Marathas came into power and there was political power, and a lot of Saraswats became very powerful in the Peshwa kingdom, in the court of Scindias, in the court of the Peshwas, and they had the money and the political power to rebuild the temples. Naroram Mantri during the Peshwa rule funded the rebuilding of the Shantadurga temple at Kaule, and the villages of Mangeshi and Mardor were also donated by the Peshwas for the building and maintenance of Mangeshi and Mahalsa Narayani temples. अब ये दिखते हैं आपको मंदिर. नेक्स्ट प्लीज. ये जैसे मैंने बताया, ये गोवा के मंदिरों की टिपिकल स्टाइल है. ये आपको और कहीं नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो स्थापत्य है वो परिस्थितिवश आया हुआ है. जो हमारे मंदिरों में, मंदिरों के जो हमारे मंदिर स्थापत्य में जो मंदिरों के भाग बोले गए हैं कि मंदिर को एक मुखमंडप होना चाहिए, एक सभा मंडप होना चाहिए, एक गर्भगृह होना चाहिए, एक पुष्करिणी होनी चाहिए, एक प्रदक्षिणा पथ होनी चाहिए, वो सब तो उन्होंने कायम रखा. लेकिन उनके कारागिर, तब तक हिंदू कारागिर जो थे वो गोवा छोड़कर चले गए थे, और जो बचे हुए थे उनको तब तक चर्चेस वो बिल्ड कर रहे थे. तो उनकी जो सेंसिबिलिटी है वो थोड़ी सी बदल गई थी. इसलिए आपको गोवा के मंदिर जो हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बाहर से भी आए हुए आपको दिखते हैं, लेकिन वो पोर्चुगीज स्टाइल के मंदिर नहीं हैं, वो गोवन मंदिर हैं. मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब बोलते हैं कि ये इंडो पोर्चुगीज स्टाइल है. ये इंडो पोर्चुगीज स्टाइल नहीं है, ये गोवा की स्टाइल है. ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, नेक्स्ट प्लीज. ये मंगेशी का मंदिर है. ये आप में से बहुतों ने देखा होगा क्योंकि जो भी गोवा जाता है वो गोवा के जो टूरिज्म वाले लोग हैं वो पहले उनको ओल्ड गोवा के चर्चेस दिखाने लेके जाते हैं, और उसके बाद उनको हाँ एक मंदिर तो दिखाना ही चाहिए, इसलिए उनको मंगेशी में लेके जाते हैं. इसलिए ये मंगेश मंदिर काफ़ी लोगों ने देखा है, लेकिन बाकी के मंदिर जो गोवा के हैं बहुत सुंदर हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं. नेक्स्ट प्लीज़. ये महालसा नारायणी का मंदिर है. ये जो रूफ आप देख रहे हैं वो कॉपर का है, मतलब तांबे का है. नेक्स्ट प्लीज. ये वेलिंग का मंदिर है लक्ष्मी नरसिंह का, और यहाँ पे भी आपको रूफ में वो जो तांबे के टाइल्स हैं वो दिखेंगे. नेक्स्ट प्लीज. तो जैसा मैंने बोला कि गोवा के टेम्पल्स का स्थापत्य जो है वो यूनिक है. वो क्यों यूनिक है उसके मैं कुछ आपको उसकी फीचर्स बताती हूँ. एक तो उनमें दीपस्तंभ होता है जो मराठा स्टाइल का एडिशन है, और ये दीपस्तंभ 5 माला, 7 माला, 9 माला का भी हो सकता है. और एक तुलसी वृंदावन होता है हमेशा वैष्णव हिंदू टेम्पल में गोवा के. गोवा के मंदिरों में द्रविड़ और नागर स्टाइल का शिखर नहीं होता, बट वहाँ पे एक ऑक्टागोनल डोम होता है, और ऊपर जो रूफ है वो स्लोपिंग होता है क्योंकि गोवा में बहुत बारिश ज़्यादा होती है, और उसके ऊपर या तो मैंगलोर टाइल्स होते हैं या फिर कॉपर प्लेट्स होते हैं. और मंदिर के एंट्रेंस में एक नौबत खाना होता है जहाँ मंदिर के संगीत बजाने वाले जो कलाकार हैं वो वहाँ से संगीत बजाया करते थे. और मंदिर के पास हमेशा से ही एक पुष्करिणी होती है जो हमारा सनातन संकेत है. आप कोई भी मंदिर देखेंगे भारत में किसी भी जगह पे, या तो वो नदी के तट पे होंगे, और जहाँ नदी के तट के पास नहीं होंगे वहाँ उस मंदिर के पास या तो कुआं होगा या तो एक पुष्करिणी होगी, जो गोवा में भी है हर मंदिर में. नेक्स्ट प्लीज. अब टू कंटिन्यू, जैसा मैंने बोला कि मंदिरों के जो मुख्य भाग होते हैं, एक मुखमंडप, एक सभा मंडप, एक अंतराल और एक गर्भगृह, वो गोवा के मंदिरों में भी आपको दिखेंगे. गोवा के सारे मंदिर सांधार हैं, इसका मतलब उसका प्रदक्षिणा पथ जो है वो गर्भगृह के बाहर लेकिन मंदिर के अंदर है. और सारे मंदिरों में सब्सिडियरी टेम्पल्स, पालवी देवता का भी कॉन्सेप्ट है, जो मेन मंदिर एक है और उसके बाजू में छोटे छोटे मंदिर हैं जो आपको हर जगह पे दिखाई देंगे. और जो देवता हैं, जो मातृ देवता, जो मदर अर्थ का स्वरूप है, सांतेरी, मारजाई, माउली, केळबाई, रेणुका, भूमिका, उनकी मंदिर भी मुख्य मंदिर के बाजू में बड़े स्वरूप में होते हैं. और
बाकी के भी जो देवता हैं, जो लोकल देवता हैं, जैसे राखणो, वेताल, दीज आर ऑल गार्डियन डेटीज, रवलनाथ, क्षेत्रपाल, उनके भी अपने मंदिर होते हैं। और मंदिरों में, क्योंकि गोवा में लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती थी, लकड़ी का जो काम होता है, जो रूफ में आपको दिखेगा, जो आपको पिलर्स में दिखेगा, वो बहुत सुंदर होता है। वो हर मंदिर में आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये दीपस्तंभ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। गोवा के दीपस्तंभ और महाराष्ट्र के मंदिरों के दीपस्तंभों में भी फर्क होता है, लेकिन गोवा के दीपस्तंभ ऐसे होते हैं और हर मंदिर का दीपस्तंभ अलग होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये वेलिंग की पुष्करिणी है, सबसे सुंदर पुष्करिणी गोवा की। अगर आप गए नहीं कहीं तो ज़रूर जाके देखिएगा। वो मंदिर भी बहुत सुंदर है और उसकी पुष्करिणी तो बहुत 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 सुंदर है। नेक्स्ट प्लीज। अंत में, समय की सीमा है, अंत में मैं एक कोट कर रही हूँ कि टेम्पल्स इन गोवा आर नॉट मियरली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे आर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी एक्टिविटी, परस्यूट ऑफ आर्ट्स एंड परपेचुएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। ये कमला मणकेकर जी का है, ये रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये रेफरेंसेस हैं, अगर किसी को चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। अंत में मेरे पास 5 मिनट हैं, किसी को कोई प्रश्न है? Any questions? आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया और हमें अवगत कराया हमारा गोवा का जो एंशंट कल्चर जो था। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना रिसर्च किया है कि मुगल्स और क्रिश्चियन मिशनरी आने से पहले हमारा कल्चर गोवा के अंदर क्या लेवल में था, क्योंकि हमें रूट्स में जाना है तो रूट का पहचान भी होना बहुत जरूरी है, ताकि वृक्ष जब बड़ा होगा तो है सारा सारस्वत लोग जो है एम्बेसडर बन के हमारा सारस्वत समाज को बना सकते हैं। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो बहुत। ये एक्चुअली कम समय में नहीं बात कर सकती, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है जिसका मैंने बहुत ब्रीफली यहाँ पे उल्लेख किया है कि जो गोवा की संस्कृति थी वो कोई अलग संस्कृति नहीं थी, वो भारत की संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग था। और इसीलिए जब प्री पोर्चुगीज गोवा की हम बात कर सकते हैं, अब हम बोलते हैं कि गोवा हैज़ ए यूनिक कल्चर ऑफ फन एंड फेनी एंड बीचेस और वट एवर। बीचेस तो तब भी थे, बीचेस तो उत्तर कन्नड़ा में भी हैं, दक्षिण कन्नड़ा में भी हैं, लेकिन क्या कभी इसी को बोलते हैं कि दैट इज़ द लैंड ऑफ फन एंड फेनी एंड बीचेस? नहीं बोलते ना। तो ये जो इमेज है वो पोर्चुगीज़ों के आने के बाद आई है। पहले गोवा जो था वो भारत से अभिन्न नहीं था, अब भी नहीं है, तब भी नहीं था, लेकिन गोवा की संस्कृति भारतीय संस्कृति के मूल प्रवाह से ही जुड़ी हुई थी। आप गंगा का पानी चाहे रुद्रप्रयाग में देखें, चाहे देवप्रयाग में देखें, चाहे हरिद्वार में देखें, चाहे काशी में देखें, चाहे प्रयागराज में देखें, चाहे कलकत्ता में देखें, वो पानी अलग होता है क्या? पानी तो एक ही होता है ना, गंगा तो एक ही है। पानी अलग भी होता है क्योंकि पानी बहता रहता है, पर वो प्रवाह तो एक ही होता है। वैसे ही गोवा की संस्कृति भारत के संस्कृति के मूल प्रवाह से कभी भी अलग नहीं थी। जी नमस्कार शेफाली जी, हम राजस्थान से हैं और हमारा इतिहास कहते हैं कि जैसलमेर से जब सरस जी महाराज राजस्थान की तरफ गए और करीबन 400 गांवों को उन्होंने बसाया लुद्रवा से, जैसलमेर के लुद्रवा से, तो लुद्रवा का और गोवा का एक कनेक्शन है। अगर इतिहासकारों के माध्यम से आपको पता है तो हमें अवगत कराइए हम राजस्थानियों को कि हम गोवा से भी हमारा कनेक्शन है, कि जब गोवा से माइग्रेशन हुआ था जैसलमेर की तरफ, वही हम सारस्वत, तमाम राजस्थानी सारस्वत हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ऐसा कनेक्शन है, लेकिन ये मेरे अभ्यास का विषय नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई यंग स्कॉलर इसके ऊपर काम करे, क्योंकि ऐसा कनेक्शन है, लेकिन उस कलेक्शन को एक स्कॉलर की दृष्टि से उसका अभ्यास करना और उसके ऊपर काम करना, ये आपके ही थ्रू कोई आना चाहिए, तभी वो, क्योंकि देन यू आर अ स्टेक होल्डर इन द स्टोरी, देन यू आर नॉट जस्ट एन एकेडमिशियन। इसलिए मैं आज आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि मुझे उतनी इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मैं आप सबसे विनती करूँगी कि आप में से कोई यंग स्कॉलर ऐसा होना चाहिए जो इस विषय पर अभ्यास कर कर इस पर प्रकाश डाल सके। इस बिंदु के ऊपर ही मैं जोर दे रहा हूँ। लोधरुवा जो राजस्थान जैसलमेर में है, मैं वहाँ गया हूँ। एक ही छोटा गांव, 500 जनसंख्या होगी, उनमें से 60 लोग संस्कृत के विद्वान हैं, प्राध्यापक। वाह।
I think we'll close this session now. Thank you very much, Shefali ji. I think you have spent enormous time in actually visiting these temples and collecting information. A big round of applause to Shefali Vaidya ji. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु कृपा है. Our next speaker is Sahil Kini. He will speak on building a digital India from a Saraswat perspective. Over to Sahil Kini ji. Mr. Sahil Kini is the founder and CEO of Setu, a Bangalore-based fintech startup that he recently sold to point-of-sale terminal major Pine Labs for $75 million. I repeat, $75 million. Mr. Kini was one of the early team members of Aadhaar. He is also an active iSpirit volunteer working to promote UPI, DigiLocker, etc. His prior experience includes management consulting at McKinsey and Company and venture capital investing at Aspada Investments. Sahil holds a BTech from IIT Madras. Over to you, Sahil. Namaste. Firstly, I'd like to say thank you to all the organizers of Vishwa Saraswat Federation for inviting me and giving me the privilege of addressing all of you today. It feels very nice to be with my own people. And I didn't know that my people were people from so many different parts of the country. I was born and brought up in Mangalore, and I am a Gaud Saraswat Brahmin. But, and I knew that the Saraswat community is bigger than the GSB community. I just had no idea that it was this much bigger. And so it fills my heart with joy to meet people, my own brothers and sisters from different parts of the country. And I hope I will do your time justice. So thank you for giving me the time. I'll begin, most of this talk is about the future that we are building as India. When I heard Shefali ma'am's talk before this, I felt a lot of pain listening to the past. We've been through a lot as a community, but I take a lot of pride in who we are today and the future that we are building. And people like us, we've never really been ones to dwell too much on the pain of the past. We've always looked ahead. And we've looked ahead to build a much bigger and brighter future. And our country today stands as a leader in building infrastructure at national scale that nobody else has done. And I'm here to tell you that story. So we'll start with the presentation, and I'll begin with a brief introduction to myself and a small confession. The brief introduction is, I come from a typical GSB family in Mangalore. My father is a businessman, his father was a businessman, his father was a businessman, and I don't know about his father, but he probably was a businessman too. And so ever since I was a young boy, I wanted to start my own business. When I was 3 years old, when I was asked, what did you want to do? I pointed to MCF, Mangalore Chemicals and Fertilizers, and said I wanted to build a factory bigger than that. I didn't end up doing it, but I built software companies that are hopefully about as valuable, if not more valuable. Factories have changed. Factories now happen on the internet. And so we're building infrastructure and roads on the internet today. If we may have the presentation up. Something remarkable has happened in India in the last 15 years. And the confession that I want to make is that this presentation is not my presentation. This presentation is a presentation of my mentor. But I feel less guilty about stealing this presentation because that mentor of mine is also a Saraswat and is recognized unofficially at least as the Chief Technology Officer of India. His name is Nandan Nilekani. So I feel proud. And I will apologize to Nandan sir after this, since I haven't informed him that I'm stealing this presentation. But I'm sure he'll forgive me because, we always follow a policy of seek forgiveness, not permission. And then we go after the fact after doing this. So
Let's move to the next slide. You know, when I told my dad that I also wanted to start a business, his first response was, don't. It's too much stress, it's too much trouble. I did not work so hard so that you have to take the same stress that I took when I started a business. But I was determined. Then he said, then there's one thing that you have to do, which is you have to study first. He never studied very much. He's a 10th standard pass, SSLC pass as they say. But he was insistent that I study. And he told a myth that many parents tell their children, which is study well and then the rest of your life is sorted. That is only partially true. It helps to study, but the rest of your life also you have to work very hard to do well in life. So I studied, and after, if I'm going to study, then I really wanted to go to the best college in the country. And I was lucky enough to go get a chance and study at IIT Madras. When I studied there, after that, I didn't quite know what I wanted to do. I was working at one of the most prestigious management consulting firms in the world called McKinsey & Company. And then I didn't know what to do next. I mean, I knew I wanted to start a business, but I knew I wasn't ready at that point. And at that point, something very special happened. A very special opportunity dropped into my lap, which is someone told me about Aadhaar. That time it was not called Aadhaar. That time the name Aadhaar hadn't yet been given. It was called the Unique Identification Authority of India. It still is called that. The authority, the agency that runs it is called UIDAI. And they said Nandan Nilekani is starting something that will give ID to every Indian. So I always wanted to serve the country, and that's a strange desire that has been in us, and I think that is there in every Saraswat that I have met, that there is a sense of seva in us, that we don't do business just for business. Money is good, but we are children of Saraswati first. So in my family, in my household, it was always said, you worship Saraswati and Lakshmi will follow. And so we always worshipped Saraswati that way. And so that sense of seva drove me to work, to try and join Aadhaar. And I was very lucky because when I joined, it was a very special place. It was, I joined in August of 2010, which is about 34 days before the first Aadhaar number was given, which was on September 24th, 2010. To think that we have 140 crore Aadhaar numbers today, and just 13 years ago, they were zero. It is a very, very special thing. When I joined Aadhaar, I did not know how the government worked. I did not know how these scale of projects happen. But when I joined there, it was a very special place. It was a mix of private sector volunteers and government servants from every service. So there were people from IAS, there were people from audit and accounts, there were people from railways, there were people from there are so many services in the Indian government that you wouldn't know. And I learned two fundamental truths when I was there. The first is that nothing is bigger in India than Bharat Sarkar. And the second is the only thing bigger than Bharat Sarkar is the scale of Bharat's challenges. And when I joined there, it was the beginning of a very, very special journey in India's history. India has come a long way. Can we go to the next slide? India has come a very long way in 30 years. I know it might not feel like it to a lot of us, but we stand as examples to the world on how to build infrastructure for its citizens. And I'm here to tell you the story of what we have accomplished in the last 15 years, so that you may feel that pride that I feel whenever I say that I'm Indian. And it's not just because of our history. It's not just because of our heritage. It's because of who we are today.
and the software and the technology and the knowledge that we provide to the world today. We stand as leaders in the world because of what we have built over the last 30 years. And I'm here to tell you that story. Let's move next. I don't know, I mean, a lot of you might remember 1991. I was only 6 years old then, so I don't really remember it, but I've read about it. And in 1991, it was a very difficult time for India. There was something called a balance of payments crisis, which basically means that we were buying more, we were importing more than we were exporting, and we were using more foreign exchange than we had in our reserves. It had gotten so bad in 1991 that we had to send our gold to the Bank of England as guarantee for a loan that we would get at that point. And that time it was a very difficult time in India's financial history. But that was also a turning point. India's economy opened up. And in the last 30 years, we've gone from a balance of payments crisis to a foreign exchange surplus. And today we stand very strong, even though the foreign markets, overall the financial markets are in crisis everywhere. India's economy is stable. And that's because of the work that we've done over the last 30 years. Move next. This is something that I take a lot of pride in. It makes me very happy to see what we've done in the last 10 years. 10 years ago, 12 years ago, we were among the most underbanked countries in the world. However, something special happened in the last 10 years. Here's an interesting statistic for you. Between the years of 2014 and 2019, 1 out of 2 bank accounts opened worldwide was an Indian bank account. Every year, we opened 500 million or 50 crore bank accounts in 5 years. With the Jan Dhan Yojana, the Jan Dhan accounts that happened, the Pradhan Mantri's Jan Dhan Yojana opened 50 crore accounts in 5 years. In those 5 years, 1 out of 2 accounts was an Indian account being opened. And that's why most of us here today, and a lot of us might not have had bank accounts before. And that was the case for over half of India. That changed over the last 10 years. We did something in the last 7 years, and this is the Bank of International Settlements. This is not us saying it. We did it in 7 years what any other country would have taken 47 years for. And that's because of the technology that we built. That's because of Aadhaar. Next. Next slide, please. Something else that happened was very special. The smartphone population. How many of you have smartphones today? Anybody doesn't have a smartphone? I guess that's what I should ask. That changed again over the last 5 to 10 years. Something very special happened again. In 2016, 2017, one of our private players, Reliance Jio, had a very special insight. They said that voice demand is inelastic. Even if you make phone calls free, इसका मतलब ये नहीं है कि आप phone call free है तो आप 6 घंटे बात करोगे phone पे, है ना? तो you can keep dropping the price of the phone. So they made it free. And they dropped data cost as well, because we have so many people that you can drop the cost of data to next to nothing and still make money in this country. And so you saw something very special happen. The price per data dropped from 228 rupees per GB to 7 rupees per GB over the course of the last 7 years. It is the reason why you see everyone on their phone watching YouTube and Hotstar and all of that. That has happened in the last 5 to 7 years because of the technologies that we've built. And that's also why the penetration of smartphones in this country has grown by so much. That's another crucial piece of infrastructure. And in the future, all the amazing things that will happen in India, most of them about India's economic future will happen on your phone. Next. This is again a very entertaining story. India is a very cash-dependent economy, at least was. And UPI was conceptualized in 2013. I joined Aadhaar in 2010, and then I was part of the same group of people who were sitting and designing what our mission was to try and build
what we called a presenceless, paperless, cashless society, which means that if you don't have to go somewhere, you don't have to go to a bank to open a bank account, you don't have to be there physically to do that transaction. You don't have to have your paper in your hand for your ID or your birth certificate or anything to show who you are. And you don't have to have physical cash to do transactions. Cashless seemed fairly hard to do because of our reliance on cash. India is a very cash-dependent country. But, that didn't stop us from trying. So in 2013, we designed a system for mobile payments, which would make it possible to make payments through an app. It seemed crazy at the time because there were only about 1 or 2 crore people, so less than 2% of India's population that had a smartphone. Excuse me. But we designed a system that came to be known as UPI, Unified Payments Interface, which today you will know as Bheem or Google Pay or Phone Pay or Paytm or all of that. Any of those apps, all of them use the same system underneath, and it is called the Unified Payments Interface, UPI. It was launched in 2016, and in October 2016, we were doing about 1 lakh transactions per month. 1 lakh transactions. Not bad. On November 8th, 2016, something strange happened. I'm sure all of you remember. Demonetization happened. And that means all the cash, about 87% of the cash that was there in this country in terms of value, 14,56,000 crores, disappeared. And so digital payments became crucial, became very, very important. Luckily, we had already built the system and it was already live. So it started getting promoted very strongly. Pradhan Mantri Modi ji launched the Bheem app, which by the way stands for Bharat Interface for Money, if you didn't know, and in December of 2016. Today, last month, UPI, on October 2016, UPI did 1 lakh transactions. In February of 2023, does anyone want to guess how many transactions UPI did? No? 730 crores. It is the world's most powerful payment system, and it is free. It was built by India, by Indians for India. It has larger scale than any system, than any national payment system anywhere in the world. It is universally recognized to be the best payment system in the world. And we still run it for next to no cost. And that's because of the technology that we built. Let's move. I'm still amazed by all the things that we are able to do. We delivered 230 crore vaccines in 2 years. And obviously a lot of credit goes to our vaccine manufacturers like Serum Institute of India, like Bharat Biotech, and this was infrastructure that was built over 30 years, 40 years. But because there was something called Aadhaar, because there was a foundational ID that all of you had, you were able to log in and book your first dose in, let's say, Haridwar, your second dose in Bombay, your third dose your booster dose in Kasaragod, and you will get a digital certificate that you can actually keep on your phone that no other country can do. Even in the US, you go to a Walgreens or you go to wherever, you'll get a parchi for the vaccine that you're given. Every time I go now, we have come to the point where today if you travel abroad and you go to the countries that my parents aspired to go to or other people thought were advanced countries, when I try to make a payment, they only ask for card. Mobile payments are really hard. Money doesn't move instantly. It takes 3 days to settle. And a vaccination proof is given to you on a parchi. And I'm like, you guys were left behind. We've jumped ahead. And a lot of this was, again, a lot of credit goes to Nandan sir, but there was also a very, very influential and very wonderful man who was a civil servant. His name is R.S. Sharma, Ram Sevak Sharma, who was the founding chairman of the UID.
And he was also the chairperson of TRI, and he was the person who actually ended up building CoWIN, which is where you all registered for your vaccinations. Okay, let's move next. India is making non-linear, irreversible changes, which means the change doesn't happen like this. It doesn't happen in a straight line. We are here, suddenly a couple of years later, we are here. These are the kind of jumps that India is making right now. And every change that happens builds on to the next change that we are able to do. It is what we call combinatorial innovation, which basically means that, if there was one innovation that happened, and then there was another innovation in a separate field that happened, the two are able to interact and give another jump to us. For example, there was Aadhaar that was built, then there was DigiLocker that was built. If those two things weren't there, then CoWIN was not possible. So similarly, there was something called IMPS that was built a long time ago, and there was Jio's drop in data prices. If those two things hadn't happened, then UPI could not have happened. And because UPI has happened, and because things like CoWIN have happened, in the next 5 to 10 years, some more amazing things are about to happen that most of us won't be able to foresee. But I am quite confident that our lead will only keep expanding over the course of the next 10 to 15 years. Next. So each change is enabled by a fundamental technology building block, and it is called a digital public good. It's a very different model than what other countries do. If you take the US or Europe, a lot of innovation there is driven only by private sector companies. Here, people who are essentially volunteers, people who are government servants, people who are working in software companies are building systems which are known as digital public goods. They are like roads for the internet, roads and bridges for the internet that allow all of us to access it and use it in a way that was not possible before. Next. Like you say, the upgrade from a feature phone, from a Nokia phone or the old phone that you had to the smartphone that you have in your hand today, similarly, India is upgrading. India is upgrading from an offline, cash, informal, low productivity economy to an online, cashless, formal, and high productivity economy, and that's happened in the last 10 to 15 years, and that change will continue to accelerate. India is upgrading. Let's move next. And the best part about this upgrade is that it is for everyone. It isn't so expensive that only rich people can afford it. It is inclusive. Every one of you in this room today has benefited, and if you go out into the streets, you will see those people using the same kind of systems that you and I use today. And it is not differential access, which means we all have access to the same system. And that system is great. There's no gradation, there's no special UPI for Mantri ji and less special UPI for common man. That's not how it works. It's the same system for everyone. And because the system is so good, it can serve the entire country at once. Next. See, the reason this is needed is, despite all of this, we are still a poor country. We still have a long way to go when it comes to economic growth. The example is, if you take our main target, you take even US or China, the United States has a GDP per capita of $55,000. China has a GDP per capita of $16,000. India is at 2,200. And if you actually take out the richest 5 crore Indians, that GDP per capita actually drops to $700. We're very poor. And that needs to change. So the challenge is the internet that was built before was built on advertising. So if you actually look at how much money you can make from just ads in the US, the average amount that is possible to be made per year on an internet user in the US is $860.
and in India it is $7. So it is 120 times less than what is possible in the US. So you can't make money in India on the internet using ads. The only way you can do it is through micropayments. So you have to enable people to pay 2 rupees, 5 rupees, 7 rupees, 10 rupees on the internet for companies to be able to make money so that you can build large companies in India, so that many people can benefit. The only way to do that is to enable this kind of payment infrastructure, this kind of ID infrastructure, so that you can figure out, I am who I say I am, I can pay, and I can show you my documents, all without any friction of actually being present. That is the kind of infrastructure that we are building for ourselves. Next. So I've kind of spoken about this already. So the ID layer, the identity layer, which is showing who I say I am, is like Aadhaar. The payments layer is UPI, and the data layer is a couple of things. The first one is called DigiLocker. Some of you might have heard of it. I will speak about it briefly, and the other is known as Account Aggregator. I will talk about both of these in the next slide. Yeah, so I'll quickly move through this. The first is, Aadhaar is a very special thing. It's a very, very sophisticated system. Today, 8 crore times a day, there is an authentication that happens on Aadhaar, where people are putting in their Aadhaar number just to prove they are who they say they are. This happens whenever you're trying to open a bank account, when you're trying to get a loan, when you're trying to get a SIM card. And an entertaining story is, in 2017, when Jio launched, the goal of Mukesh Ambani was to give out 10 crore SIM cards in 6 months, which was a crazy goal when you think about it, because before that, every SIM card would take at least 3 days to activate. I don't know if you remember this. You would go give your Xerox copy of your ID card, and then they would finally say it will get activated in 48 to 72 hours. What changed is Jio started using biometric authentication using Aadhaar, which means that you would just put your thumbprint, and then within 30 seconds, they would actually get details of your name, your address, your photo, all of this verified from a national database. So you can give your SIM card. So he was able to actually do it not in 6 months, but actually 4.5 months, 10 crore SIM cards, because of Aadhaar. So we'll move to the next one. The amazing thing about UPI is that it does not require electricity, it does not require a expensive terminal. These POS terminals where you actually swipe your cards are about 15 to 16,000 rupees per piece. And even if somebody is going to give you a discount there is still maintenance of a few hundred rupees every month. Whereas a QR code is free. It's a sticker. It's a sticker that you put on the wall, then you can scan it, make a payment. This was an innovation that we drove. This is an innovation that we should be proud of. We made this happen, and this is, you see in Bangalore today, this is a photo that was actually recently taken, where people are selling, pens and random things on the road, and he's carrying a QR with him to accept payment. Right? If you don't have cash, don't have change, it comes like this. We did this. Next. And so it took 60 years for about 60,000, I think roughly, about 6 lakh. About 6 lakh POS terminals is what India has today. But there are over 6 crore QR codes out there right now in India for payments. And that happened in less than 6 years. What POS terminals and Visa, MasterCard could not do over 60 years, we have done in 6 years with QR codes. Next. One of the special things, and I think you have to go to a bigger city or you have to go to an airport to truly appreciate the scale of what has happened with DigiLocker. But you don't need to carry your physical ID card anymore.
once you have DigiLocker, and 130 million Indians, 13 crore Indians use DigiLocker today. Over 500 crore documents are there on DigiLocker. And this is possible because of systems that we have built. Today, a service that is charged for 20,000 rupees per year in the US called Clear, where you can actually show your face as your ID, is offered for free in India, where if it is called DigiYatra. You can go to an airport. There are a few airports, 4 or 5 airports in the country that is enabled, and I'm sure you will see it in every airport in the country very soon, where once you register on the app, you just go there, apna muh dikha dijiyega, darwaza khul jata hai, which is pretty amazing when you think about it. And I've experienced this only recently. It is a very special piece of infrastructure. So we'll move on. I'm running late on time, I've been told. So I will wrap up very quickly. Next slide, please. And the last piece of infrastructure that I will talk about is FASTag, which is actually doing some amazing things for our actual physical roads. So every car today in India, every car, every truck, every tempo has something called FASTag today. And that has led to completely cashless toll terminals, which basically means that we actually recovered about 40% more from our roads. The state governments and central governments recovered 40% more revenue from these roads because it wasn't cash collection. It was digital collection. So it went straight to the government's bank account, which means they're able to build more roads because the leakage from these projects is lower. The financial viability of these projects is higher. So the pace of building roads is growing, not just because of who's in power or what is not. The fundamental systems that we use have changed and they've become more efficient. So let's move to the last slide. Next. See, I have 2 more slides and then I will quickly wrap up. Because of these systems, there's been an almost 100 times growth, 90x. There were 1,000 startups in this country in 2015, 2016. There are over 90,000 startups today. These are small companies, technology companies that are built by people like me and you to actually, one, make money, yes. The second is actually the building software and technology that will serve all of us. And so this kind of innovation is happening because of, and is happening on top of this kind of infrastructure and these kind of roads, digital roads that India has built. So let's move next. We'll actually go to the last slide. Keep skipping towards the end. I've spoken about this. Next. You know, the thing that I wanted to kind of share with all of you is that our mantra as Saraswats of actually studying and being children of Saraswati have served us very well. There's no need to change that at all. The thing that we need to do is, you know, like my own dad and mom told me, study hard, be curious. And one of the wonderful things about at least GSBs and Konkanis is that we're wonderfully opportunistic people. We know how to spot opportunities and take advantage of them. And that's a special gift that our people have. And it happens only if you're curious and you're aware and you keep studying. Only a prepared mind can find opportunities. The second thing that we're very good at is when we find those opportunities, we capitalize on them. We take the leap. We are bold. We're not scared of taking risks. And that is something that is necessary to create something new. So once you study and you are prepared, you spot the opportunity, take a risk. When you take a risk and build something, always ask yourself, how is what you are building serving people? Because only if you truly serve people, if you go only after money, eventually it will catch up with you. If you make money serving people, you will not only earn money, you will also earn goodwill. And so that is something that I've tried to do in my career, and I encourage my brothers and sisters to do the same. Because, see, in Western economics, there's a concept called trickle-down economics, where, you know, if rich people get richer, that money will eventually trickle down to the poor. That's not true. Doesn't happen. Doesn't work like that. Wealth doesn't trickle down. Wealth is made, at least in my book, the best kind of wealth is made when you raise the floor.
right? When you make it, when the lowest that is there is actually higher than it used to be, when you build something that can lift as many people as possible and you make wealth that way, I think that is the kind of wealth creation that we can all agree is the right kind of wealth creation. Thank you for this opportunity. Namaste. Thank you, Sahil. Really inspiring presentation. I think the takeaway point is the India's growth is really inclusive growth. Whatever he said is really wondering. Thank you very much. Wonderful. Thank you very much. Now we have a next presentation from Dr. Raghavendra Pai on yoga and happiness. Dr. Raghavendra Pai is an author of several books and articles. He is part of NCERT curriculum on yoga. He has held more than 3,000 yoga camps, trained more than 12,000 students and 4,000 teachers in yoga. The floor is open to you, sir. प्रणाम। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे माँ शारदा का। शारदा, सरस्वती is also called Sharade. Adopt Namaskar Mudra. When you adopt Namaskar Mudra, itself yoga. The meaning, etymological meaning of yoga means bringing together. Bring together. Okay? Adopt Namaskar Mudra. सब लोग प्रणाम करेंगे। श्वास अंदर लेना, एक बार ओम चांट करेंगे, पठन करेंगे। इनहेल डीपली, माँ शारदा को स्मरण करते हुए आरंभ करेंगे। ओम। Please repeat after me. Namaste Sharada Devi. Kashmira Puravasini. Tvamaham Prarthaye Nityam. Vidyam Buddhim Vidyam Buddhim cha dehi me Ratnakara dhauta padam Himalaya kiritinim Brahmarajarshi ratnadhyam Vande Bharata Mataram. Vande Bharata Mataram. Om Shri Gurubhyo Namaha. Vande Guru Parampara. There are two mainly streams of yoga we can understand. The first one is Anirudh, 94th chapter, 94th Ishwarani asa.
So there are two streams of yoga we can understand. One is Yogeshwara Krishna Parampara and Yogeshwara Ishvara Parampara, that we can understand. Sakshat Ish Yogeshwara Vishnu Krishna, he himself Yogacharya. If we understand the Srimad Bhagavad Gita, Gita, when I say Gita, I must proud and I must remember 5 gakaras. Please repeat after me. Ganga, Gayatri, Gita. Gita means Bhagavad Gita. Gita, Gavaha, Go, Govinda. These are all start from Ga, 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 Ga. Right now? So if you take a bath in holy Ganga, we will remove our papa. No doubt. If you read, or if you listen, or if you do manan, or if you do nididhyas of Bhagavad Gita, we will be, or you will be, reach Jivan Mukta. That's the beauty. Because Ganga, Bhagavan ka nakha udbhave. Parantu, Srimad Bhagavad Gita, Sakshat Bhagavan ka mukha udbhave. Vyasa virachita Ganesha likita Mahabharate Punyakatha. In Mahabharata, in Bhishma Parva, in between Kurukshetra, it is in between warfield, Sri Krishna and Arjuna, their conversation. Make child silent, we used to say Jogula, Jojo, Shri Krishna, like this, na? Sir, some people, when they go to bathroom also, when they pour water, then the song comes. That's called bathroom sing also. But whenever you are happy, then you sing a song. The song comes. But here I will tell you, Srimad Bhagavad Gita, it is not a happy moment. It was in between warfield. Still, Shri Krishna explains. Srimad Bhagavad Gita is the answer to any problem. If you are a student, it motivates. If you are a businessman, it says how to be a pakka businessman. If you are a politician, he says, kaisa hona chahiye. So, and also the whole Bhagavad Gita is nothing but a text of yoga. Yoga grantha hai. Each chapter begins with Arjuna, Vishada, Yoga, Jnana, Yoga, Karma, Yoga, Rupa Darshana Yoga, like this, all Yoga. And also it ends with Sri Krishna Arjuna Samvade, like this, Yoga Shastre, like this it comes. So Bhagavad Gita, it is the essence of our dharma. Sarvopanishado gavo dogda gopalanandana partho vatsa sudhir bhokta dugdam gitamrutam mahat. The whole, it is the essence of Upanishad Veda. It's nothing but a go. Go means guy. Or Krishna ji, one who milk the essence of Veda Upanishad. We are all Bhokta, Upabhokta means one we enjoy the nectar or knowledge.
That is the beauty of Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, it explains what is yoga. Yoga, there are two definitions are there. One is Samatvam Yoga Uchyate, another one is Yoga Karmasu Kaushala. That we will come later. And also another parampara is there, that is a Natha parampara. Natha parampara. It comes from Yogishwara Ishvara. Datta parampara, Natha parampara, Ghoraka, Matsendra, these are all Natha parampara. Both parampara we believe and we practice. So if I ask anyone, what is the purpose of life, Vidyaji? We can say, so I want to build my career. So I learn, I do master degree, I do doctorate, I go to some company, I build a company like this. So will it end? No, desires are unlimited, wants are unlimited. So it won't end. So in Kannada there is one song. Yatara latapati, ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗುತ್ತಿ ಕಟಪಟಿ. The essence of this song is, so I will tell you in one nutshell. One Mr. Shantappa. Shantappa means we, all our Bharatiyas, we understand Shantappa means it is the name of a person. Shanti means peace. His name is Shantappa. He goes to his friends and he asks, I want to become a peaceful. I want to happiness. I want bliss. I want santosh. Then everyone says, oh Mr. Shantappa, build a house. Name like Shanti Nivasa, where Shanti lives there. He builds a house. Then again they say, get married. Put your wife name as a Shantamma or Shanta. Afterwards we know he put the name Shantkumari and Shantkumara for their children. All friends, they are so happy that Shantappa has built a Shanti Nivasa, got married with Shanti, Shantkumara, Shantkumari, everywhere we can see Shanti, Shanti, Shanti. Are you Shanti? Then Shantappa hushes. Shh. Don't make noise, because his wife Shanti is sleeping. Until she sleeps, I am in Shanti. This is a simple joke. So actually I tell you, we are all Shantappas only. We are searching in education. We are searching in our promotion. We are searching in all sophistication. No doubt, all these things are necessary. But the Shanti, the peace, our happiness, bliss is within us. Yoga will help you to identify and recognize and channelize and be with that state. So all small children, they are always anandavagiruttare. They are all in blissful state, happiest place, happiest nature. Because they don't have a kashmala kalmasha. They don't have a impurities. Yoga will teach you how to purify your physical disturbance. So yoga will teach you how to remove your emotional imbalance. It helps to how to calm down. It helps to how to culture your emotion. It says how to promote your spiritual level. That is the beauty of yoga. So what is yoga? Next. Aniruddha. Next. Rajni. So what is not yoga? So if we say the history of yoga, 5,000 years ago, we can, yoga, it doesn't have a periods. But authentication, 5,000 years ago, if we see the evidence of yoga, we can find in Harappa, Mohenjo-daro civilization. Aniruddha. So these are all the murtis or statues we can find in Harappa, Mohenjo-daro. Next. So all these
we can find in Harappa, Mohenjo-daro and Lothal civilization. Chalo, next. So, all our rishis, munis, they are all yogis, they are all tapasvis, they are all sadhakas. They did a penance, tapassu, or they did a meditation, and they understand the real knowledge, and then they spread. So we are all, we believe that Saraswata means one who blessed with Saraswati, one who is knowledgeable, one who a son or children of Saraswati, what we say. But how many of you we belong to one or the other Rishi Munis? Someone, if I ask you, many people belong to, are the lineage of Bharadvaja Maharshi. Anybody is there in Bharadvaja Gotrotpanna? See, someone are there. Bharadvaja Gotra, or Vacha Gotra, or Vatsya Gotra, or Vatsyayana Gotrotpanna, Vasishta Gotra, Kaushika Gotra, they are all Rishi Munis. As we are all Saraswat, that means we are the lineage of these Rishi Muni Parampara, means they must be Saraswat. Right now? So we are all Saraswat only. And also we say Patanjali Maharshi, he is the incarnation of Adishesha. There are many beliefs are there. He is a Gonika Putra. His mother name is Gonika and his Putra. And he fell down from the Anjali. That's why he is called Patita Anjali, Patanjala. And so some people, they say he is from Kashmir. There are many interpretations are there. But anyway, Patanjali Maharshi, he systematized our yoga in sutra form. Okay? Next. Hello. All our Rishimunis, we can see, Aryabhata, he presented beautifully. Maharshi Kanada, atomic energy, he presented. He is a pioneer in atomic energy. Next, chalo. Next. Okay, very good. Aryabhata, but I am not talking much about this thing. Brahmagupta, mathematician. Nagarjuna, chemistry. Then Varahamihira, astrology, astronomy. Next, Bharadvaja. Shishhuta, plastic surgery. So, now, let's stop. Now, again I come back to song. Just open your hands. Sab log haath aise kijiye. In our palm, we have got 38 reflex points, mainly. Now, it is a visiting card to enter the kingdom of yoga. Rub your palm. Very good. Bahut badhiya. When you rub your palm, you could feel some warmthness. Garmi pan आप महसूस कर सकता है. Right now, this is nothing but a energy. Energy has got 9 properties: heat energy, light energy, kinetic energy, magnetic energy, chemical energy, atomic energy. Right now we have to stimulate. Now I am going to teach you one mudra called Anjali Mudra. That Anjali Mudra, if you practice, you can calm down your mind, you can focus better. Okay? Rub your palm. Now you have to repeat whatever I say. Say, Vithala, 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 Vithala. Vithala, Vithala, Vithalure. Vithala, Vithala, Vithalure. Vithala, 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 Vithala. Vithala, Vithala, Vithalure. Vithala, Vithala, Panduranga. हाथ ऊपर कीजिए. Pandarinatha, Panduranga. Vithala, Vithala, Panduranga. Very good. Pandarinatha, Panduranga.
ವಿಠ್ಠಲ 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 ವಿಠ್ಠಲ. When we do tala, it stimulates. Just now, I didn't complete. So, in our palm, we have got a 38 reflex points. When you stimulate, fold, open. It stimulates these points. It stimulates heart, lungs, kidney, and pancreas. Simple technique. Open, close. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Very good. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. बायल्ली हेली राम राम राम. सब लोग बोलिए राम राम राम. श्री राम जय राम. श्री राम जय राम. Now bring your palms together. नजदीक लेकर आइए. Now close your eyes. And wider and closer. Close your eyes. In between your palm, you could experience some attraction, magnetic power. Keep your entire attention at the entrance of the nostrils or in between your palm. You could experience attraction, repulsion, tingling, throbbing, pulsing, whatever it could be. That is nothing but our own biomagnetic plasmic energy. Attraction, repulsion. Come on, ma'am. Basic. Adap namaskar mudra. Namaskar mudra. This energy, ये energy है प्राण, aura, prabhavalay. In our pranopanishad, in our Upanishad. So, in our day-to-day tradition, we do Radhe Radhe. Or we say Hari Om. Or Om Namah Shivaya. With folded hands. This is called yoga. Yoga means bring together. That's all. When you bring your palms together, you are uniting, you are bringing together. The etymological meaning of yoga means yujjate anena iti yoga. Right now? So, yoga samadhi also it is there. This is yoga. This is called prana chaitanya mudra or anjali mudra. Boliye prana chaitanya mudra. Our tradition is not shaking hands. Radhe Radhe or Om Namah Shivaya or Hari Om करके हम ग्रीट करेंगे. यहाँ से योग आरंभ होता है. Okay? So when you want to become happy, you should remove all your impurities of the mind. So when you read Bhagavad Gita, when you chant Bhagavad Gita, when you listen, or when you do dharana or dhyana, then you will become, you start purifying your all levels of personality. Personalities are there in 5 levels. Sharirika, boliye. Manasika, Bauddhika, Bhavanatmaka, Adhyatmika, Naitika. One who purifies all these 6 angas, that is called Aruyogya. Arogya. Aru in Kannada, Aru means 6. So you should keep these 6 levels of personality in pure way. That is called Arogya. In Shushruta Maharshi, he explains who is the healthiest man, who is the Arogyavanta. Means he says, Samadosha, Samagnischa, Samadhatu Malakriya, Prasanna Atma Indriya Manaha, Swasta Ityabidhiyate. Who can become a swast or happiest man means he should be physically fit. Yogasana, Kriya will help you. Physically fit, mentally alert or mentally most focused and emotionally cultured or spiritually connected. He is called swasta.
Okay, now there are many misconceptions are there. In few decades ago, yoga means only asana. Doing some Padmasana or adopting some Vrikshasana, performing Shirshasana, we say only yoga means asana. Nowadays also, I go to yoga, ನಾನು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, मैं योग के लिए जा रहा हूँ. इसका मतलब है सिर्फ he is going for yogasana. It is one of the aspects of yoga, not complete. Some people, they do some breathing exercise, they call pranayama. I do yoga. No, that is say pranayama is another limb of yoga. Some people, they do mudras. Some people, they close their eyes and they do meditation. Yoga means asana, yoga means pranayama. For in those days, most people, they used to believe that yoga is meant for sadhu, sannyasi, rishi munis. And also, yoga is not for women. It was there. And yoga is purely for Sanatanis. This our holy Ganga, this Bhagavad Gita, is this belong to particular religion? No, anyone can use this. Same way, yoga is also, they can perform, they can practice, they can take, they can make anything. And also, yoga is one of the Indian philosophies. What are the Bharatiya Darshana Shastras? Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Uttara Mimamsa, Purva Mimamsa, Charvaka, Jaina, Bauddha. These are all our Bharatiya Darshana Shastra eva. Parantu, yoga is one of the Darshana means, so this must be belongs to Darshanakaras. Not like this. Yoga is belong to everyone. And also, who can practice yoga? In Hatha Yoga Pradipika, Swatmarama Suri, he explains beautifully, who can practice yoga? Yuva, Vruddho, Ati Vruddho va, Vyadhito Durbalopi va, Abhyasat Siddhamapnoti, Sarva Yogeshvatandritaha. When we born, then only when we take a first breath, that itself is ajapajap. We inhale, so we exhale, hum. That's called ajapajap. Until last breath, we do ajapajap. That is mantra. Or Hamsa Gayatri. In Kannada, Dasavadi says, Nambide Ninnapada Guru Mukhya Prana there, Ipatta Vandu Savira, Aidondo Noro, Apratima Hamsa Mantra. Each day we do 21,600 times Shri, Om, or So, Hum, or Hum, Sa, Saha Eva Aham, Ahameva Saha. So when you merge, that is Yoga. When you unite, that is Yoga Hotai. So yoga can be practiced Bala, Yuva, youth, Vruddha, old, Ati Vruddha, age old, Vyadhita, diseased, Durbala, means disabled also can practice and make it. So Patanjali Maharshi, he says, Chittavritti Nirodhaha. Boliye, Chittavritti Nirodhaha. Control of the functional modification of Chitta is yoga, according to Patanjali. Shri Krishna says, Samatvam, Madhava, 2 minutes, 3 minutes, I will come. Okay. 3 minutes. Pakka 3 minutes, I will do. Okay. If you practice, you will be happiest man. Are you happy? You want to become happy? Very good. The happiness within you, within us. Okay. Now I will teach you. So, when I say, if you are happy, clap twice. Are you happy? When you are happy, clap your hands. 1, 2. That's all. When you are happy and you know it, clap your hand. That's all. 2 बार clap करना. When you are happy and you know it, clap your hand. When you are happy, अभी दूसरा है. When you are happy and you know it, snap your finger करना. Okay? When you are happy and you know it, snap your finger. क्या बात है? When you are happy and you know it, tap your thigh. That's all. When you are happy and you know it, say Hari Om. जोर से बोलिए हरि ओम. When you are happy and you know it, say जय हिंद. अंदर से आना चाहिए. भारत माँ को जय बोले जय हिंद.
अंदर से आना चाहिए। हमारा मेरा हीरो है यहाँ। ओके, when you're happy and you know it, clap your hand. When you're happy and you know it, snap your finger. When you're happy and you know it, tap your thigh. When you're happy and you know it, say Vande Mataram. Vande Mataram means Ma tujhe pranam, not salam. Ma tujhe pranam is right word. Okay, that's called Vande Mataram, salutation to our mother. Salutation to Bhomata, salutation to Sharada Mata, Saraswati Mata, salutation to Bharata Mata. That is the meaning of Vande Mataram. When you're happy and you know it, say Vande Mataram. When you're happy and you say it, Jai Hind. धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राघवेंद्र भाई जी। समय के अभाव से हम मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं जा पा रहे हैं। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, राघवेंद्र पै जी हरिद्वार में और 5 दिन रहेंगे व्यास मंदिर में। अगर किसी को योग का कुछ ज्ञान चाहिए उनको मिल सकते हैं। कल सुबह भी हमने एक रखा है 6:30 बजे व्यास मंदिर में। किसी को योग सीखना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मिल सकते हैं कल सुबह। और 5 दिन के लिए राघवेंद्र पै जी यहाँ पे है। उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत सारे टेक्निक्स है। मैं भी हैरान हो गया परसों बात करते वक्त। देयर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल इन इंडिया। हमको एक्चुअली उनकी जानकारी नहीं है। बहुत सारे विषय है, आगे वाले दिनों में हम उसको और उसके बारे में हम विश्व साल्स फेडरेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। धन्यवाद। नाउ विल ब्रेक फॉर ए टी। विल बी बैक इन 15 मिनट्स टाइम। काइंडली कोऑपरेट। 15 मिनट में हम लौटेंगे। उसके बाद एक पैनल डिस्कशन रहेगा, सारस्वत आइडेंटिटी एंड यूनिफिकेशन, हमारा परिचय और एकीकरण, इसके ऊपर बात करने हमारे साथ है 11 पैनलिस्ट होंगे। आप जल्दी लौटिएगा। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन 15 मिनट्स। मंगळूर प्रकाश हेगडे आणि अनिता प्रकाश हेगडे असची त्यांनी ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರು ಜಲರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರचे मुंबईच्या चेंबूरान तो त्यांनी आज त्यांनी हरिद्वार येऊन या विश्व सारस्वत संमेलन तो भाग घेतला असं मस्त तांकां कुशल असं त्यांनी त्या पुरा सांगू कथा आमगडो जॉईन जालीची। नमस्कार प्रकाश मॅम, कसं म्हणतात? आम्ही लास्ट टायम वाशीन तू फर्स्ट टायम आयलींची आमकां बारी खुशी जाली। ते लायक चंदूकन तुमी ऑर्गनायज करून इट वॉज ओन्ली 1 डे जालेले। ते कॉन्फरन्स जाले कुडले हांव लेखले नेक्स्ट कॉन्फरन्स केन्ना आसा म्हणून तुमी म्हळेलेंचे 24-25 फेब्रुवारी हरिद्वार आसा म्हणून। इमिडिएटली हांव सांगलें रेजिस्टर करता म्हणून। तशी रेजिस्टर करून आतां आमी हांगा आसाची वाशी केल्या तशीच ताज्या चांग करून तुमी आतां केल्ल्याची जसले आमी कॉर्पोरेट कशी फंक्शन पर करता पळय म्हळ्यार प्लॅन करचे फर्स्ट वेल इन एडवांस 1 वर्स फुडें, देन वी स्ट्रॅटेजी करताची, देन वी एग्जिक्यूट इट, देन वी रिव्यू। तशीच इट वॉज लायक वेरी कसं म्हणतात बारी लायक जालें। आनी हांव आनी सांगता आसा नेक्स्ट इयर येवचे खातीर आतांच रेडी आसा। बारी खुशी जालें जेवण खाण पुराय चंद रीती जाला एंड वॉलंटियर्स ऑल्सो कसले तोंदरे जायना ती केलेली ती बारी खुशी आसा आमकां। हांव फर्स्ट टायम अटेंड करचें वाशी म्हाका जाय नाशिल्लें बट म्हाका बारी खूश जालें हांगा येवन एक नमने विंगड फिलींग असं आनी पुरा जाण इतली फ्रेंडली आनी हें आसाची बारी लायक जाता। पुरा जाणां ओट्टू मेळ न्हू पुरा हें पुरा ऑर्गनायजेशन बारी लायक जाला। यूथ ऑफ GSB थँक यू वेरी मच फॉर ऑर्गनायझींग एंड इवन नेक्स्ट टायम हांव येवचें रेडी आसा खंय आसल्यार। देव बरें कर। देव बरें कर। थँक यू। आता आमगेलो तांगेले एक्सपिरियन्स शेअर करूक भारत बीडी फॅमिलीच्या 3 दिवसाची सुब्राय एम पै, श्रद्धा सुब्राय पै, तशें मंजुनाथ एम पै तांगे लागीं निमगू मंजुनाथ पै
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೈ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂತು ತಂಗೆ ನಿಮಗೂ ತನ್ನಿ ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂತ ಇವನು ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಭಾಗ್ಯತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಂಗಿಲ್ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಸ ಮಾಡ್ತಾಚ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೈ ಮಾಮ್ ಕಸ ಮಾಡ್ತಾಚ್ ಏನಪ್ಪಂತ ಭಾರಿ ಚಂದ ರೀತಿ ರೀ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಳಲ್ ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂತೂ ವ್ಯಾಸ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಚಂದ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜಲ್ಲ ಕಂಚೆ ವಿಷಯ ಋಣಿನ कशी गांव जाता त्यांची रीती हंगा ऑर्गनायज केलेले विषय ऑर्गनायझर्स हांग पुराय भारी मनान खुशी सांगता आसा आनी तशीची एक्सपिरियन्सा विशय तुमी निमगेलाल म्हणारी आज काल कसं म्हणारी आमगेले बेज आमगेल रूट्स खंय दाखोवन म्हण आमकां आजी काही आमी कसं म्हणारी पोर्चुगलाला दाखोवन गोवा दाखोवन धांवन मंगळूर केरळा ताई पवलेची म्हण ताजी मूल खंय दाखोवन म्हण कळूक आजी हे कॉन्फ्लुएन्स आता आमी कसं म्हणटाची कॉन्फ्लुएन्स तो असल एक विषय आमकां कळता कसं म्हळ्यार आमी बेजिकली खंय दाखोवन स्टार्ट जाल्यार सारस्वत ताजे विशयांनी पुराय आमकां चेडूं निमगेल्या समेत आमकां सांगू गोतना ना ते विशयांनी पुराय कळटा तेच देखून मिगेल मना आसूच कसं म्हळ्यार यंगस्टर्स हांव आतां मिगेल पुत्ता काही घेवन आयला खंय दाखोवन कसं नाही म्हणत आनी आमगेल्या निमगेल्या रे आमकां सांगू कळना तांकांय कळका मुखारसून मुखारची पिळेक काय कळका म्हण सांगून असल कॉन्फ्लुएन्स वर्स करता तशी चेडूआन यंगस्टर्सानय युथान ओट्ट जावन येवची तशी जावका म्हणून हांव पुराय विशकांक युथ ऑफ GSB थ्रू सांगूक इच्छा पडटा सेम पळयतना क्रावड ओल्ड क्राउड चड आसा आमगेल युथान आयल्यार तांणी मुखारी कसन रिवल्युशन हाड येता डेव्हलपमेंट कोरेत आनी आमगेले समाजाची पुरा गण्य व्यक्ती आसा ती तांगेल नेटवर्कींग जाता नवे कोणी बिजनेस स्टार्ट करता जाल्यार तांकां हेल्प मेळटा तशी युथान येवका म्हणून हांव विक्षकांक सांगता तेंची तुमगेल चेडूआंक मुखार सुच कॉन्फरन्साक एटेंड करूंक एनकरेज करा ती तांतूं तांकां मस्त उपयोग आसा आतां मिगेल पुताक कितलीं जनाल गुर्तू जालो लायक आनी ताजे यूजय जाता मुखारचे तांगेले भविश्याक तांकां कसं म्हणटा ती गायड करूंकय पण मस्त जन रेडी आसा ती सो तुमगेल चेडूआंक एनकरेज करा ती नेक्स्ट कॉन्फरन्साक एटेंड जावच्याक सगळ्यांक नमस्कार मिगेल नांव मंजुनाथ पै म्हणून ह्या हरिद्वार क्षेत्र एक पुण्य क्षेत्र हांगा येतना केन्ना एक सूख मेळटा ह्या क्षेत्रांत पुराय आमची गेल समाज बांधव तशीच सारस्वत विंगड जागेर देखून काश्मीरा देखून आसो राजस्थाना देखून आसो कर्नाटका गोवा बॉम्बे तसल पुराय जणाक मेळटन एक विंगड एक खुशी जाता इता म्हळ्यार आमगेल पुराय मूल एकची जाग विंगड असो पुरो उल्लोच भाश विंगड असो पुरो जाल्यार आमगेल थिंकींग आमगेल संस्कार पुराय एकची ह्या पुराय विंगड जणां मेळटन आमकां एक खुशी जाता तशी तांगेलो उलयतना आमगेल विंगड क्षेत्र असल जण आसा ती त्या पुराय कळटा तशी मिगेल मस्त भाव भयण्याक आमी कोण म्हणूय गोतना आनी निमगेल्यार म्हाका हांव सांगपा पडटा म्हळ्यार हांव एक मालगड तांगेल ह्या जनरेशनान सो तांणी निमगेतान म्हाका एक आन्सर सांगची तशी हांव आन्सर सोदुका फर्स्ट त्या आन्सराक हांव हांगा येवन क्वेश्चन निमगेता आमगेल पुराय कोण आयलां ती तशी GD बक्षी जावं सुधांशू त्रिवेदी जावं तांणी पुराय एक उलयतना एक मनाक खुशी जाता आनी तशीची आमी पुराय एकत्रच जाता आमगेल पुराय मन असो आमी पुराय ओट्टू मेळटा त्या एक समाज क्रिएट जाता त्या ह्या सरस्वत कॉन्फ्लुएन्सा थ्रू आमकां एक इतलेला एक चान्स मेळ्ळो आमगेल भाग आहे तशी त्या देवाल एक आशिर्वाद स्वाम्याल अनुग्रह थँक्यू देव बरें करूं आमी ह्या विश्व सारस्वत सम्मेलनांतू कोणाला निमगेल्यार तांणी मंच कसा म्हळ्यार तुमगेले वॉलंटियर स्वयंसेवक बारी चांग आसा मरे बारी क्रमारी आमकां खंयच्यानूच एक तोंदरी जायना अशें तांणी आमकां एक पळोवन घेतलें आसा त्या रूम्स जावं खाण जेवण जावं ना बसकाराचें आसा पुरो ना कार्यक्रमां बाकी सांगचे आसा पुरो त्या पुरा एक कार्यकर्ता एक पंगड ना तांगेली एक टीम आसता म्हणून जाल्यार ताका एक नेतृत्व घेतलें आमगेलेची अजित पै आसाची तांणी उडपा लागून एक 35-40 जनां ಒಟ್ಟು एक ಹಂಗೆ येवन सेवा दिल्लो आसा तांगेल्या निमगुव्या कशी एक यूथ जावन आनीक एक खुशी कसा म्हळ्यार यूथ एक टीम कंडक्ट करता ना एक ऑर्गनायज करता म्हणून जाल्यार तें एक व्हड एक चॅलेंज तांगेले आमी आतां अभिप्राय घेता नमस्कार अजित कसा म्हणटाच सर्वांक नमस्कार आज विश्व सारस्वत फेडरेशन अदकून घेवन एक बृहत सम्मेलन हांगा हरिद्वार पुण्यभूमीन जाता आसा
तशी असले एक कार्यक्रम आयोजन करतना सर्व आमगेल्या भारत देशांत तशेंच विविध सारस्वत समाजाक एकीकरण करता म्हणून एक आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले एक मना एक इच्छा आशिल्ले त्या प्रकार आज एक आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमीन तीर्थ स्वाम्याले एक अनुग्रहारी असले एक विश्व सारस्वत फेडरेशन ಮೂಲಕ अशी अनेक सारस्वत समाज एक कोण घेऊन हांगा हरिद्वार एक पुण्यभूमी तो सुधींद्र तीर्थ स्वामीले हांगा वृंदावन आसा असले एक पुण्यक्षेत्रांत हे कार्यक्रम आयोजन केलेलो आसा तशी हे कार्यक्रम आयोजन करतना हाजे नाना रीती व्यवस्थेक जावके जाता तसले स्वयंसेवक वृंद हाका पाठीबलाक मागशी प्रत्येक कामान जावके जाता तशी हे विश्व सारस्वत फेडरेशना देखून घेवन उलयता आसतना ह्या फाटी उडपा पेंटे देखून घेवन एकीतले स्वयंसेवकांनी भाग घेवन सर्व कार्य सुदारसून दिवका म्हण एक निमगिलेलो आसा तशी आमके एक उडपी समाजाक एक अवकाश मेळ्ळ्या हांगा देखून घेवन आमी एक 40 जन बरी सकड हांगा हरिद्वार येवन पावन हांगा एकोमोडेशन जावचे पुरो आनी वाहनाची वेवस्था जावचे पुरो डायनिंग एरियाची वेवस्था अशें पुरो किचनाची वेवस्था अशें पुरो आयला अतिथींक सत्कार करचे विशय अशें पुरो वेदिके विशय अशें पुरो आनी सेक्युरिटी आनी विंगड क्लिनिंग इत्यादी असले कार्य अशें पुरो हे सकड कार्य आज एक आमगे स्वयंसेवकांना विविध कडेन तो आमगेले स्वामेल सेवा मठा सेवा संस्थाना सेवा समाज सेवा म्हणून एक मनात धवन घेवन सकड परिश्रम घेवन आज सेवा करता आसाची असेल एक विशेष जावन आशिल्लो तसलो अवकाश प्रायशा उडपाक एक 10-15 वर्सां मागीर आज नवे उजवाड आज उडपा समाजाक मेळटाच म्हणून एक हांतू एक स्पश्ट जावन दिसता. बरें कर आता आमगेलो आर्च फार्म लॅब्स लिमिटेड आज तणस तांगेले निमगुवे 2 दिवसाचे एक ह्या कार्यक्रमांत तांणी भाग घेतला आसा हरिद्वारांत चलतले ह्या देवभूमींत चलतले कार्यक्रमा ಬಗ್ಗೆ तांणी कसा म्हणटाचे म्हणून नमस्कार जाणा कसा म्हणटा तुमगेले मन पळयतना नमक दिसता तुम्ही मस्त एक नमूने संतृप्ती स्वाम्याला आशीर्वाद देवाला अनुग्रह निमित्ती तुमगेले मनाच्या भावन कशा व्यक्त करतात. वय सांगच्याक चिके कष्ट म्हळ्यार आमी ह्या 2 दिसांतू तुमी सांगिल म्हणजे देवभूमी हरिद्वार हांगे येवचे म्हळ्यार एक आमगेल वयर एक तशें म्हळ्यार एक अनुग्रह असो का असल बऱ्या जाग्यार येवच्याक ताजे वयर आमगेल म्हळ्यार सोम्याले अनुग्रह आसा सोम्याला आशिर्वाद मेळ्ळो वेदव्यासाला आशिर्वाद मेळ्ळो आमकां व्यास आश्रमां येवन गंगा आरती मेळ्ळी पुरा एक कपन जाल्लें आनी एक आमगे एक व्हडलें एक आमगेल म्हळ्यार सकड एक जॉयंट फॅमिलीज जालां आतां एक दुसरा गुर्तू जावन अण्णा बाप्पा मम्मा पुराय जालां हांगा हांगे घेवन खुशी जाली आनी आतां हे विश्व सारस्वत फावंडेशना निमित्ती आमगेले हो परिवार आनीक व्हड जाला म्हळ्यार आतां आमगेले पळय फुडली म्हळ्यार सरस्वती नदीच म्हळ्यार कोण कोण आमगेले ते सिविलायझेशनान जाय राजस्थानांत म्हणा ती काश्मीरांत म्हणा देता असं म्हळ्यार अमेरिका दुखून UK दुखून तुमकां पळयलें हें तें म्हणून सगळ्यांक तुमगेले निमित्त सो तुमकां एक व्हडलो एक आशिर्वाद असो आमगेले सगळ्यां तर्फेन जरी बद्दची भारी गंमत जाल्लें आनी नेक्स्ट एडिशना खातीर आमी पळयात आमगेले तर्फेन कसाल सहाय करूं सहभाग करूं पळया हे आमगेलें एक व्हडलें सौभाग्य ह्या 2 दीस हांगा पार्टिसिपेट करून. बरें कर. भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन. विश्व सारस्वत संमेलनाच्या 2 दिवसांतू खाण जेवणांतू हायलायट्स म्हळ्यार खंयच्या म्हळ्यार स्वीट्स त्या सकाळी असो दनपार असो सांजवाळ असो रात्री असो खंयची स्वीट म्हणून त्या एक जनान बारीक कुतूहल एक एक्सपेक्टेशन दोन एक राखचेच पळय त्या पुरो आसता जे मागशी काणी श्रेया स्वीट्साचे रमेश मल्लिमम तांगेले निमगुव्या आज खंयची स्वीट मागीर काल आशिल्ले आनी आज कसा व्यत्यासू मागीर खंयची रीती तयार जातास म्हणून. नमस्कार मल्लिमम कसं म्हणतात. आज आमी सकाळी काला जामून काल ड्राय जामून आशिल्ले आज काला जामून केला सकाळी 8:30 कापेक रात्रीक आतां 1 घंट्याक आतां बादशाह केला आमी बादशाह मागीर दनपार संजेक आमी खीर कदम म्हणून बेंगाली स्वीट मागीर रात्री जेवणाक रसमलाई केला आमी
आणि करका इतले जेवका इतल्याची आत्ता इलेले इतले दूध आणि करका इतले आम्ही एक तुम्ही गांवा लागून तुमगे जना घेऊन येयले एक्सपर्टाची रँक तांकां थंय करूंक हांग करूंक आनी तुमकां अंगडी करूंक हांग करूंक काय व्यत्यास आसा की असं आमकां थंय जाल्यार आमगेला बॉयलर आसा इजी जाता दूध ऊन करूंक जाल्यार हें कायलीन ते घालून 5-10 लिटर ऊन करका येता आमकां थंय 100-150 लिटर एका पण ऊन जाता मागीर हांगा आमकां आयटम तितले थंयचे म्हणके आमकां थंय आमी सर्टिजलाची एक प्रोडक्टा वयर एक ब्रँडा वयर त्याची ब्रँड यूज करून आमकां हें मेळटा हांगा गायची दूद सम मेळना म्हशी दूद मेळटा त्या बेंगाली स्विटा तितले दूद करूं येता आयटम करूंक तितले जायना स्वीटांत मात्र एक चूर व्यत्यास जाय तशी आमकां मंगळुरांत तोची तुमगे अंगडीन तुरा पण खाल्ला जाता ताका कसं कारण नाही आनी हरिद्वार वचून भायर वचून दूद घेवन आयल्याची गायचे आनी दिला पापा ते एक लायक आमकां करूंक लाय जाला आयटम पुरो लाय जाला ते गायचे दूद मेळ्ळें ते लायक आनी पुरा केलो पुरो आयटम तुमी थंय हाडला की म्हणून मंगळुराक ಸ್ವಲ್ಪ आयटम रॉ मटेरियल आमी ते इसकून घेवन येयले हांगा खंय सुदोच म्हण आमकां कळना तशी अशी हरिद्वारान पूड केल्लो अनुभव की ना विंगड खंयचे राज्या वचून ना आमी हरिद्वाराक लास्ट टायम एक केला हाजे चड 15 दीस केला आमी हांगा 15 दीस केला आमी हांगा लास्ट एक 5 म्हयने फुडें गोकर्ण मठाचे पर्तकळ्ळी केला मागीर आनी परत पास पंढरपुरा वचचे आसा देवाले एक सेवे मागीर वेंकटराम देवस्थाना कोडेला आमी करता आसा आतां मम्माई देवस्थाना तेर काली ताजे आमी केलेले एक देवाल सेवे म्हणटा आमी ताका एक आमकां एक भाग्य मेळ्ळा बरें थँक्यू आतां आमगेलो टू विश्व सारस्वत फेडरेशनाचे खजानशी म्हळ्यार ट्रेजरर तशीच मंगळूर रथबीजी श्री वेंकटराम देवस्थानाचे ट्रस्ट जन अशे CA जगन्नाथ कामत आनी आसाची तांगे निमगुव्या सुरवे जावन कामत नमस्कार जगना स्टार्टींग स्वाम्यान हांगा कोरका फेब्रुवारी 20-26 म्हण सांगताना तुम्ही ह्या फेडरेशनाचे एक ट्रस्ट खजानशी जावन तुमगे मना कशी एक प्लॅन केन्ना लागून सुरू जाल्ले मागीर खंय लागून हें एक इतले यशस्वी कार्यक्रम करूंक एक रूपरेषे सिद्ध जाल्ले आमगेले प्रथम जावन आशिल्लें एक विश्व सारस्वत संमेलन आमगेले कोंचाडी स्वामेल आशिर्वादान कोंचाडींत जाल्लेलो आसा हे आमगेले सुदीन तीर स्वामेल एक ड्रीम म्हणून सांगू येता इत्याक म्हळ्यार सारस्वत जनाक ಒಟ್ಟು करका म्हणाल खातीर ताणें 2003 ಅಂತೂ एक सना एक ट्रस्ट केलेले ಕಾರಣಾಂತರದವನು ते कसलगे एक मुखार सुन वचपाक ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाला आमगेले परमपूज्य काशी मठाधिपती श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामी मनांत आशिल्ले आमगेले गुरुले एक कसन ड्रीमस गीते आनीक एक चांगरी तीर कोरका म्हणाल खातीर ताणें 2021 ಅಂತೂ विश्व सारस्वत फेडरेशन म्हणून एक ट्रस्ट करून ताका एक 18 ಜನगी ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೋರ್ನು ಸಗಳೆಚಿ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಂಗಡ गांवांत ಮೆಂಬರ್ಸ್ आसात ಅಂತೂ ಬಾಂಬೆ ಅಷ್ಟ ಬರೋ कोचीन अशें बरो दिल्ली अशें बरो बेंगलोर तशीच पूरे जन मेंबरशिपाक तांकां ट्रस्ट करून हे कार्यक्रम कोरका म्हळ्यार एक स्वामेले मनांत लेखून प्रथम जावन आमी कोंचाडी केले तशीच सुरेखाची कोंचाडी कार्यक्रम जातानाच आमी मे 1 तारीख 2022 ಅಂತೂ वाशींत कार्यक्रम कोरका म्हळ्यार एक मनस्थिती ते कार्यक्रम करून वाशींत एक विजृंभणे जाल्यार पळोवन मस्त गांवतू लायलींचे हाजे पयशे विजृंभणे जावका म्हूण सांगून आतां 25-26 फेब्रुवारी 2023 इसवींत आमगेले सुदीन तीर स्वामेला वृंदावन खेस घे थंय कोरका हे प्रतिश्ठा वर्धांती टायमार म्हूण सांगून तेन्नाच मे 1 तारखेक डिसायड केलेले आमकां सादारण एक 9 म्हयने टायम मेळ्ळा चंदकोन एक ऑर्गनायज करूंक आमगेले अध्यक्ष प्रदीप पै मोहम्मद बरो तशीच कार्यदर्शी माधव कामत तशीच सिनेमम मुंबयचो आनी पुरो ಒಟ್ಟು जावन वाशी दीपक शेणे आनी पुरो ಒಟ್ಟು जावन कसं केलें म्हळ्यार तेन्ना कोणूच कोण आपोका खंयचे आमगेले समाजांत सारस्वत कम्युनिटींत कोण व्हड उद्देर आसा की तांणी आनी आर्मींत कोण सर्व केला की काश्मीरांत कितले जन आसा की हांकां पुरा एक एप्रोच करून म्हळ्यार सारस्वत म्हळ्यार सावथ कॅनरा मात्र अशें न्ही जो कर्नाटका मात्र अशें न्ही गोवा मात्र अशें न्ही सगळे देशांत आसाची आमी सांगचे जाल्यार राजस्थान सारस्वत आसाची पंजाबी सारस्वत आसाची काश्मीरी सारस्वत आसाची तशीच बंगाळ सारस्वत आसाची उत्तर प्रदेश सारस्वत आसाची अशी प्रत्येक तांगेले लिडर्सांक एप्रोच करून ते पुरा आमी तांगेले डिटेल्स घेवन तांगेले कोण लिडर आसा की तांकां एप्रोच करून हे सारस्वत संमेलन आसा आनी तुमी पुरो भाग जावका आनी पुरो जन उट्ट जावन
आमगेल कम्युनिटी मात्र न्ही देशा खातीर कसले कोरका इरेस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन देशा खातीर कसलगी कोरका आमी हे सारस्वत कम्युनिटीच्यान म्हणून मनस्थिती दवरून घेवन स्वामेला आशीर्वाद निमित्त आमी मुखार सरलींची 25-26 ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧನ್ ದಿ ಟೈಮರಿ ಈಗ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಜಾವಕ ಮಳಲ್ ಕತ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದೋನು ಈಗ ಓಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮಳರಿ ಸಾಧಾರಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೊರಿಚಿ ಮಳರಿ 1000 ಜನಕ್ಕೆ 1500 1250 300 ಜನ सजाजी तुमपुरा पळोवन अशें बरो इतलो व्हड जनक ते जेवणाची वेवस्था तशीच तांकां राबची वेवस्था हे पुरो करचें म्हळ्यार साधारण एक कुशाल न्ही मस्त तांतू परिश्रम जावका म्हळ्यार आमी कशें केलें म्हळ्यार प्रत्येकान एक जबाबदारी घेतले जसं म्हळ्यार ते ऑर्गनायज करची जबाबदारी प्रदीप अण्णान फायनान्शियल कमिटमेंट घेवची जबाबदारी प्रदीप अण्णान तशीच माधव कामतीन तशी वाशी दीपक अण्णान अजीत कामतीन हांणी पूर आमकां तनु मन धन असला मात्र पुरा जाता एक धनान तो काम करतले आमगेले हांणी हे पुरो लिडरशीप आसाची तांणी पुरो केलें खाली धन असला मात काम करूं जायना ताजे वट ऑर्गनायज करचें तांकां आपोवन हाडचें नांव सांगून गेल्यार साधारण एक 100 जन आसाचे आमगेले वटाची काम करतले आतां एकोमोडेशन म्हणली कळ्ळें आतां सुधीर शेणे आसा आमगेलो पुतूरचो पूरा तेगेली जबाबदारी तो साधारण एक 4-5 बेट्ट्यांक येयलो ते प्रत्येक आश्रम गिश्रम पुरो पळयले तांगेल्या उलयलींची तांगेले ते रेट डिस्कस करून तांगेले आमकां पुरो जन राबचे करता म्हळ्यार वेवस्थीत जावन कोरका म्हणल्यार खातीर कारण हांगा येयले तेन्ना 1000 जन येयले तेन्ना तांकां म्हाका रूम मेळ्ळें ते रूम मेळ्ळें म्हण जेवचें नाजा म्हूण म्हणाल खातीर पुरा जावन चंद रितीर ते एक एकोमोडेशन वेवस्था आमगेले सुधीर शेण्यान पळयला तशीच रजिस्ट्रेशन करतना 1000 जन येताची 1000 जन येतना ते रजिस्ट्रेशन करच्याक तांकां किट दिवका किटान तो आमी मस्त नमुने आयटम्स दिला ते पुरा ते किट दितना कसं म्हळ्यार किटान तूं ते रजिस्ट्रेशन करून तांकां बॅज डेलिगेट बॅज किट दिवच्याक गौतम पै तशीच संजना पै तशीच आमगेलो सुमंत भट्ट आनी गौतम पै भाव प्रीतम पै हांणी एक आनी तांगेली टीम घेवन एक 8 जन की 10 जनांची टीम घेवन तांणी चंद्रेतर वेवस्थीत जावन काल रजिस्ट्रेशन केलेलें आसा ते देखून येतना कशें म्हळ्यार पॅन्डाल गिंडाल पुरा आमकां हरिद्वारान तुमचे एक मुकेश म्हळ्यार सगळेच तागेले ताका आमी ते सगळेच तागेले जबाबदारी दिले हांगा मेन कसं म्हळ्यार खंयचे कॉन्फरन्सान तूं तांकां येवचे आतिथ्यांकां आदार आतिथ्य दिवचे तांगेले जेवण खाणाचें कसले चड उण जायना तशें पळोवचें इम्पॉर्टंट हांगा सगळेचे जेवण खाणाचें अरेंजमेंटा आमगेले सोमेश्वर राघवेंद्र भक्ता तशीच आमगेलो गुरुप्रसाद कामत कानिगाडा आनी पुरो मुतुवर्जी घेवन ते चंद रितीर एक कसले एक वेवस्थीत जातले रातपल्ली गोवन तांणी एक चंद रितीर प्रत्येकाक आदिरात्या ते चंद रितीर दिला तशीच महेशू हांगा रांदपाकुडाची टोटल कंट्रोल केलेलो आमगेलो महेशू मुंबयचो हे स्वीट प्रत्येकाक आयिल्ल्यांक एक चंद रितीर एक शी तिंडी एक चंद रितीर कार्यक्रम जावका म्हळ्यार खातीर आमगेला रमेश मालमा श्रेय हॉस्पिटलाचे मंगळूर देखून आयला ताणें बारी बतवर जेवन रातपल्ली बेसून हांगा प्रत्येक स्वीट एक प्रेस करता 1500 स्वीट करता आमी तागेले जेवण आपण घेवन एक चांग रितीर एक कार्यक्रम केलेलो आसा हे पुरो कार्यक्रम आमी एक 1,000 जन जावं हांगा येवन अशें बरोचे सगळे देशा विदेशांत हे पळोवक कार्यक्रम म्हळ्यार खातीर सगळे युथ ऑफ JSB टीम एक स्ट्रॉंग टीम कशें म्हळ्यार कोण खंय बसून असो तांकां लायव्ह वरात शिपाली वैद्याला ते कार्यक्रम जाता आसा लायव्ह वर तांणी खंय बसल्यार पळोवचें जाता ते एक कार्यक्रम आमगेले युथ ऑफ JSBचे मंगलपाडी सुमन शेणे तशेंच नरेश प्रभू चेतन कामत आनी तांगेले वट आमगेल्या नम टीव्हीच्या नागेंद्र आसा व्हिडिओ परमनंट करतले आमगेले संतोष आसा तशीच आमगेलो अनिरुद्ध आसा मागीर सुदर्शन आसा मागीर आनी एकलो व्हिडिओ करतलो रमेश आसा रातपल्ली बेसून तांणी चंद रितीर कार्यक्रम चांग जावका स्वामेले आमगेले गुरुले देवाला आशीर्वाद घेवन एक चांग कार्यक्रम चांग जावका म्हणाल खातीर तांणी आनी अविरत प्रयत्न तांगेले हे कार्यक्रम सगळेचे एक यशस्वी जावन जावच्याक आमकां खंडीत हे 100 जन हांव सांगला तशीच आमगेले हळेंगडे सुरेश शेणे हांगा वेवस्थापक समिती सदस्य आसा तोय आमगेले म्हापशेचे रांदेकाय जावका हे जावका ते जावका म्हणून सांगला फोन केला पुरो इमिडिएट येवता जाल्यार आमकां एक अवकाश कोन्न दिला सगळे रांदपाचे आमगेले कार्यक्रम संतेकट्टे गणेश नायक आनी तागेली टीम 12 जन आयलींची तांणी चंद रितीर केला तशीच विजय म्हणून हांगा बॉम्बे देखून आयलो आसा ताणें चंद करून केल्लो आसा आमगेले बायल मनीस मस्त जन वॉलंटियर्स आसा पचापात लटोच घे रांदेकाय सिंधूच घे पुरो कार्यक्रम केला म्हळ्यार अंतिम कसं मेसेज म्हळ्यार पुरो जन समाजाच्यान ಒಟ್ಟು जावन ऐक्यमत्यान काम केल्यार ते आनी चांग मनान काम केल्यार आमगेलें इंटेंशन चांग आसा म्हण जाल्यार ते खंडीत कार्यक्रम सक्सेस जाता आज तुमी पळयता आसाची इतले व्हड सक्सेस जावच्याक आमगेले देवाले स्वाम्याले आशीर्वाद प्लस आमगेले ऑर्गनायजर्साले चांग इंटेंशन मन हाका मूल कारण ताका म्हळ्यार आमी देवाल स्वाम्याले आशीर्वाद नातील कसले करूं जायना आनी ते काम करतले आमगेले कसन ते ऑर्गनायजर्स की तांगेले मन आसता ती समजला मात्र ऐक्यमत्यार काम केल्यार
खंयचे एक कार्यक्रम भारी विजृंभणेर जाता, भारी सक्सेसफूल जाता, हे आमकां एक एग्जाम्पल. मुखार सून असल कार्यक्रम आमी करूं आसा म्हण प्रतिवर्ष. हे मात्र न्ही, आमी काश्मीर स्टुडंट्सांक काश्मीरांत मस्त आमगेल्या देशाचे हिंदू जावन अशे बरो, सिख जावन अशे बरो, बुद्धिस्ट स्टुडंट्स जावन अशे बरो मस्त जनाक तेन्नाचे 1993 इसवेंत मस्त प्रॉब्लेम जाल्लो, तांणी मायग्रेट जालें. तांकां आमी लास्ट टायम स्कॉलरशीप दिलेलें. ह्या वर्सा सादारण 200 जनांक आमी स्कॉलरशीप दिता आसाची. खाली हे मात्र आमी कॉन्फरन्स करचे मात न्ही, ते आमी उलोवच मात्र न्ही, ते एक ग्राउंड रियलिटी हाड काम म्हणलें खातीर आमगेले फामेले ते इच्छा त्याचे प्रकार आमी चलता आसाची. आज ही स्कॉलरशीप वणटा आसाची, प्लस तांकां ऑनलायन स्कॉलरशीप पेटयता आसाची. आमगेली ताका म्हळ्यार आमी सांगलां म्हळ्यार तवळी सांगलां म्हळ्यार जी खाली आमगेले संकुचित मनोभाव न्ही, आमगेले आमचे गेले मात्र दिवचे तशें न्ही, सगळ्याची देशा खातीर आमी कसले करता म्हळ्यार एक मना दवरून घेवन करता आसाची. म्हाका भारी संतोश जाता आसा. नेक्स्ट इयर हे कार्यक्रम आमी ऑलरेडी आतां डिसायड केला. नेक्स्ट इयर हे कार्यक्रम गोवांत करता म्हणून. ते डेट फायनलायज जाता आसा मार्च 2024 गोवा करता म्हणून. प्रायशः हाजे पयशे चड संख्या जन ते येतले, सारस्वत मस्त जन येतले जी. आनी मुखार सून आमगेल्या कार्यक्रमांत चांग रितीर वैभव येवन आमी एक जनस्पंदन करता तशी, आमगेले समाज स्पंदन करून देशा खातीर कसले करता तशी, आमगेल्या आर्मी खातीर सपोर्ट करता तसले आमगेले कसले कार्यक्रम जावका म्हणून सांगून हे यूथ ऑफ JSP जाल्यार वर्ल्ड वायड पळयता आसाची. तुमी आमगेले सहकार दिवका. तनु मना धन, खाली धनांत मात न्ही, तनूंत जावतात. कितले जन वॉलंटियर्स आसाची, तांणी तेंगेले गांवांत दुखून हे काम करता आसाची. तनु मना धनांत तुमगेले आमगेले संपूर्ण सहकार दिवका. आनी एक संस्थे आमी आज स्वामीला आशिर्वाद प्रारंभ केला. हे संस्थे मस्त एत्तराक वच्चाक तुमगेले सहकार जावका म्हणून सांगून हांव तुमकां सर्व जनांक आमगेले नमस्कार करून दोन उतरां भेट. धन्यवाद. सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन ज्ञान मेळटा असल्यार आनी कडेन आमगेले पोट्टाक आहार मेळ्ळो त्या एक आमकां शक्ती दिवता तसले एक विचार तशें हांव ह्या पुरा विचार हे कडेन कार्यक्रम येताना अतिथी सत्कार म्हण आसता तांगेलें खाण जेवण कितलें लायक आसता तितल्यांक एक मनाक तृप्ती जाता त्या पुरा पळोवंक जाल्यार एक ताका एक टीम आसता त्या टिमाक लिडर्स आसाची तांगेले एक आमगेलो सोमेश्वर राघवेंद्र भक्ता तशीच वाशील करून महेश पै तांगे लिंबुव्या खंयची तयारी 2 दिवसांत तो तांकां जल्लल आसा मागीर खाण जेवण कशी प्रिपेर करतना आनी हे 2 दिवसांत तांगेलो एक अनुभव कसो म्हणून नमस्कार रागणा कसं म्हणटा नमस्कार
आम्ही कसं अपेक्ष पावला ताज्या पशी चड आज जन जाल्ले मागीर ಖಾಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆತಕ್ಕೂ ಸಾರಸ್ವತ ಬಿಕಾನೇರ್ ಅದಕ್ಕೂ 350 ಜನ ಐನಿತಿ ಆಜಕ್ಕೆ 1200 1300 ಪೇಟಿ Request all the delegates to be seated, please. I request all the delegates to be seated. कृपया सभी अपने अपने स्थल पर बैठ जाइए. अभी नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा. जो भी बाहर फूड कोर्ट में है तुरंत अंदर आके अपना आसन स्वीकार करना. एक मक्षी कसं एक कोर कांबळा प्रकार एक पोळी तयार केलेलं असं आणि कसं नाही उणी पडचनज म्हणून एक शमाई आणि दनपारचंतू आप्पी पायसू सकाळांक गोत्तशिलेची प्रकार एक दूधदान करचे आप्पी पायसू आणि घी राईस ಒಟ್ಟು एक ग्रेवी काजू वटाणा घालून त्याची एक पुरं जैन ग्रेवी पंजाबी स्टायलारी जेवचे असं आणि कडगी चक्को आमची गेला आयटम अंतू भारी फेमस आयटम कडगी चक्को. कडगी सिजनाक राखून असता ती कडगी चक्को खावच्याक. सो कडगी चक्को आणि कुवाळ्याचे कसं नाही आमची गेला आयटम अंतू कुवाळे म्हळ्यार प्रति एक लायक प्रोग्रामाक कुवाळे एक शुभ संकेत म्हणटा तशी कुवाळ्याचा साम आणि दाळी शीत सारू त्या दाळी आमची गेले जेवका दिची तशी दाळी तोय आज दाळी तोय जागारी आम्ही नवे एक्सपेरिमेंट म्हणून दाल तडका जैन दाल तडका म्हणून करता आसा ती आणि दनपारचे जाल्यार तशी संजवाळच्यान तो आजी बेबीकॉर्न रवा रोस्ट तशीची अशे स्वीट्साच्या गेले एक स्वीट्स असता आणि नाईट डिनरांतू रसमलाई म्हणून एक शेया स्वीट्साचे एक फेमस आयटम आसा तशीची आमगेल्या फुडांतू कसं नाही एक वेरायटी कोरका म्हणून आसा ती तशीची आईचे येदोळवरेचे प्रोग्राम बारी आम्ही लेखिले भशी बारी चंदायर जाता असं लेखिले भशी लायक क्राऊड आम्ही हांगा आजी पळोवचे मेळ्ळेले आसा गांवां दाखून बॉम्बे दाखून भायर दाखून आम्ही लेखनालेले प्लेस दाखून समेत जन आयले आणि एक टीम म्हळ्यार एक राजस्थान दाखून एक सारस्वत राजस्थानी ज्यांनी काल येवन एक प्रोग्रामाक बारी चंद काणसून दिल्लेले आसा तशीची बारी चंदायरी प्रोग्राम चलता आसा म्हणून सांगच्याक इच्छा पावता. देव बरें करूं. धन्यवाद. हरिद्वारांतू या जातशे आमगेल्या विश्व सारस्वत संमेलन हांगा 2 दिवसाक 1000 इतली जन येतात. तांतू ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवता जाल्यार सोयरे आसा पुरो ना डेलिगेट्स आसा पुरो तांणी पुरो हांगा येतरी तांकां राबची वेवस्था आसा पुरो ना तांकां दिवचें रजिस्ट्रेशन जावचें आसा पुरो ना तांकां किट दिवचें आसा पुरो तांगेलो फोन नंबर घेवचें आसा पुरो रजिस्ट्रेशन पुरो करता जाल्यार एक प्रोसेस आसपाक त्या बारी एक नमुन्याची चंद रितीरी क्रमार जाल्यार अरे मकरचे पुरो कार्यक्रम त्या जना ना तांगे डेलिगेट्साचे गेस्टाले आराम जाता. तशें हांव रजिस्ट्रेशन कावंटरांत कोण आसता तांगे जबाबदारी मस्त व्हड आसा. तशें हांव तांणी ते एक यूथ टीम बशिल्ली आसतना तांणी ते कशी रिसीव करताचे आयल्यांक त्यावे बारी मुख्य अतिथी सत्कारा म्हणजे आमगेले एक समाजान तो चोलनेलो एक विशय त्या पुरा पळोवन घेतिल्ल्या एक टीम आसा त्या टिमात दोग जन आमगे आसाची एक संजना आणि 2 दिवसांतू खंयचे रितीचे जनाला डाऊट आणि परिहार केला आसा. नमस्कार संजना, कसं म्हणता? आम्ही एक 2 दीस पुढे आयलांची कसं म्हळ्यार आमगेली एक टीम आसा 6-7 जनांची टीम आसा तशी फूल डिजिटलायज्ड माधवणान फस्टाकची 2-3 म्हयने पुढेच ते तांगेले विश्व सारस्वत फेडरेशना वेबसायटार एक पेज सोडलेला तांतू कसं म्हळ्यार फॉर्म शे कोण पुरा येता तांकां कितले दीस एकोमोडेशन जाय त्या पुरा त्या फॉर्मा फिल करपाक आशिल्लें आमगेले एक बॅक एंड डेटा आशिल्ला कोण येता म्हळ्यार कितलो अंदाज हो म्हणून सांगून एक जनाले लिस्ट आशिल्लें आमगे लागीं. सो आमकां रजिस्ट्रेशन करच्याक मस्त भारी सुलभ जालें त्या विशयू
तशीची कोणे आयले कुडले आमी एक तांगे नंबर सोदून म्हळ्यार एक्सेलच पुरा बट नंबर सोदून तांतू तांणी आसा की म्हण तांगे हायलायट करून तशी तांकां एक डेलिगेट किट आशिल्लें सुमार बग आशिल्ली तुमी पळोवन आसता पूर काल व्हिडिओन तांणी तशी तसल एक डेलिगेट किट प्रति एकल्यांक दिला तांतू एक सॅनिटरी बॅग एक पॅड एक पेन सुमार पुरा विशय आशिल्लो तांतू तशी एकोमोडेशन तशीची सुमार हरिद्वार म्हळ्यार पुरा जनाल गांवांतल्यान मस्त दूर तशी सुमार एक एकोमोडेशना व्यवस्था आशिल्ल्या तशी आमगे रजिस्ट्रेशन कावंटराक येत तशिल्यांची सुधीर माम म्हणून ताजी इन्चार्ज ताणें ताका फोन करून आमी त्या कोऑर्डिनेट करता तशी 300 जनाल एक टीम 50 जनाल एक टीम 15 जनाल टीम 20 जनाल टीम अशी टीम करून विंगड नाना राज्यातल्यान मस्त जन आयलांची काली फुल्ल जन आशिल्ले म्हळ्यार फर्स्ट डे नव्हे सकाळ म्हणटाना भरपूर जन आशिल्ले हांगा तशें तांकां पुरो जनाक एक किट दिवचे तशी रात्रिताय आमी बसून आशिल्ले हांगा कावंटरार रात्रिताय सुमार 150 लोक एक ट्रेनार येयले जन राजस्थानांतल्यान राजस्थान सारस्वत राम सारस्वत सुमार नमन्याचे आमकां येवन हांगा सुमार विशय कळ्ळ्या राम सारस्वत म्हूण आसा तशीची सुमार नमने सारस्वत आसा म्हूण जावन आमकां कळ्ळें आमी गौरव सारस्वत ब्राह्मण तशीची विंगड नमने सारस्वत आसाची तांकां मेळूंक हांगा अवकाश मेळ्ळा तशी तांकां रजिस्ट्रेशन करता नवे नवेचे आमकां शिकूं मेळ्ळा तशी 7-8 जन म्हणटना एक ग्रूप शे प्रति एक कोऑर्डिनेशनार जावका तशी त्या जातना आमकां म्हळ्यार एक बारीक खुशी जाल्ले हांगा येवन काम करचें म्हळ्यार हरिद्वार सोम्याल मठ पळोवच्याक भारी चंद आसा तुमी पुराय येयाची एक वेळा आम्ही सकाळतुल्यान एक टीमशे काम केला आम्ही पुरा जन ओटू वचून जना हँडल करचे आम्ही नवे नवे शिकल्यांची आम्ही फूड अशी म्हळ्यार आतां नवे नवे एक्सपिरियन्स जावन आमकां मस्त खुशी जाला आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा म्हणून काम आमकां हरिद्वार येवचें मेळ्ळें एक व्हड भाग्य ताजे मध्ये काम करचें म्हळ्यार आनीक मस्त इश्ट पुराय जनाक मिगल हांव मैत्री एम्पाई हांव मालपेतल्यान मस्त खुशी जाली येवन देव बरें कर थँक्यू एक कार्यक्रम यशस्वी जावंक जाल्यार ताजे मागशी मस्त जनाला एक सहकार जावंक जाता तांतूय मुख्य जावन आमगेले भोजन गृह म्हणून येतना ते काही किचन आसता ते पुरा तयार करता म्हणजे एक व्हड सवाल ताजे विशय उलोवच्याक आतां आमगे कानेगडाचे गुरण्ण आनी मुंबयचे नितीन आसा निमगूय तांगेले खंयचे रीती तांणी तयार केले म्हणून गुरण्ण नमस्कार कसं म्हणटा रांदप्या विशय म्हणटाना एक तयारी आमी पळयला तुमी 2 दिवस तुमी ते बैसून तुमी आनी महेश अण्ण आशा पुरो ना सोमेश्वराच्या रागण आशा पुरो तांगेले पुरो तयारी आमी पळयल्लो आसा तुमी रात्री ते बैसून ना फूल डे कसा करका पाय कसो करका म्हण तशें ते एक प्लॅन कशी चोलन आयले सर्वांक नमस्कार हे प्लॅन कशें जालें म्हणून सांगल्यार आमगेले राग अण्णा सकाळी दुखून रांदपा कुडांतू आनी महेश अण्णा वाशी दुखून सकाळी दुखूनची हे अरेंजमेंट पुरे करता आसाची कितले जन आयल्यार तांकां कसले उण येनाशी सकाळ दुखूनची आमगे गांवांत दुखून 10 रांद पेयले आसाची तांणी पुरे जनांनी येवन सकाळ रात पले न्हिद नाशी तांणी सक्कट जनांनी काम करून तशीच आमगेलो कोडेलचो रमेश मामू श्रेया स्विटाचो ता जाल्यार येवन सकाळ दुखून रात येवन काम करून कोणाकय आयिल्ले जना कसले उण जायनाशी हे पळयता आसा मागीर सक्कट अरेंजमेंट केलेले आमगेले नितीन अण्णा नितीन अण्णाय त्या विशय भारी हाजेर पळोवन घेता आसा सांग नितीन अण्णा नमस्कार केश म्हणल्यार हें विश्वसारस्वत संमेलनान ना म्हणल्यार एक 800 देखून 1000 जन आयल्यान ती विभिन्न भारताचे जाग्या देखून आयल्यान ती कशी आमगेले सरस्वती न्हय गुप्त म्हणटा ती तशी आमगेले सारस्वतांतुले एक गुप्त मंडली म्हणल्यार वॉलंटियर मंडली म्हणल्यार राजस्थानाचे एक 350 जन राजस्थान देखून आयल्यान ती आनी तांकां भारी गमत जाल्ला हांगाचे
और एक और दो 3 लो आप ले लो दिए तो यार प्रोग्राम चालू हो गया No, he's not there. Hello. 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 हेलो एक और दो Hello. 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 Check. Guru. न महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम 2 दिन आए, हमने बहुत चर्चाएं सुनी, हमने बहुत लोगों के विचार सुने, लेकिन अब आगे क्या? अब हम आगे का रास्ता कहाँ तय करेंगे और हमारी जो युवा पीढ़ी है, सारस्वत जो युवा पीढ़ी है, उनको हम इस धारा में कैसे लेके आएंगे, ये हमारा आज का विषय है. एंड आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल. एवरी पैनलिस्ट इज an authority in his or own subject. So I am going to ask a variety of questions tailor-made to each one's expertise, and we'll take it from there. But first, I would simply like to move from leftmost to rightmost. So starting from Ajit Pai ji and ending with Pradeep Bhai, I want to ask you first question, which is common to all of you. Please answer in 30 seconds or 1 minute. The question is, what does being Saraswat mean to you? And I'm asking this because it can set the discussion in context. Please start. Thank you. I think the foremost feeling is one of a shared heritage and a shared culture. One thing that I think I remember reading, is that ultimately what defines all of us and what we do at some level goes back to our roots. To me, being a Saraswat hence is how centuries of what our ancestors went through influenced where we are today and what we do. थैंक यू वेरी मच. मेरा बस एक ही विनती है, सारे पैनलिस्ट हैं, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में बात कर सकते हैं. हिंदी में बोलना है तो स्वागत है, अंग्रेजी में बोलना है तो भी स्वागत है. तो वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद. According to me, Saraswat is a way of life, and we should aspire to be a role model for other communities. वेल सेड सर. सरस्वती के पूजक, ज्ञान के पूजक, और इस ज्ञान से हम सिर्फ हमारे समाज को ही नहीं लेकिन सभी भारत को उजागर कर सकते हैं. गुरुभ्यो नमः. Good afternoon, everybody. So I am basically finding very lucky to be born in Saraswat family, because we have learned a lot of values which our forefathers, which our grandparents, which our father, everybody has taught us. That makes us very proud, and
Our wish is to, the same is to give it to our children so that they will take the values for further. That's what I can say. थैंक यू। नरेंद्र जी। Namaskar. I am very proud that I am born in a Saraswat family, and to be confident to go ahead, always we need a good history and good guidance and the capability. We have a fantastic history, and then we are guided by good gurus. In the same place we are here, this Sammelan is happening in the same place, and talent is inborn. Everybody is blessed with one or the other form of talent, and we have to put lot of efforts to go ahead. And to begin with, all Saraswats are good listeners. You people have to prove it. Thank you. नमस्कार। सारस्वत अपना जान है, और आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, कल सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया, जैसा सारस्वत एक खाली कम्युनिटी नहीं है, ये जो हम जो सिखाने जाते हैं कि वो सारस्वत कल्चर है, जिसमें बहुत सारे तरीके के हम लोग गोत्र से बटे हुए हैं, और स्पिरिचुअलिज्म बोलो उसमें है हम लोग, और कई बड़े वैज्ञानिक लोग भी सारस्वत में जमेले में है। मतलब सारस्वत ऐसा ही एक कम्युनिटी बोलने से अच्छा मैं ये बोलूँगा, सारस्वत अपने आप का एक आइडेंटिटी है। बाकी का मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, बट सारस्वत है ही एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग गर्व है उसके लिए। वयं सर्वे सरस्वती पुत्राः। सरस्वती ज्ञानस्य प्रतीका। तदर्थम् अस्माकं सर्वेषां दायित्वं ज्ञानपरम्परा वर्धनं। प्राचीनभारतस्य ज्ञानपरम्परा विश्वस्य प्रकाशदानं। भा प्रभा विभा प्रकाशः भा याम रतम् इति भारतम्। वयं सर्वे सारस्वतपुत्राः भारतपुत्राः अपि। सर्वत्र भारतीय ज्ञानस्य प्रसारः अस्माकं सर्वेषां दायित्वम्। We are blessed by Goddess Saraswati. As Narendra also said, we are proud to be born as a Saraswat. We have all the qualities of good life, good entrepreneurship, everything in our community. Only the way, we should think of cultural exchange between all the Saraswat across the country. धन्यवाद। अभी मैं मुख्य डिस्कशन की तरफ जाती हूँ। हमारा डिस्कशन है कि हम सब तो जानते हैं कि सारस्वत होना कितने बड़े गर्व की तो नहीं करूँगी, लेकिन ऑनर की बात है, और व्हाट डज इट मीन टू ईच वन ऑफ अस। बट हमारा डिस्कशन है कि ये धरोहर हम अगली जनरेशन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और कैसे हम हमारी अगली पीढ़ी को इस धारा प्रवाह में सम्मिलित कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न दीपक आपसे है। पहला प्रश्न, अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो भी यंग लोग हैं वो शायद अभी भी हम बात कर रहे हैं तो अपने डिवाइस में कुछ सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी चेक कर रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं हमारी युवा पीढ़ी को इस मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ये जो शेफाली जी ने अभी पूछा है सवाल, टेक्नोलॉजी ज़रूर हम सभी को जुड़ने वाला एक मात्र है। आज हम लोग सब इधर इकट्ठे हुए हैं, ये एक टेक्नोलॉजी के वजह से ही हम लोग इकट्ठे हुए। ऐसा नहीं कि पहला जैसा हम लोगों ने इनविटेशन बनाया, घर घर पहुंचाया, ऐसा नहीं था। ये एक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, और इस टेक्नोलॉजी को और आगे कैसा बढ़ाएं और हम ये युवा पीढ़ियों तक कैसा पहुंचाएं, ये पैनल का एक मात्र भी है। इसे हम लोग बात करते करते हम लोग को ये सोच आया, हम सब सारस्वत मिलके कैसा इसको आगे बढ़ाएं। मतलब काम हो, जैसे हमारे
कम्युनिटी में एक दूसरे को हाथ बटा के, जैसे अभी राजस्थानी भाई बहनों से हमारा बातचीत हुई, उन्होंने बोला उनके इधर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। उन लोग सब अपने सारस्वतों का जितने भी टेक्नोलॉजी वाला कंपनीज है हमारे जुड़े हुए, बहुत सारे अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ सकते हैं हमारा कर्नाटक में। वैसे ही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के भी जगह है, जैसे आईटी इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटल है, हमारे पास फार्मा है। इस सब में अपन एक दूसरे को हाथ बटा के आगे बढ़ेंगे तो युवा पीढ़ियों में अपना सारस्वत कल्चर भी आगे बढ़ेगा इसके साथ साथ, और हमारा कम्युनिटी का नाम भी आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी बढ़ोतरी, मतलब हमारे पास इतने आईटी कंपनीज के साथ हम जुड़े हुए हैं शिफाली जी, उन माध्यम से भी हम सारस्वतों को एक मंच पर लेके आ सकते हैं। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। वी कैन डू दैट। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। अभी मुझे समाचार मिला है कि श्री संजय शर्मा, काशीनाथ शर्मा, निवासी गांव अच्छन, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर, वो एटीएम गार्ड की नौकरी करते थे। आज आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके बड़े भाई श्री भूषणलाल शर्मा पुरोहित का काम करते हैं और गाँव में बस एक ही ये हिंदू परिवार रहता है। दिस फैमिली वॉज सपोर्टेड बाय काशी मठ सिंस 2021। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कॉन्डोलेंसेस और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर दें। प्लीज स्टैंड फॉर 30 सेकेंड्स। अब बैठ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे पहले यहाँ सुबह में जो पैनल डिस्कशन हुआ था, वहाँ प्रवीण कड़ले माम जी ने एक बहुत अहम बात की थी। उन्होंने बोला था कि कम्युनिटी को एज अ होल, जिसमें इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें इतने सारे एकम्प्लिश लोग हैं, बैंकिंग में इतने सारे लोग काम करते हैं, तो क्या हम ऐसा माहौल नहीं तैयार कर सकते कि सारस्वत कम्युनिटी के जो युवा हैं वो चाहे उनको नौकरी में सपोर्ट मिले, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसी कोई जगह हो, या फिर उनको बैंक्स की तरफ से उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, स्टार्टअप कैपिटल, सीड कैपिटल प्रोवाइड किया जाए। मैं पूछना चाहूँगी ये प्रश्न श्री उदय कुमार गुरकर जी से, क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं, आप बैंकिंग में हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे युवाओं को हम इस धारा में ला सकते हैं? क्योंकि ऐसे जैसे कहा है कि धर्मस्य मूलो अर्थ, जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक बाकी कुछ जगह पे नहीं बैठेगा। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? You see, I'm basically from SVC Cooperative Bank. This was started in 1906. 116 साल पहले ये बैंक एस्टैब्लिश हो गई थी। तभी यही प्रॉब्लम था कि जैसे लोग मैंगलोर से आ रहे हैं, साउथ से जो आ रहे हैं, बॉम्बे आ रहे हैं, उनके लिए घर लेने के लिए नहीं तो इवन फॉर बिजनेस फाइनेंस का ज़रूरत होता ही है। विदाउट फाइनेंस नोबडी कैन स्टार्ट अ बिजनेस। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इन द ईयर 1906, Rao Bahadur Talmaki started this bank under the name of his mentor, that was Shamrao Vittal Kaikini. So SVC stands from Shamrao Vittal Cooperative Bank. And we are still 116 years, we have grown, basically giving, loans and advances to many of our community people, not only many of our community people, even other people. That's the basic purpose of starting this particular bank. Even today, in terms of employment, we normally give preference to Saraswat, that much I can tell you. And those who have already either working in the banking area, where we can make use of their knowledge and experience which they had in other banks. So when we employ them, at least we learn from them also certain new things which they have learned in their whatever the earlier wherever they have worked. So bank is always open
to people as long as their financials are slightly better, because everyone has to put their seed capital, initial capital they have to put. So followed by that, if your business proposals are good enough, SPC Bank always will be there. Not only SPC Bank, there are also Saraswat Bank, which is also from our same community, and also North Canara Gaur Saraswat Bank, which is known as NKGSP Bank. They are also all are in the cooperative sector only. You can imagine that the vision of those people who started the bank to help our own people. So people are welcome to us. We can always look at their financial requirements and help them in taking forward their business areas. That much I can say. Thank you so much. My next question is to Ajit Pai. You built up a very successful courier business at a time when the field was already saturated with big names like Blue Dart, DTDC, but then delivery came and basically disrupted everything. So my question is, how do you encourage other people to be like you, to come up with disruptive ideas, especially the younger people? And could we have something like a Shark Tank for the community, where people would come and pitch their ideas, and then the industry mentors could help them? Could something like this be done? No, I think absolutely. I think that was actually one of the topics I wanted to talk about today. If you look at the history of our community, and I'm just referring to the Mangalorean Saraswat community because I'm more familiar with that. 150 years back or 120 years back, our community was a pioneer. Yes. We pioneered banking. Banking as an industry was pioneered by us. And not just did these people build up the banks, but they created a situation where basically banking was made available at the doorstep. That was true, in a sense, true innovation and disruption at that point. So I think that seed of innovation and disruption has always been there. I think at some level the community took a back step so far as entrepreneurship in business is concerned. And I think the good news now is that in the last few years, in line with obviously how India has also, as an economy changed, the youth is coming back to that. To your question, I think, and there are many people here who can possibly add to what I say, but what I would encourage every youth to do is before you, and sure, you should go and work somewhere, possibly gain some experience, but I think if you can create one job, yes, in addition to your own livelihood, I think that is the seed of development. That is how a community actually develops. No, a community does not develop by by people just working, but actually develops by enterprises where other people are employed, where where employment is created not just for the staff but also for other associated people, distributors, agents, that is how the sort of the what is a seed becomes a tree, right? And to your question, I think absolutely, I think there is a need. I would say that today all of the ingredients for this are available with us. We have thinkers in the community, we have industrialists, we have people who are adept at finance, we have people who can mentor. We have people who are enthusiastic to start businesses, right? I think where an organization like this can play a part is to bring all of this together into a platform where you call it a Shark Tank, we call it a seed fund, whatever you call it. Fundamentally, there are two things. One is encouragement, confidence. 90% of the problem is solved when somebody is confident that they can solve a problem. I just want to end this by referring to the first point that you asked, saying, how did delivery establish itself in a field where so many others were already there? I think the answer to that is that we were confident that there was a problem that we could solve better than whoever was there and doing it. And that was the confidence which took us there. I want to
point that out, which is that more than money, I think that confidence is required, and where I think the youth, where the community can play a role is to give the youth that confidence that we are behind you. Go ahead, do what you have to do. There will be failure, okay, but in the roots of that failure is actually where you will see a lot of success. So that is my my 2 cents on this. Thank you so much. My next question is to Narendra Nayak ji, because it kind of is a spin-off from what Ajit Pai has said, that even to be a successful entrepreneur or even to disrupt the existing status quo, you need to have a very strong educational basis or educational background. And Narendra Nayak ji has been working in the field of education, and he runs a very successful coaching class. Now my question to you is actually, there are 2 questions. One is, are you considering starting civil services coaching? Because that is one thing that we need to encourage, कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो अगर गवर्नमेंट में जाए, वो अगर ब्यूरोक्रेसी में जाए, तो पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है. ऐसा नहीं कि सारे काम हो जाएंगे, वो नेपोटिज्म हो जाएगा, लेकिन हमारी तरफ, हमारे प्रश्नों की तरफ देखने का एक नज़रिया ज़रूर बदल सकता है. तो क्या ऐसा हो सकता है? और दूसरा, what role do you think that education and education policy has to play for Saraswat youth? See, first of all, one need to be very serious about the mission. Everybody is gathered here with the intention that we have to do something. We have to be united together. We have to be a role model for others, so that they can also come up. We can contribute something in different forms. First and foremost step is, everybody has to listen effectively. It should not look like a government school where the teachers are teaching and students are talking to each other. This is the first requirement. According to me, the very qualification to sit on the chair, let it be this one or there, is to listen effectively. We started with a coaching class in 1986. But coaching class can mostly it can train the students. And subsequently in 2007, we started with the pre-university college. All the students are science learning students. And throughout my educational career of 37 years, I have seen the students of the age 16, 17, 18. All of them are science learning students all these years. Now, the question is how they can contribute to the economy in the future. They're all coming with a mission. Sorry, I will take a little more time to complete that. Youth power. Dr. APJ Abdul Kalam was consistently telling that India's future is in the youth power. And we are very proud that India has got the youth compared to other nations. But again, the worrying factor is there are 2 kinds of youth power. One is useful youth power, another is useless youth power. Seriously, I am telling. Whether you like it or don't like it, I feel that it is a fact. What do you mean by useful youth factor? Everybody is on a mission. Kuch karke dikhana hai. They have a motive. This is the age and stage where we have to study well. And if we study well, in future we will have a bright opportunities. So this is called useful youth power. They are very serious on the mission, hardworking, not wasting much of the time. Then useless youth power means, in the name of going to the school and not school, mostly when they go to the school they listen. When they come to the 11th, 12th standard onwards, they start not to listen to the parents or anybody. At least 50% of the youth. But a lot of money is invested in their education, but they are not serious on their education. Just when the exams are fast approaching, just for the sake of passing in the exam, if they put last minute effort,
according to me, it's not useful youth power. What do you mean by youth power? Useful youth power means at that stage and age, what they are supposed to do, they have to do it very seriously. Otherwise, it is useless, according to me. So, see, Saraswat community, we means we being the parents and elders, we have to guide our youth that you have to be serious. Most of the time, it will be opposed, but we must know how to handle that opposition. If we do that, the youth power will be a useful youth power. And coming to the answer of UPSC exam, what they could do. As Mr. Pai said, the seeding has to be done, the seed has to be put when they are at the age of 13, 14, 15. And most of the IAS officers, I have spoken to them, not only here, elsewhere also. Some of them are my students, not many, few of them. They say, we thought of doing UPSC exam, cracking the UPSC exam, when I was in third year engineering and fourth year medical. By the proper efforts and proper guidance and lot of hard work, lot of focusedness. And this seeding has to be done at the age of 15, 16, 17. And we are already doing it, but in a large scale, if at all we have to do it, Saraswat IAS, IPS officers have to come forward and do it in not only in our school and college, everywhere. Choose the Saraswat community students and motivate them. If that motivation comes, at least 10% of them, if they become IAS, IPS officers, it is much, much better than what is it right now. And I would request the Vishwa Konkani Kendra, Mr. Nandugopal Shanay is there. Instead of going to the individual colleges, Mangalore taking as the center, for example, nearby schools and colleges, the students of the age 14, 15, 16, 17, all of them can be brought together in that 2 days camp or 3 days camp. These Saraswat IAS, IPS officers, they can come and motivate, not only IAS, IPS, there are IRS officers also. And today we have seen one Mr. Shanay, who is IFS also, Ranjan Shanay. So such people have to come and motivate. I have requested Swamiji, Sayamendra Tritu Swamiji about this when Shri Swamiji had visited our campus. And he said it's a good idea. I will put a word to those officers. And you also try your level best. It's not only that they will motivate. All the parents and all the elders have to motivate the children. You have to do IAS and IPS. Tell it repeatedly, and how to do it also you guide them. I think this is the only way where we can be better than what we are right now. Thank you so much. My next question is actually to Nangopal ma'am,
who heads the Vishwa Konkani Kendra. Now we see that कि यहाँ पे जो सारे सारस्वत आए हैं वो कम से कम 10 राज्यों में से होंगे. उन सब की भाषा अलग अलग है. कोई कोंकणी बोलते हैं, कोई कन्नड़, कोई मलयालम. लेकिन हमें ऐसा लगता है, खासकर दाक्षिणात्य सारस्वतों को, कि जो कोंकणी बोलने वाला है वही सारस्वत है. मतलब लगता था एटलीस्ट कुछ समय पहले. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं विश्व कोंकणी केंद्र की तरफ से कि कोंकणी को हम एक सेतु बना दें सारे सारस्वतों को इकट्ठा करने का? और क्या विश्व कोंकणी केंद्र ऐसे कोंकणी कोर्सेस या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकता है कि जो उत्तर भारतीय सारस्वतों के लिए हो, वो आ जाएं, वो मैंगलोर में रहें, वो विश्व कोंकणी केंद्र देखें और वो कोंकणी सीखने का प्रयास करें और उनके साथ हमारे जो बच्चे हैं वो भी घुल मिल जाएं, तो जो कल्चरल एक्सचेंज है वो तो विनाशायस होगा. तो ऐसा कुछ विश्व कोंकणी केंद्र कर सकता है? You may be knowing, Konkani has been added to 8th schedule of Constitution of India in 1992, and we have already completed 30 years now, over 30 years. In Konkani community, there are more than 42 dialects. 42 dialects represents 42 different cultures at their individual level, of which 40 are Hindus. 41st is Roman Catholic and 42nd is Bhatkal Navayat. So let's speak about 40 Hindus, Hindu dialects. Out of 40 Hindu dialects, approximately 15 belong to Saraswats. Approximately 15. There can be little more or less. So 15 are Saraswats. So World Konkani Center, Vishwa Konkani Kendra, has already taken up the cause of strengthening the youth since last 12 years by taking up the cause of educating them in engineering and medical field, and since last 2 years in CA education also. This is the current position. And in the last 12 years, a scholarship of around 32 crores has been disbursed, non-returnable scholarship of 32 crores has been disbursed. I think 15 Konkani speaking Saraswats are beneficiaries of this, and today we have 1,800 alumni who are occupying largest companies, and last year we got an alumni pledge of around 75 lakhs for scholarship. That shows youth is participating in our initiatives because we have mentored them during their youth time. And Chanakya once said, treat grown-up children as your friends. Vishwa Konkani Kendra is perfectly following this. Our majority strength are almost 100% youth. Of course, language and culture, these things are there, but we are mainly taking care of our future generation. Besides this scholarship, we have already taken up the initiative for identifying gifted child by tying up with a particular All India institution. Upon passing of an examination, by scoring 99 percentile points or above, that child is treated as a gifted child. Last year, we conducted an exam and we have identified 2 students of 8th standard, and we have started mentoring them in their field as per the institution which is partnering with us. Last 6 months back, for those who are repeatedly failing CA exams, think about this, not for the first time appearing students, repeatedly who failed 3rd time, 4th time in CA intermediate, we have given an opportunity to join one particular crash course of 12 days, residential crash course, and we have tied up with an institution, and the result is 41% success rate. When their success rate is less than 2%, because of this initiative of Vishwa Konkani Kendra, 34 students appeared and 14 have cleared. This is one more major initiative. And one more thing as far as youth is concerned, that is yet to be taken up. One particular theme, Gavayo. Gavayo means come back to your native place. This is not for the seniors. This is for the children in their teens, especially in high schools. Once in a year, during vacation, come to your native place, join with the local children of the same age, do some work in temples as a volunteer, see the place where your elders have grown up,
or their school where they have studied, or your elder's house, or once upon a time your house was there like that, and go back. This is the way we can connect our youth in our Saraswat movement. Otherwise, they are not coming back. They will be there forever in other places. This is how we can connect to our roots. And if by taking care of their education and mentoring, we have one more initiative of Kshamata, by which over 5,000 children, students, college-going students have been trained in the last 7 years by providing them soft skills. This is an initiative of one of our particular mentor, and this is an ongoing exercise for the last 7 years. And lastly, one live streaming studio has been set up 1.5 years back. It is exclusively conducting several interviews. Recently, some 18-20 Saraswat students have completed their CA finals. They were all interviewed individually by speaking whatever the way they have traveled. This is a live streaming in the today's digital world. This is what is required to reach out the world. This initiative World Konkani Center is doing, and recently we have inaugurated one center of excellence for empowerment of Konkani people, because I believe before reaching out the outer circle of influence, your inner circle of influence should be strengthened. Inner circle of influence is Konkani Saraswats for me, that which we are strengthening, and only upon strengthening of that, Madam, as you rightly said, we can reach out to next Saraswat level. Till then, I have to manage with our Konkani Saraswat, which I am doing holistically. Thank you so much. That is very, very true. And we always go from the known to the unknown, from the small to the big. My next question is to Shri Ajit Gunjikar ji. I want to know, see, this is a remarkable gathering. This is a huge sammelan with over 1,000 people participating and on a really large scale. But I don't see the participation of the youth in the way that it should have been. I don't see too many faces here who are younger than 25. So my question to you is, whether it is ESCO or whether it is Vishwa Saraswat Federation, do you have any plans of holding smaller gatherings which are targeted specifically for the youth? And the focus there could be different. It could be more activity oriented. It could be more, you could have physical games, you could have trekking, you could have many things. But specifically saying that this is upper age limit of this is 35. So are there any plans to have such gatherings, or are you willing to consider such gatherings? शेफाली जी, थैंक यू. बिल्कुल सही बात है. आज के इस सभागृह में 25 उम्र के नीचे शायद ही कोई होगा, लेकिन इस प्रकार की सभा में शायद मैं 50 के नीचे युवा कहता हूँ, और इस में भी ज़्यादातर लोग आना चाहिए जो आते नहीं हैं. यस, युवा के लिए आपने जो कहा, टारगेटेड छोटी छोटी एक्टिविटी होना चाहिए, वो ज़रूर प्लान में है. वैसे अलग अलग संस्था है जो समाज में है, सारस्वत समाज में, मुंबई में एंड इवन इन मैंगलोर में, वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं. ऑल इंडिया सारस्वत कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हम ऐसा करने वाले हैं. अब मैं थोड़ा और कुछ कहना चाहता हूँ इसमें. स्पेशली आपने जो पहले टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी इजाज़त हो तो पहले जो प्रश्न हुआ था कि टेक्नोलॉजी की सहायता लेके हम क्या कुछ कर सकते हैं. युवा यहाँ क्यों आएगा, हम लोग क्यों आए इधर? क्योंकि हमें सार्थ अभिमान है हम सारस्वत होने का. वो अभिमान कैसे आया? शायद हमें हमारा जो इतिहास है, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी है युवाओं से. क्या हम हमारी युवा पीढ़ी में ये कैसे उनको पढ़ा सकते हैं और उनमें हम सारस्वत होने का सार्थ अभिमान जगा सकते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं. वैसे 1972 में जब ऑल इंडिया सारस्वत कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, तब पहला जब सम्मेलन मुंबई में शिवाजी पार्क में हुआ था, वहाँ चारों मठों के मठाधीश वहाँ उन्होंने आशीर्वचन किया था. वैसे ही बाद में ऑल इंडिया सारस्वत कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड VSF
दोनों, क्योंकि मैं दोनों संस्था से जुड़ा हूँ, इस कार्य में लगे हुए हैं। ये तो महत्व की बात है कि हम लोग ऐसी तरह से इकट्ठा हो, लेकिन इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम हो सकता है कि कई लोगों को यहाँ आना हो तो भी आ नहीं पाते, समय की या डिस्टेंस ज़्यादा हो, दूर हो, आ नहीं पाते। दूसरी चीज़ ऐसी होती है, हम इस सम्मेलन के बाद एक दूसरे जुड़े रहना चाहिए, जो होना थोड़ा सा कठिन होता है। तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर पाएँ, इस विचार से एक संकल्पना आई जिसका उल्लेख हमारे श्री किशोर मसूरकर जी ने पहले सत्र में किया था कि एक ई प्लेटफॉर्म की संकल्पना है, जिस पर मैं एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, वो पहले 4 स्लाइड का प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उसके बाद मे आई हैव द प्रेजेंटेशन। इस संकल्पना पर काम जो करने वाले हैं, उस पर पहले हमने हमारे परम पूज्य श्रीमद समयेंद्र तीर्थ स्वामी जी का आशीर्वाद लिया है। नेक्स्ट स्लाइड। विश्व सारस्वत फेडरेशन और ऑल इंडिया सारस्वत कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों संस्था है। ये कार्यक्रम, ये जो संकल्पना है, उसे आगे ले जाने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये एक ई प्लेटफॉर्म, आज के युवा लोग कंप्यूटर में उनकी जानकारी ज़्यादा होती है, तो उनको ई प्लेटफॉर्म कहा जाए तो उनको जल्दी समझ में आता है। शायद हम लोगों को थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन ऐसा एक ई प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिस पर अलग अलग संस्थाएं जुड़ जा सकती है, जैसे कि अब यहाँ लिखा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, रिलीजियस मठ्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट। तो इसका बेसिक उद्देश्य क्या है कि सब सारस्वतों को, भले वो दाक्षिणात्य हो, उत्तर भारतीय हो या दुनिया में कहीं भी वैसे हो, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आना। नेक्स्ट। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम हमने सोचा है विजन। विजन का मतलब VI विश्व, S सारस्वत, I इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क, विश्व सारस्वत इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, ऐसा विजन नाम है। नाम से ये पता चलता है कि इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग समाज की जो संस्थाएं हैं, हमारे सारस्वत समाज की संस्था है, भले वो मुंबई में हो या अमेरिका में हो, दुनिया में कहीं हो, वो यहाँ जुड़ जा सकती है। नेक्स्ट। उसमें कौन कौन आ सकता है? कम्युनिटी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट्स, मठ्स एंड टेम्पल्स, शैक्षणिक संस्थाएं, धर्मार्थ काम करने वाली संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं इस पर जुड़ जा सकती हैं। नेक्स्ट। तो उससे क्या होगा? इसका संकल्पना ऐसी है कि हर संस्था इस पर जुड़ जाती है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद उस पर डाल सकेंगे। उनके जो वॉटेवर एक्टिविटीज़ उनकी हैं वो सब उस पर आ जाएगी। तो उसके इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन अच्छा होगा, एक दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग संस्थाएं क्या कर रही है और उसका हमें लाभ कैसा ले सकते हैं, इस पर से पता चलेगा। यहाँ से 1 to 1, 1 to many कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है। मुझे एक संस्था से संपर्क करना है, यहाँ से कर सकते हैं। मुझे ये कौन है उधर, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, जानने की ज़रूरत नहीं है, इस प्लेटफॉर्म से हो सकता है। वैसे मेंबर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन अवेल
बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम्स, जैसे अभी हो गया, बहुत सी संस्थाएं अलग अलग तरह का अच्छा काम कर रही है, जैसे कि हेल्थ में है, एजुकेशन में है, लेकिन बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। इस प्लेटफॉर्म से ये जानकारी होने में मदद होगी। पहले सत्र में डॉक्टर राम सारस्वत जी ने वही कहा था कि सब संस्थाएं वो जो इकट्ठा हो जाए तो उस पर बहुत उपयोग होगा। तो इस विजन प्लेटफॉर्म का वही उपयोग होने वाला है। और हर संस्था के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं उस पर उसकी एक्टिविटी भी इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो अलग सब लोगों को दुनिया में कहीं भी हो उनको इसकी जानकारी हो सकती है। सो बेसिकली जैसे सारस्वत चेंबर है वो हमने 2019 में नवंबर में चालू किया, 3 साल हो गए। अभी वहाँ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के बहुत से युवा व्यावसायिक और जो उद्योग कर रहे हैं वो जुड़ गए हैं। वैसे ही ये जो एक्टिविटी है वो अभी उत्तर भारत में भी उसका प्रचार होना चाहिए। उसकी ये जो ईट प्लेटफॉर्म पे, विजन प्लेटफॉर्म पे उनकी भी सब इंफॉर्मेशन होगी, और जिसको चाहिए उसको, जैसे सीड कैपिटल होगा, फंडिंग होगा, बैंक्स की इंफॉर्मेशन उस पर होगी। और इसके हमने जो सभी प्रॉब्लम अभी तक जो बयां किए हैं वो सब उस पर हो सकता है। इसके लिए सबका सहयोग, सबका सहभाग होना ज़रूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें एक्टिव हो नहीं सकती, हर संस्था का उस पर सहभाग होगा तो ही ये यशस्वी हो सकता है। तो मेरा सबसे पहले अपील है कि हम आप कब तक पहुँचेंगे ही, लेकिन जब ये एक्चुअल 6 महीने के बाद जब काम में आएगा तो सभी संस्थाएं इस पर जुड़ जाएं, ताकि ये उस संस्था के लिए ही नहीं लेकिन सब समाज के लिए उपयोग की हो सकती है। थैंक यू। धन्यवाद अजीत जी। मेरा अगला प्रश्न है प्रदीप भाई जी से। आप विश्व सारस्वत फेडरेशन के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चारों मठों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। हम आजकल बात बहुत करते हैं कि दाक्षिणात्य सारस्वत और उत्तर भारतीय सारस्वतों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, उनका मनोमिलन होना चाहिए, और चित्रापुर मठाधीश बहुत बड़ा काम कर रहे हैं राजस्थानी और गुजराती सारस्वतों के बीच। काशी मठाधीश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर में जाके वहाँ के सारस्वत लोगों को एक मंच पे लाने के लिए। मेरा आपसे सवाल थोड़ा अलग है एक्चुअली, और यहाँ पे जो यंग लोग हैं कुछ हैं तो उनके इंटरेस्ट का होगा कि विश्व सारस्वत फेडरेशन जो सारस्वत जो बच्चे बच्चियां हैं, जो युवा हैं, हमारे युवा और युवती हैं, उनको एक मंच पे ला सकता है क्या? सॉर्ट ऑफ लाइक आई वुडंट कॉल इट, हाउ वुड आई से, स्नेह मिलन, कि युवा युवती मिलके, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होंगे तब तक सही मायने में मनोमिलन कैसे होगा? इनफैक्ट मैं और नंदगोपाल शणै लास्ट ईयर स्वामी जी जम्मू में थे, तभी जम्मू में भी गए थे, क्या सारस्वत पंडित कश्मीरी पंडित कैंप में भी गए थे, माइक कश्मीरी पंडित कैंप में भी गए थे। उधर भी हमने रिक्वेस्ट किया कल्चरल प्रोग्राम के लिए, तुम एक 30-40 लोग मंगलूर में आओ, एक 8 दिन के लिए हम मंगलूर में रुको, वर्ल्ड कोंकणी सेंटर में रुको, हमारा इधर का डेवलपमेंट, हमारा इधर का कल्चर, हमारा इधर का बिहेवियर देखा तो always seeing is believing. So this kind of an invitation also we have given. We assured them 2 students engineering seat भी कैनरा कॉलेज में हम देंगे बोल के. So whatever initiative or discussion we make, they also should reciprocate. साउथ इंडिया में हम भी अभी गोवा से भाग गए हैं, गोवा में प्रॉब्लम हुआ, we also moved out from Goa. We have not never stayed. We are enterprising people. From BD industry to Mangalore tiles to hotels to IT, name any sector, to education, we are there. So they should be reciprocative, and when they come and see here, they should have a, I am telling you, ignite that cultural exchanges we should do. The main challenge for the country today is employment. And as Ajit Pai told, we all should think at least we should give 5 to 7 employment, every industrialist, every entrepreneur, then only the things will happen.
थैंक यू सो मच. माय क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू दिनेश कामत मैम, कि जैसे कोंकणी एक कल्चरल एक्सचेंज का सेतु बन सकती है, वैसे हमारे यहाँ संस्कृत कल्चरल एक्सचेंज का सेतु तो सहस्त्राब्दों से है. तो संस्कृत भारती के थ्रू आप जो काम कर रहे हैं वो काम हम सारस्वत समाज को जोड़ने के लिए, सारस्वत समाज के युवाओं को जोड़ने के लिए भी उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं? निश्चयेन संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र तत् करणीयम चेत युवा लोगों ने हाथ में लेना चाहिए. उदाहरणार्थ, संस्कृत मृतभाषा इसे बोलते थे लोग. दो युवा लोगों ने जिनके पास पैसा नहीं था, जो कोई शासन अधिकार कुछ नहीं था, कर्नाटक के दो युवा लोगों ने संस्कृत क्यों मृतभाषा, कोई बोलने वाले नहीं है ना, मैं बोलूँगा और हम बोलेंगे, ऐसे 40 साल पहले शुरू किया. 1981, 40 साल पहले शुरू किया, बेंगलुरु में शुरू किया. मैं बोलूँगा, ऐसे बोलना शुरू किया. मम नाम कृष्ण शास्त्री, भवतः नाम किम. ऐसे लोगों को अरे ये समझ में आ रहा है, संस्कृत तो क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा, ऐसे लोगों के मन में था. किंतु इन्होंने जो बोलना शुरू किया, हर आदमी के हृदय में संस्कृत के बारे में श्रद्धा है. वो श्रद्धा जग गई. जैसे भूमि में सब जगह पानी है, बाहर से पानी भरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वहाँ तक हमने खोदना पड़ेगा. वैसे हर आदमी के हृदय में संस्कृत श्रद्धा है. हम भारतीय हैं, ये श्रद्धा है. संस्कृति चाहिए, संस्कार चाहिए, ये भी भूख है. ऐसे दो लोगों ने शुरू किया. सुनकर भाई साहब आप बोल रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, हमें भी सिखाइए. सरकार के पीछे नहीं गए हम, अनुदान ग्रांट कुछ नहीं, पैसा नहीं, कार्यालय नहीं. 2 घंटा दीजिए, घंटा द्वयम ददातु 10 दिवसेषु भवान संस्कृतेन संभाषणं कर्तुम शक्नोति. ऐसे घंटा द्वयम 10 दिनानि लोग आए. आपको आश्चर्य होगा, यहाँ नितिन गोकर्ण थे IAS अधिकारी, उन्होंने अभी मुझे बताया है मेरे घर में संभाषण शिविर होगा, मार्च में संभाषण शिविर होगा. घंटा 2 घंटे 10 दिन का. हमारे घर के हम 4-5 लोग और पड़ोसी, ऐसे 10-15 लोगों को इकट्ठा मैं करूँगा. शिक्षक को भेजिए, निःशुल्क शिक्षक को हम भेजेंगे. कहाँ भी, पूरे भारत में हम शिक्षक भेजेंगे. ऐसे संभाषण शिविर 1,40,000 शिविर चलाए हैं निःशुल्क. शिक्षक को कुछ गुरुदक्षिणा नहीं, कुछ भी देना चाहते हैं तो अंतिम दिवस आप समाज निधि के रूप में दीजिए. उस पैसे से संस्कृत भारती चल रही है, सरकार के निधि से नहीं. ऐसे युवा लोग प्रेरित हो गए. संस्कृत क्षेत्र में सफेद बाले वाले लोग ही थे. संस्कृत भारती में सफेद बाल वाले मात्र 2 लोग हैं, एक दिनेश कामत और एक चांद किरण सलूजा. बाकी पूरे संस्कृत क्षेत्र में हमने यौवन लाया है. सब काल बाले वाले युवा लोग. ऐसे 1,40,000 शिविरों में भाग लिया. 94 लाख लोग संस्कृत बोलने वालों को हमने तैयार किया है. 1 लाख शिक्षकों को संस्कृत माध्यम से सिखाना. संस्कृत अभी तक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में संस्कृत इज बीइंग टॉट थ्रू अदर लैंग्वेज, अदर मीडियम.
इंग्लिश द्वारा, हिंदी द्वारा, बंगाली द्वारा, असमिया द्वारा, कन्नड़ द्वारा संस्कृत पढ़ाते थे। हमने संस्कृत माध्यमेन सिंपल सरल मानक संस्कृतम, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत एवं वयम् आरब्धवन्तः। आश्चर्यं भवन्तः अनुभवेयो, केवलम उत्तर कन्नड़ जिल्लातः संस्कृत कार्य के लिए 1000 पूर्णकालिक कार्यकर्ता आए, फुल टाइम वर्कर्स 1000 युवक युवती। उनको तनख्वाह नहीं, जीवन के कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल देना चाहिए। उत्तर कन्नड़ जिला से 1000 लोग आए, उनमें से 600 युवतियां, लड़कियां। उनको हमने देश के अलग अलग भाग में भेजा, जम्मू कश्मीर भेजा, पंजाब भेजा, मणिपुर भेजा, असम भेजा, सब जगह संस्कृत भारती अभी वी आर देयर इन 612 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 740 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स। विश्व के 27 देशों में हमने भेजा है। कर्नाटक शिवमोगा के एक मनोरमा को हमने चेन्नई भेजा, चेन्नई IIT में उन्होंने संभाषण शिविर चलाया। वहाँ जो आए, अब IIM बेंगलुरु में डीन है प्रोफेसर महादेवन, वो द गीता इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट ऐसे विषय लेकर पढ़ा रहे हैं। PhD फ्रॉम IIT चेन्नई। ऐसे लोगों को, वो गांव की शिवमोगा की एक लड़की ने मनोरमा पूर्णकालिक कार्यकर्त्री 5 साल काम किया। मुझे लगता है यहाँ हम कोई हैं, वो राजस्थान के हो, गुजरात के हो, मंगलूर के हो, कहाँ की हो, हमारा दायित्व है। हम सारस्वत हैं, हमारे रक्त में ज्ञान परंपरा, ये इसको आगे ले जाने का दायित्व है। अभी तक हमने लक्ष्मी के बारे में बहुत सोचा, यहाँ सरस्वती के बारे में सारस्वतों ने सोचना है। इसीलिए हर घर में, मेरे घर से मेरा बेटा या मेरा बेटी, वो कम से कम 1 साल संस्कृत के लिए फुल टाइम देगा। शिक्षा के बाद खुद के लिए जो पैसा कमाने से पहले 1 साल संस्कृत के लिए दीजिए। संस्कृत पुनरुज्जीवित क्यों नहीं होगा? हम कर रहे हैं। लाखों लोग ऐसे ही संस्कृत बोलते, इतना नहीं, हजारों घरों में गृहम संस्कृत गृहम, माता पिता द्वावपि संस्कृतेन संभाषणं कुरुतः इति कारणेन पुत्राणां मातृभाषा संस्कृतम। ऐसे 6,000 घर हैं। ऐसे घर हमने बनाया है। बांधवाः तदर्थम समयदातारः आवश्यकाः। मैं यहाँ देख रहा हूँ, हर आदमी के आंख में मैं देख रहा हूँ एक आशा की दृष्टि है। संस्कृत आना चाहिए, ये सब लोगों के मन में है, हृदय में है। मुझे लगता है हम यदि संकल्प करेंगे, हम क्यों नहीं बदलाव नहीं ला सकते? विद्यालयों में हमारा प्रभाव, स्वयं हम विद्यालय शिक्षण संस्था चला रहे हैं, बहुत लोग उन संस्थाओं में पैसे के लिए बाकी सब चीजें लाइए, संस्कार के लिए संस्कृत LKG से संस्कृत लाइए। हम टेक्स्ट बुक बनाकर दे रहे हैं, 50 रुपये में आपका टेक्स्ट बुक मिलता है, हमने बनाया है। ऐसे संस्कार के लिए संस्कृत 1 पॉइंट प्रोग्राम, बच्चों को संस्कृत बाल केंद्रम, सप्ताहे 1 घंटा संस्कृत बाल केंद्रम। सुबह उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी, भोजन से पहले अन्नपूर्णे सदापूर्णे, सायंकाले दीपज्योति परम ब्रह्म दीपज्योति जनार्दना, रात्रौ शयन समये व्हाट्सएप नोड़ता मलगता इधर है, व्हाट्सएप देखकर सो रहे हैं। रात सोने से पहले रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम,
शयने यस्मरे नित्यम दुस्वप्नम तस्य नश्यति। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। ये हम रात को सोते समय हमारे बच्चों को सिखाएंगे। रामम स्कंदम हनुमंतम, इनका स्मरण करेंगे तो दुस्वप्न कहाँ से आएगा? अच्छा स्वप्न देखेंगे। संस्कृत सुसंस्कृत भारत को पूरे विश्व देखेगा। ऐसे निर्माण हम कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने करना, मठाधीशों ने करना नहीं। सरकार मठाधीश सब हमारे पीछे हैं, किंतु करना हमने करना है। तदर्थम मैं जो कर रहा हूं ये मैं बता रहा हूं। तदर्थम अस्माकं सर्वेषां दायित्वं संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र। धन्यवाद. You are very inspiring. I am sure everyone in the audience is like waiting to enroll for the next Sanskrit Bharati course. My next question is for everybody actually. आप सभी इस पर मत प्रदर्शन कर सकते हैं, जब कोई चाहे वो मत प्रदर्शन कर सकता है। आप सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप जानते हैं कि CSR का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी कम्युनिटी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, अगर कोई चाहता है तो। मैं जानना चाहती हूँ कि एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाई कैन नॉट सक्सेसफुल सारस्वत एंटरप्रेन्योर्स ensure that their CSR is dedicated only to the community seva activities. The seva activities can be for everybody, but whoever wants to answer can answer this. Shefali ji, I would like to volunteer this question because we have been, whatever CSR we have been providing, it has all been dedicatedly, has gone till date to Saraswat only. And see, again, Narendra ma'am will witness it, or rather he will elaborate it. See, the charity begins at home, what we all say. And if you see other communities, there is no comparison. Especially I want to do with Saraswat or with another committee. But when we call it a charity begins at home, that means that अगर हमको सारस्वत को कोई भी चीज़ में, कोई भी सेक्टर में, कोई भी दिशा में हमको आगे बढ़ाना है, जैसे अभी हमारे दिनेश कामत जी ने भी संस्कृत भाषा के लिए बात किया, वो बहुत ही उच्च, मतलब उन्होंने कि बॉस आपके लाइफ में से एक 10 दिन दे दो, 10 दिन में 2 घंटा, एक दिन में 2 घंटा, बराबर है ना सर? वो अगर हम लोग देने से संस्कृत का बेसिक्स हम लोग सीख जाएंगे। वैसे ही छोटा छोटा CSR एक्टिविटीज़, नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंपनी हैज़ अ CSR एक्टिविटी, जो भी छोटा है वो हम सारस्वतों की डेडिकेट करने से, दैट स्मॉल स्टेप अहेड मूव्स अ माउंटेन इज व्हाट ऑल आई बिलीव. सो वी आर इन दैट फॉर्म एंड वी हैव बीन डूइंग इट एंड विल कंटिन्यू टू डू सो. Would you like to answer? Would you like to add something to it? Yeah. So we were speaking about Sanskrit as the language which can unite all the Saraswats together. It is true, because even though we are differing in languages, but in everybody's house there will be some rituals happening. धार्मिक कार्य होता है, वो सब मंत्र है ना, हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में ही होता है. तो ये पुरोहित है ना, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है. एंड वी हैव टू आस्क पुरोहित जी, ये इसका मीनिंग क्या है? ही इज बाउंड टू एक्सप्लेन एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड. वी मस्ट हैव दैट पेशेंस. वी शुड नॉट थिंक दैट सत्यनारायण पूजा, if it takes 4 hours, we should not think about finish it within 1 hour. No. So you have to do it in a very religious way, otherwise don't do it. So Sanskrit Bhasha tabhi we can understand. And Dinesh Kamat ji ne bataya ki unka confidence dekhiye, unka karya mein, the way in which he speaks. According to me, he is one of the best teacher to teach anything which has to be taught to the people. I really appreciate. Absolutely. I'll tell you one more. In Sanskrit, whatever I have learned in 8th standard, 9th, 10th, 11th and 12th, I remember very much my teacher was teaching
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनः मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं दुरात्मनः. See the beauty of the language. According to me, let me complete, because any corrections I will take it. What I have learned, otherwise this will, stop the flow. Once again I repeat, manasyekam vachasyekam karmanyekam mahatmanah means one who thinks something and same thing if he speaks and same thing he implements, such people will become great people in their respective field, like Dinesh Kamath in Sanskrit. On the other hand, manasyekam vachasyekam karmanyekam duratmanah, the field which we don't like, there are people, let me not tell this, think something, speak something else and do something else only. See the beauty of the language Sanskrit. What he said is right. Sanskrit can bring all of us together, because nobody can get rid of this language called Sanskrit. Only thing is we have to utilize it. Thank you so much. हम सारस्वत सब जगह मंदिरों से जुड़े हैं. मेरा एक निवेदन है, मंदिरों में मंदिर में जो चढ़ावा होता है, काणिके ऑफरिंग होता है, उस पैसे से पूजा पाठ चलाते हैं, करते हैं, बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं, भंडारा भोजन समाराधने ये भी करते हैं. मंदिर के लिए भवन जीर्णोद्धार होता है, ये भी अच्छा है. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करते हैं, वो भी अच्छा है, मंदिर को पैसा लाता है. किंतु भगवान और भक्तों के बीच की भाषा वेद ये संस्कृत में है. ये मंदिर के धन से संस्कृत के लिए क्या हो रहा है? हर मंदिर से, ये छोटा भी मंदिर हो, बड़ा तिरुपति का भी बालाजी मंदिर भी हो, हर मंदिर से संस्कृत के लिए, जैसे स्तोत्र पाठन केंद्र, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को स्तोत्र उच्चारण कैसे करना, गीता उच्चारण सिखाने वाले नहीं हैं, वो कर सकते हैं. बच्चों को बाल संस्कार केंद्रम चला सकते. गुरुकुल ही चलाना है ये नहीं, जहाँ हो सकता है वहाँ गुरुकुल चलाओ, पाठशाला चलाओ. नहीं हो सकता है बाल केंद्रम ये चलाइए. चलाने वालों को निःशुल्क प्रशिक्षण संस्कृत भारती देगी. देश में किसी प्रांत में, किसी राज्य में हम देंगे शिक्षा. इसीलिए हर मंदिर से संस्कृत के लिए कुछ न कुछ उपक्रम होना चाहिए. तदेव मम निवेदनम. धन्यवाद. अब मंच ओपन है. मेरे प्रश्न तो हो चुके हैं, हमारे पास समय है थोड़ा, तो हाँ आप, हाँ CSR पे भी आपको जो बात करनी है आप कर सकते हैं. माइक. Regarding CSR, I don't believe it is given from the heart, because it is a corporate social responsibility. Some allocation will be there, some percentage, that will be, I think it is thrown like this. Behind every CSR, there should be tan and man, That is which true, is yes. missing in CSR. In my business, I am not at all committed for CSR because mine is a proprietary business. Still, 33% is for Saraswat Seva. initiative, 33% is for income tax, rest 33% is for sustenance of my life and family. CSR should be always associated with tan and man. Without tan and man, it is only, I feel it is bhiksha. That is true. Ajit ji, would you like to add something to this, and then I will come to Uday Kumar sir. Yeah, I think yesterday our Durgesh Chandavarkar mentioned about the kind of CSR activities which do in Chitrapuram. I think most of us are aware of that. We run a school in Virar mainly for, the disabled children's there. And there is a school run in Karla. Basically, most of you, I think those who have visited Karla, they know that what kind of an activity we do there. Apart from that, there are schools which are run at Kotekar. I am also associated with the pharma company. As he said, yes,
2% of our profits are earmarked for CSR activities. We also do a lot of, CSR funding for the schools, education purpose. So in a year, at least 10 to 15 crores we spend on this particular activity. So where even Chitrapur Mutt is also one of the activity through which they get the funding, because everywhere funds are required. I think likewise, all the Saraswats who are in business, even otherwise, let me say, if we can earmark some funds every year towards a CSR activity, I won't say CSR per se as a, through any of the institutions, that will be a great support for all these institutions to run their CSR activities. That's what I wanted to say. Wonderfully said. Ajit ji. CSR जब कहा जाता है तब वो जो कायदे में लिखा है वही CSR लोग एक्चुअली करते हैं. जैसे इन्होंने राइटली कहा कि तन मन भी होना चाहिए, सिर्फ धन नहीं. लेकिन ऐसी CSR एक्टिविटी शायद ऐसी संस्था है वो उसकी जो व्याख्या है उसमें शायद नहीं बैठती. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जनरली डू नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी आई थिंक. तो भले न हो फिर भी वो पैसा हमने तन मन से जाता है तो उसका ज़्यादा उपयोग होता है ऐसे मुझे लगता है. सो इट्स नॉट ओनली CSR एज पर जो सरकार ने कहा है 2% होना चाहिए प्रॉफिट का, लेकिन जो होगा वो तन मन धन तीनों के साथ होना चाहिए. दैट आई फुल्ली एग्री विथ हिम. No, I agree with Ranma when he said that tan and man is important, is the most important thing for money. See, the CSR activity or the funds that have been earmarked, the government has only made that law following a very ancient Indian practice. The ancient Indian practice was actually to keep aside a part of the profit for the community. Yes. And that is what I think, if you look at many of the businessmen at different levels, they have been doing this for centuries. I think what is most important in my view is that when money is contributed for a certain cause, the same people who are contributing the money also apply their mind towards how that is to be used. Because the multiplication factor of the impact comes from that. If I were to give somebody money and say, please do this, right? Versus if I were to sit with them and think on how to best use it, I think that money can be used, maybe, it can have a multifold impact. So I think when we talk about responsibility, I would say instead of talking about corporate social responsibility, let us talk about social responsibility. That is more important. How do we contribute our might and our mind into an objective? I think that is most important. I am very inspired by Dinesh Mam, the way he has passionately spoken about what he's done. Like he mentioned that 2 youth were able to do what maybe years of government grants could not, right? So I think that is where I think the focus should be. The causes are known. There are a lot of people who are already working on those causes. With more people joining them with all of their mind, I think that is what will create a real difference in the generation to come. Very, very true. One important takeaway that I have realized from this discussion is that हमें 3 अलग-अलग लेवल पे सोचना चाहिए कि हम कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए क्या कर सकते हैं. वो we as an individuals, we as family as a unit, we as an organization, and we as a community. These are 4 different levels of change, and obviously all change ultimately starts with the individual. अब क्योंकि इस सत्र का विषय है द वे फॉरवर्ड एंड आई स्टिल हैव अबाउट 10 minutes, आई एम गोइंग टू ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस. अगर किसी को सवाल पूछना है ज़रूर पूछेगा प्रश्न, और मुझे आनंद होगा कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो युवा वर्ग अगर प्रश्न पूछे, आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा. अपना नाम बताइए और जिनसे प्रश्न पूछना है उनसे पूछ सकते हैं. मंजुनाथ पूछो.
कल तुम्हारा your question was so profound that you stumped even Dinesh ma'am. So you should. So, you just called me in the blue. So, I actually don't know what to ask. But, so we are basically Saraswat, descendants of Saraswati. We have all come under this wonderful confluence. So, my question to all of you is, what is the one thing that you, as Malgades of the society, would like us youth to contribute to VSF and Konkani Saraswat confluence? So, as Malgadis, please guide us. One thing, only one thing. You know, you're one smart kid. Now you put everybody in the dock and made them do your work for you. Very good. He asked in what way the youngsters can contribute in Saraswat. Participate, one word. Everything which is done by Saraswat, so-called Malgade, whatever they are doing, in that tan se, man se, participate kijiye, then everything will be nice. That's the best contribution which you can do. Anybody else would like to answer? Yeah. A question for you, sir. Narendra Nayak ji? Yeah. So you said regarding now, we are talking about IAS and IFS and IRS people to, they should come forward. I think education is like you and many others. They should identify the boys in your, in academy, find out, their interest, because I'm talking from 10th standard onwards. Then connect with the parents, because a lot of people are maybe from a poor background, and they may be, scared. Suppose the IAS, it costs money, so many things. And their impression, if you go to IAS, that money is what they are getting less. This kind of perceptions prevail generally, what I've seen and discussed with many people during my journey. So I think you institution, academic, educational academics, the people who are involved, can take these boys or girls, then parents, connect them and tell them these are the importance of this I said, I was requesting Mr. Nandagopal Shanai, being the head of Vishwa Konkani Kendra at present. What you said is right. Speaking is something, but let the charity begin at home. Correct? We will definitely do it. From Monday onwards, we'll do it. Today is Sunday, Monday is tomorrow. I am committed to that. Probably next Saraswat conference, wherever it's happening, I will definitely participate, and I will proudly tell what activity our institution has done to do so, and thanks to you for inspiring. Shafali ji, this is, can you hear me? Yeah. I'm Dr. Chaitanya Gulwadi. This is with reference to Dinesh Kamath ji's request for Sanskrit. तो करीब करीब 20 साल से हमारे सारस्वतों में ही अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ परम पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी, शिराली चित्रापुर मठ हैज स्टार्टेड संस्कृत क्लासेस. तो करीब 20 साल से हमने 4 कोर्सेज शुरू किए हैं.
आराधना, साधना, धारणा और अभी नया वंदना क्लासेस, एक एक साल के क्लासेस हैं। न केवल क्लासेस एक एक साल के क्लासेस होते हैं, वो इन पर्सन क्लासेस, अभी कोविड के बाद में वही क्लासेस का परिवर्तन ऑनलाइन क्लासेस में हुआ है। और सिर्फ क्लासेस नहीं, हमने कन्वर्सेशनल की बात की थी, भाषा जब तक बोली नहीं जाती तब तक वो भाषा नहीं होती, तो हमने गीरवाण वैखरी नाम की एक संस्था भी उभारी है जो 4 महीने में कन्वर्सेशन सिखाती, केवल 1 घंटा। तो इसी के वजह से न केवल क्लासेस, हमने हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना वर्ग भी चलाते हैं पूरे भारत में और इंटरनेशनली भी। वहाँ पर भी हमने संस्कृत इंट्रोड्यूस किया है। हमारे वेबसाइट पे करीब 80 लेसन्स हैं, फ्री लेसन्स, एनीबडी कैन लर्न, सीख सकते हैं उन लेसन्स को पढ़कर। हमारे स्टोरीज भी हैं, ऑडियो स्टोरीज भी हैं। तो इस वजह से इस संस्था का नाम गीरवाण प्रतिष्ठा है। इसके वजह से चित्रापुर सारस्वत समाज में करीब न केवल बच्चे, युवाएं और बड़े भी वृद्ध भी लोग संस्कृत सीख चुके हैं। और हमारी चित्रापुर सारस्वत समाज में संस्कृत संभाषण भी बहुत अधिक होता है। आज का नरेंद्र नायक साहब का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। सो इनफैक्ट 4-5 years back we tried to give a training for IAS, and we sent 3-4 students to Delhi for coaching with requesting Srinivas Prabhu, and they stayed in our Saraswat Sanskritik Bhavan in Delhi for coaching. There is a specialized coaching in Delhi which makes for IAS. We tried to get their chapter for Mangalore and we are not successful. But today's energetic way the Narendra Nayak told, we'll definitely get a chapter in Mangalore, and World Konkani Center and expert will definitely do it as per the advice of Chandawar Karma. And we are confident SVC Bank is with us. Narendra Mamkar, I will connect you to one Bangalore coaching classes for IAS, IFS, IRS. They are from RSS background. My close friends are there. I will connect you to them. Yes. Take it forward from there. Yes. How to go, they will guide you. If you want, I can come to Bangalore, introduce him, and then you will definitely enjoy and find some great way ahead for these our people to get into IAS and all these cadres, services of Government of India. Thank you. Chetan Gulwadi ma'am made a very, very good point. The course by Chitrapur Mutt for Sanskrit Shiksha is really good. Once Dr. Bibek Debroy had tweeted about it. Somebody had asked him and he had said that start with this course. It's a really good starting point. So yes, Chitrapur Mutt is doing some amazing work in Sanskrit Shiksha, just like Sanskrit Bharati. I would like, no community can prosper unless the women are solidly on board. And I see many women from the community. I want you to ask a question because you are all mothers, you are all sisters, you are all individuals in your own right, very successful professionals, and you are here obviously because you are connected to the community. So what is it that you would like to ask the esteemed panel? Anybody? Nobody? I had different one, ma'am, if you permit. Pai ma'am has forgot to mention that Vishwa Saraswat Federation had distributed more than 36 lakhs rupees in Jammu, especially for Kashmiri students coming from Kashmir and Jammu. That's a great work done by Vishwa Saraswat Federation. Secondly, 2 engineer students been given admission in Mangalore selected by, from Jammu and Kashmir. Diwan Saab is aware of it. And I had one point just mentioned by Nandmam. He said 33% is Tan Man Dhan se CSR. You said mention that. So it's great thing. I think everybody should clap for that. 33% of his profit, giving it for the welfare of the. I never heard about it. One question to you: how you would like to pass on to the all business class the spirituality in business? We go to Davos for learning so many things, but here
in India, don't we think that we have a spirituality and business amalgamation, just confluence, so that the message of yours can go to entire world altogether? Thank you. Nandagopal, 1 minute. 1 minute. Nandagopal Mam can give 33% because his wife Usha is the proprietor. So she doesn't have objection, he writes the check. She, without seeing, she signs. So we should compliment her, number one. Number two, at least 10% we should take a oath. 33% is a big heart of both of them. I know Nandagopal for last 25 years. Individually, he runs a scholarship scheme where he gives 40 lakh rupees scholarship every year. And the student, Nandagopal ji, last 10 बरस से every year 40 लाख रुपया scholarship देते हैं विद्या कल्पका बोल के एक स्कीम करके, and the beneficiary don't know who gives the money. The beautiful theme of this, they get the money by RTGS. There is a selection committee headed by him, all professionals. They go to the home and see the eligibility of a candidate and support. It's a very rare combination of Nandagopal and Usha. So I compliment on them. Ashok Kinima, what I want to say is, today people create money, wealth for their next generations. You might have heard, a person has created wealth for next 10 generations. If you think about past generations, if you do something for the past generations, means your father, grandfather, great-grandfather, means working reverse. You create some public utility, infrastructure in the memory of your bygone era. Then it will be more meaningful, because there is no meaning in creating for next generation, 10 generations, whom you don't know. These all people you know. Okay? So that is how I can earmark 33% of my annual income. चित्रापुर सारस्वत मठः संस्कृत शिक्षा विषये प्रावीण्यम अस्ति. संस्कृत भारती हेलो संस्कृत भारती संस्कृत संभाषणं सर्वेभ्यः पाठयति, पत्राचार द्वारा संस्कृतं पाठयति, संस्कृत पुस्तकानां प्रकाशनं, सरल संस्कृत पुस्तकानां प्रकाशनं करोति. इस विषय में संस्कृत भारती का एक्सपर्टाइज है. और विश्व सारस्वत फेडरेशन, वो तो सारस्वतों के बीच काम कर रहा है. मुझे लगता है ये तीनों मिलकर संस्कृतम सर्वत्र सर्वेषां सारस्वत जनेषु सर्वेषां कर्तुं चित्रापुर सारस्वत मठः, संस्कृत भारती, विश्व सारस्वत फेडरेशन. अहं चिन्तयामि चित्रापुर सारस्वत मठः उन्नतः, विश्व सारस्वत फेडरेशन स्थूलं, संस्कृत भारती मध्ये संयोजनम् अहं चिन्तयामि अद्भुतः परिणामः भविष्यति. सर्वेषाम् आशीर्वादः अस्ति चेत हाथ ऊपर उठाकर ओम बोलिए. अरे कैमरा उस दिशा में घुमाइए भाई साहब. अब बताइए. ओम स्वस्ति मंगलम. संस्कृत भाषा के लिए जो बात आपने कही वो अति श्रेष्ठ है. इसको ग्रहण करने के लिए हम जो ब्राह्मण है उसमें सारस्वत है, सरस्वती पुत्र है, या सार जो वस्तु ग्रहण की जाती है वह हम सारस्वत है. मैं चाहता हूं कि इससे पहले कुछ बातें जो आपने बताई कि हमारे दो व्यक्तियों ने संस्कृत भाषा को लेकर के एक अभियान शुरू किया गया. मेरा निवेदन इस मंच को, आप तो ये अभियान शुरू करो कि संस्कृत का मंगलाचरण क्या है, स्वस्ति मंगलम क्या है, पुण्य वाचन क्या है, और सूर्य
उपासना क्या है, इन चारों को लागू कर दो और हर ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व की शिक्षा दी जाए। और ब्राह्मणत्व की शिक्षा होती है तिलक से, शिखा से, सूत्र से, यज्ञोपवीत से और गायत्री से। इन पांचों बातों को इस विश्व सारस्वत फेडरेशन के द्वारा लागू किया जाए तो मैं समझता हूं कि संस्कृत भाषा हमें अंगीकार करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और एकता के सूत्र में बहुत जबरदस्ती हम एक रस्से की तरह बढ़ के काम करेंगे, विश्व में अपना नाम करेंगे। सारस्वत समाज की जय हो, विश्व फेडरेशन सारस्वत की जय हो। धन्यवाद, बहुत अच्छा संभाषण था। अब अंत करने से पहले मैं बस एक बात कहूँगी जो मैं हर बार कहती हूँ कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम इस मंच से पूरे सारस्वत समाज की एकता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सारस्वत एकता हिंदू एकता का एक अंग है। तो हमें पर्सनल से समाज तक जाना है तो सारस्वत एकता से हिंदू एकता की तरफ भी जाना है। धन्यवाद। अंतिम वाक्य भरतवाक्य। तुम्ही रब का आणि पुरा पडलं स्वामी बसताना पुरा पळो नाही ते सेट करतो आणि मामा ते तन कापे नाव अभी हेलो हेलो अभी उत्तर भारत से जो भी हमारे सारस्वत भाई लोग आए हैं उनमें से कोई प्रमुख है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, मैं उनके नाम बुलाता हूँ, वो कृपया मंच पर आए और हमारे जो एक रिस्पेक्ट है वो हमसे ले लेकर के हम प्रार्थना करते हैं। मैं अभी उनका नाम बोलता हूँ। पहले मिस्टर संजय शर्मा राजा, एक्स स्टेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अलीगढ़, अगर वो आए हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। और मिस्टर विजय सुमन सारस्वत, सोशल एक्टिविस्ट है मीरठ से। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सारस्वत, प्रेसिडेंट सारस्वत सभा आगरा। डॉक्टर विनोद सारस्वत, सोशल एक्टिविस्ट है आगरा। मिस्टर हर स्वरूप सारस्वत, प्रेसिडेंट श्री सारस्वत समाज अलीगढ़। डॉक्टर रामशंकर सारस्वत, प्रेसिडेंट श्री सारस्वत सभा हाथरस। मिस्टर प्रियांशु सारस्वत, डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट फ्रॉम जी इंडिया नोएडा। मिस्टर रामेश्वर सारस्वत, सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम हाथरस। श्री अरविंद सारस्वत, एमिनेंट जर्नलिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट फ्रॉम नोएडा। श्री हरेंद्र सारस्वत, प्रेसिडेंट ब्राह्मण समाज इटा। डॉक्टर संजीव सारस्वत तपन, प्रिंसिपल एंड पोएट रुद्रपुर उत्तराखंड। मिस्टर राजकुमार सारस्वत, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट फिरोजाबाद। श्री अनुभव सारस्वत, सोशल एक्टिविस्ट फरुखाबाद। मिस्टर देवी शरण सारस्वत, सारस्वत समाज गाजियाबाद। मिस कल्पना सारस्वत, लेडीज कोऑर्डिनेटर सारस्वत समाज उत्तर प्रदेश। मिस्टर चंद्रशेखर सारस्वत, सोशल एक्टिविस्ट गाजियाबाद। विजय सारस्वत, स्पोक्सपर्सन सारस्वत समाज विकास समिति उदयपुर। महर्षि सारस्वत, प्रेसिडेंट सारस्वत समाज विकास समिति चित्तौड़गढ़। भारत भूमि महेंद्र जोशी चित्तौड़गढ़। रामलाल ओझा संरक्षक हैं चित्तौड़गढ़ के।
गोपी किशन ओझा बीकानेर से, ईश्वर राम जी सारस्वत बीकानेर से, गेवरचंद सारस्वत जोधपुर से, आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत गोवा, इंदौर, नासिक से जो आए हैं वहाँ के सारस्वत समाज के, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। गोवा, इंदौर और नासिक से जो आए हैं। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन, सरसिजाक्ष बसंत जी ओझा साहब हरि को करते हैं। और संजय सारस्वत जी दिल्ली से, पवन सारस्वत जी बीकानेर से, सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है, सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है, आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है, आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण इंदौर से जो आए हैं, इंदौर से, भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है, विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है, विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, 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 सार भरित जीवन, सार भरित जीवन। एक मिनट बस। और श्याम जी तावनिया कृपया आ जाइए, और चंद्रबान ठाकुर जी, चंद्रबान जी। चंद्रबान ठाकरानी जी। सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन, सार भरित जीवन सरसी
सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन, सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं। त्रियांशु सारस्वत जी, वो जी न्यूज़ नोएडा से है, आइए। सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन, सारभरित जीवन। सत्य धर्म त्याग धन्यवाद। से कृपया ध्यान दीजिए, हम अभी टी ब्रेक के लिए ब्रेक ले रहे हैं, मगर 4:30 बजे सभी को सुनिए, कृपया सुनिए, दोनों स्वामी जी यहाँ पे 4:30 बजे इस हॉल में उनका आगमन होगा। तभी तक उसके 5 मिनट पहले आप सभी को यहाँ रहना है। जब स्वामी जी आएंगे आपको उठना होगा और उनका सम्मान करना होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ये देखिए, ये वीआईपी जो हमने 3 रो दिया है, उसमें स्पीकर्स होंगे, स्पॉन्सर्स होंगे और ऑर्गेनाइजर्स होंगे। कृपया जो भी इस कैटेगरी में नहीं आते वो पीछे बैठ जाइए, ताकि हम जो भी गण्य व्यक्ति आए हैं उनको सम्मान दें। कृपया सुनिए, 4:30 बजे करेक्ट टाइम पे प्रोग्राम शुरू होगा, स्वामी जी का आशीर्वचन। उसके 5 मिनट पहले आपको यहाँ उपस्थिति रहना है। अभी टी ब्रेक है। सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, 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 सारभरित जीवन, सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन। तंतु मुख्य जावनु आमगेले भोजन गृह म्हणत ना ते किचन असतं ते पुरा तयार करता म्हणजे एक हॉड सवाल त्याविषयी उल्लोचक तमगिरट्टू कानेगडाच्या गुरಣ್ಣ आणि मुंबईच्या नितीन असं निमगो तंगेला खंचरी त्याने तयार केलं म्हणून गुरಣ್ಣ नमस्कार कसं म्हणतो एक रानप्या विषय म्हणता आम्ही पडेला तुम्ही 2 दिवस तुम्ही ते बैसून तुम्ही आणि महेश अण्णा शापूर ना सोमेश्वरच्या रागण्णा शापूर तंगेल पुरा तयारी आम्ही पडेल असं तुम्ही रात्री ते बैसून ना फुल डे कसा करू का पाय कसं करू का म्हणून तशी एक प्लॅन कशी चोलना येईल सर्वांके नमस्कार. हे प्लॅन कशी जाले म्हणून सांगला रे आमगेले रागण्णा सकाळी दुखून रणपाकोड आणतो आणि महेश अण्णा वाशी दुखून सकाळ दुखूनची हे अरेंजमेंट पुरे करता असाची. कितले जण आयल्या रे तांकां कसले उण येनाशी सकाळ दुखूनची आमगे गांवांत दुखून दारान प्यायल असाची. त्यांनी पुरे जणांनी येवन सकाळ रात पहिले निदनाशी त्यांनी सक्कट जणांनी काम करून तशीच आमगेलो कोडेलचो रमेश मामू श्रेयस विटाचो ता जाल्यार येवन सकाळ दुखून रात येवन काम करून कोणाकय आयिल्ले जना कसले उण जायनाशी हे पळयता आसा. मागीर सक्कट अरेंजमेंट केलेले आमगेले नितीन अण्णा ना नितीन अण्णाय त्या विशयी भारी हाजेर पळोवन घेता आसा. सांग नितीन अण्णा. नमस्कार.
केश म्हणल्यार हें विश्वसारस्वत संमेलनान ना म्हणल्यार एक 800 देखून 1000 जन आयल्यान ती विभिन्न भारताचे जाग्या देखून आयल्यान ती कशी आमगेले सरस्वती न्हय गुप्त म्हणटा ती तशी आमगेले सारस्वतांतुले एक गुप्त मंडळी म्हणल्यार वॉलंटियर मंडळी म्हणल्यार राजस्थानाचे एक 350 जन राजस्थान देखून आयल्यान ती आनी तांकां भारी गमत जाल्ला हांगाचें जेवण खाण पिण पळोवन आनी हांगा वॉलंटियर जो आसा VSFचे त्यांनी रात्री पडली काम करून रात्री 2 घंटे देखून 2 घंटे ते काम करून आनी सकाळ वगी येवन पुरा अरेंजमेंट भारी लायक जाल्ला हांगा हरिद्वारांत काम करची इतली इजी न्ही म्हळ्यार पुरा प्लॅनिंग जावका आनी गुरू अण्णान तातूंत विशेष काम केलां म्हळ्यार एक 5 दिवसां फुडें येवन पुरा प्लॅनिंग करून पुरा भारी लायक केला सो तातूंत गुरू अण्णाले मस्त एक व्हड हात आसा म्हूण अशें हांव म्हणटा देव बरें कर थँक्यू पुळ्ळीपंत ह्या विश्व सार संमेलन मुंबईंत वाशीन म्हणून तुम्ही वाशीचे तुम्ही तई त्या कार्यक्रमाच्यो सगळे जाण एक प्लॅन पुरो कोरनाशिल्ले नेक्स्ट हरिद्वार म्हणटा तुमकां एक 8-9 म्हयने टायमान तूं आमगे उल्लोच्याक आमगे वाशीचे दीपक अण्णा आसा पण कशें प्लॅन जाल्ले तान्ना लागून हांगा थंय सुरवेरी हांव यूथ ऑफ GSB दर्शकांक सर्वांकय नमस्कार करून सांगता तशीच आमगेले गुरुवार पिठांक एक नमस्कार करून हांगाचे विश्व सारस्वत संमेलन तुमी पळयलां आसा पुरो आमकां म्हळ्यार हांगा वाशींत आमकां ते एक स्वाम्यान एक अवकाश करून दिलेले आनी त्याच वेळार आमगेले चित्रापूर मठ स्वामी आनी आमगेले चारी मठ स्वाम्यांक गेले आमगे आदेश घेवन आमी सूर केलेलो एक विशय तो वाशींत भारी विजृंभणेरी स्वाम्याले देवाल देन गेलेले आसा तशी जी हांगा क्षेत्रांत आमी एक कोरका म्हणून आलोचन करून तेवें हरिद्वार आमगेले स्वाम्याले व्हड स्वाम्यांक गेले कोणाली हें विश्व सारस्वतीक होट जावका म्हणलें एक विशय आशिल्लो की तांगेले स्थळारी आमी एक करचे एक अवकाश स्वाम्यान घडसून दिलेले त्या प्रकार आमी कमिटीच्यान पुरो वट्ट मेळून हांगा आमी हे कार्यक्रम आमी सूर केलेलो आसा कालचे दीस तुमी सकाळीं पळयला आसा पुरो सकाळींची दीप प्रज्वलन दोनी स्वाम्यांक गेले दिव्यास्थान जावन ताजे नंतरचे कार्यक्रम पुरो भारी चंद रितीर जावन चलून आयिल्ले हांगाचे एक विशेष म्हळ्यार सारस्वताचे सकाळांक गोत आसा आमी एक सारस्वत सकडी म्हळ्यार विश्व सारस्वत सर्वांक वट्ट करून आमी एक मुखार सुचे म्हळ्यार कसली हें वट्ट करचें म्हळ्यार आमकां एक विंगड सारस्वत जन आसून तांगेले आनी आमगेले परिचय जावन गोत्राचे तांगेले उच्चारण म्हळ्यार तांकांय आसा गोत्र कुल पुरा देखून तांणी वट्ट मेळून आमगेले खंयचेय वेव्हारांतू कसलेय एक म्हळ्यार एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ पीपल तशी जावन आमी एक हें एक सारस्वत कॉन्फ्लुयन्स म्हणून तांगेले एक व्हड स्पिकर्स हांगा पोवन तांगेले आमी एक विचार घेवन आमी ते सगळे देशांत परदेशांत जे आशिल्ले सर्वस्वतांक आमी एक मेसेज पावोवचें ते उद्देशान आमी करचे देखून तुमी पळयलां आतां मस्त देशार देखून आयले गुजराता देखून आयिल्ले आसा ती राजस्थाना देखून आयिल्ले आसा दिल्ली देखून काश्मीरा देखून इतले पुरात देखून येवन पुन्हा प्लस आमची गेले सारस्वत पुरा वट्ट मेळणे करचे एक तसले एक उत्सव हांगा तुमी पळयता आसा ती तशें जावन तुमकां पळयलां तर म्हाका भारी खुशी जाता आसा वाशी म्हणके वाशी बशी विजृंभणे हांगा चल्ला आतां म्हळ्यार वाशींत करच्याक आनी हांगा करच्याक व्यत्यास कसो म्हळ्यार हांगा फुल्ल वॉलंटियर फोर्स तुमी पळयात वाशींत कशें म्हळ्यार आमी एक स्टेज आशिल्ल्या हॉलांत आमी वचून रेंटल करून आमी करून सगळ्यांक कॉन्ट्रॅक्ट दिवन केलेलो मात्र हांगा तुमी पळयला आमगेले आमचे गलचारक्यांनी येवन एक वारा फुडें येवन पुरा सेटअप हांगा तुमी पुरा पळयला मंडप घालचे दुखून मॅटींग दुखून तुमगेले किचन सेटअप पुरा पळय आजी मागशें तुमकां हेंच एक आमगेली युनिटी हे मुखारसून वाडून वचूं काय म्हळ्यार खातीर असल पुरा कार्यक्रम आमगेले स्वाम्यान आमगेले खातीर घालून दिलेलो आसा पण हांगा कार्यक्रम करता जाल्यार ते रजिस्ट्रेशन लागून दवरून अखेरताय म्हणजे खंयच्यान कोणाकय ओन येवचें न्हय एकोमोडेशन त्या प्लॅन कशी कितली एक टीम कशी तुमी बैसून प्लॅन केला आमी एक सादारणशी म्हणटा की एक 3 महिन्या फुडें दुखूनच हांगा एक आमगेले सारस्वत कमिटीची टीम येवन हांगा राबिले म्हळ्यार आमगेले प्रदीप अण्णा माधव आनी पुरो येवन तांगेले वॉलंटियर्स घेवन हांगा कितले लागीं मस्त संघ समजता की तांगेल्या वचून आमी रिक्वेस्ट दिले अशें आमगेले भायर दुखून प्रोग्राम लास्ट टायम नवती केलेलो म्हणगेच आमी सकाळी कुटिरांत वचून आमी नेमगून तांगेला परमिशन घेवन तांगेले रूम्स आमी तवाळीचे आमी ब्लॉक करून सोडले ब्लॉक करून ताजे रूम्साचे आमी पुरा डिटेल्स म्हायती पुरा घेवन आमगेले डायरीर बरोवन सकाळांक आमी मेसेज केले की कोण येता की तुमी कोणाक रूम जावका आमगेले तर्फेन तांणी आमकां सुरवेरी तिळसी जाल्यार आमी तुमगेले नांवार ब्लॉक करून दवरता तशेंच आमी एक राजस्थानाचे 400 रूम दिलेलो आसा आमगेले आमचे गलबुर्गांक एक 85 जाणांक रूम दिलेलो आसा हे सकाळांक तांकां एक
सुविधा करून दिवन प्लस खाण जेवण पुरा हांगा करचें म्हणून आमी निर्णय केले ते प्रकार जाता आनी सुत्ताक चड कांय दूर ना तशें जावन आमी रजिस्ट्रेशन कावंटरार कोण येता की चंद कोण एक हॉटलाची कशी तुमी वचून रिसेप्शना वचून तुमगेलें ID कार्ड परत दिवन तुमी कार्ड घेता की तशीच आमी हांगा रजिस्ट्रेशन कावंटरांत तुमगेलें नांव गांव सांगलें कुडलें तांणी तुमगेलें अलोकेटेड रूम दिवन तांणी आमगेले वॉलंटियर थंय येवन असिस्ट करून तांकां जेवण खाण दिवन आमी रुमा सोडची वेवस्था केलेली आसा तशें जावन हें सक्सेस जाता आसा तुमकां कशी कितले तृप्ती दिसता ह्या तीन आमी पळय मंगळुरांत ती तुमी येयला जी वाशींत आसा हरिद्वारांत मना कशें दिसता दोनी दिवस अखेर येता हांव सुरवेरी मेळ्ळा म्हणजे गांवांत करच्याकय आमगेले बॉम्बेंत करच्याकय व्यत्यास हांगा कसो म्हळ्यार हांगा तुमी पुरा ट्रान्सपोर्टेशन एक आलं म्हळ्यार हांव तेंच म्हणटा आमगेले जेनाल एक युनिटी कितले म्हण पळोवका तुमकां जाल्यार हरिद्वारा येवका तुमी इताक म्हळ्यार आतां मंगळुरांत आमकां वॉलंटियर्स फोर्स आसा बॉम्बेंत सादारण म्हणटा वॉलंटियर फोर्स हांगा म्हळ्यार तशी ना हांगा वॉलंटियरान तांगेल उद्योगांत उद्योग वेव्हारांत पुरा तांणी रज काणू हांगा येवन फुल्ल डेडिकेशन इता म्हळ्यार हें राताराती सेट करूं जायना हें म्हणटा तुमी आतां पळयता आसात हें पुरा एक वरां फुडें दुखून आमी म्हळ्यार बिल्ड करून दवरलें ते मात्र न्ही तशी जेवणाची अरेंजमेंट म्हळ्यार पुरा सामान आमी केलो रेशन पुरा आमी बॉम्बे दुकान हाडिल्लें म्हळ्यार हांगा लागी आमकां नाम मेळना म्हणणें मात्र ते आमकां टच नातिल्लें निमित्त आमी पुरा थंय दुखून ट्रान्सपोर्ट करून ते हांगा हाडून आमगे स्टॉक गोडावनार दवरून कशी जावका इत्यादी दिसाक ते आमी घेता गेली ती सो त्या प्रकार आमी पळोवचें गेल्यार हें एक विजृंभणेर चल्लां म्हळ्यार एक कांय संशय ना तिता म्हळ्यार हरिद्वार क्षेत्रांत बाकी कडेन बशी हें हरिद्वार क्षेत्रांत दोनी स्वामी उपस्थितीर भारी चंद रितीर जालां आनीक एक विशेष सूचना आमगेल्या दर्शकांक आसा म्हण म्हळ्यार चित्रापूर मठ स्वाम्यान तांगेले कॅम्प भायर दवरून तांणी हांगा येवचें आशिल्लें मात्र आमी रिक्वेस्ट केलें देखून हांगाचे आमगेले मठाचे स्मृती भवनांत तांगेले कॅम्प तांणी हांगा दवरला तांणी हांगाच विराजमान जावन तांणी एक 4 दीस की 5 दीस कॅम्प करून पुर्ती तांगेले फंक्शन जेत्तर तांणी वता म्हूण सांगून तांणी हांगेले कॅम्प करता आसतना तांगेले जेनान येवन आमगेले वटून मेळटाना ते एक व्हड एक आमगेले एक संगम म्हणटा पळय ते आमकां पळोवचें मेळचें एक म्हळ्यार एक व्हड एक आमकां अवकाश दिलेलो देवान ताका धन्यवाद सर मुखारचे पंत गोवांत कोरका म्हणून आयकल्लें आसा वय वय कशी त्या जाल्यार तांत एक विशेश कसो सवाल आसा तुमकां म्हळ्यार आतां हांव म्हळ्ळां म्हणके आतां आमगेले मंगळूर जाल्ले बॉम्बे जाल्ले आतां तशीच आमगेले हरिद्वारचे अंतू आमी तीर्थक्षेत्रांत गेले गोवा म्हळ्यार आमची गेल्यांक एक विशेश म्हळ्यार कुलदेवाल गांव भोंवची विशय ते विंगड आसता एक डेस्टिनेशन म्हूण लेखता ते मात्र एक तें सोडून आमगेले गोवाचें कनेक्शन कसो म्हण पळयल्यार निजावन आमी पुरा वट्ट जावन म्हळ्यार गौड सारस्वत देखून जावन येवन आमी सेटल जालेले एक जागो म्हणटा गोवा तशी तें एक गोवा स्थळार आमी एक कोरया म्हूण आलोचन केलेलें आसा थंय करतना आमकां कसो जाता म्हण म्हळ्यार बाकी दोनी स्वाम्यांक चिक्के अवकाश तांकां म्हळ्यार तांकां लागीं जाल्यार तुका तांकां येवचें हें जाता तो नेक्स्ट इयर आमी एक्सपेक्ट करता 4 स्वाम्यांक ओट्ट कोरून ह्या सारस्वत संमेलनाचे एक तांगेले एक आदेश घेवन तांगेले एक आमकां आशिर्वचन जावका म्हूण आमी एक प्रयत्न करून आमी ते निर्णय केलेलो आसा आमी जाग आनी चूज करनी पळोवया मात देवाल देन तांवे चंद्रितीर जाता म्हूण हांव लेखतां अखेर जावन दिपण युथाक कसले पण टिप्स मेसेज दिवच्याक इश्ट भोगता नाही युथांक हांव कसो न्ही टिप्स दिवचे ना हांव हांगाची युथा पळोवन टोटली इन्स्पायर जाला म्हळ्यार आमी शिकूंक कसो म्हळ्यार हें मुखार अशी चोल वचूंक जाल्यार सक्कड युथान तांगेले किंचित टायम थोडेची आमगेले समाजा खातीर काडका तें कळ्ळें म्हणजे जाल्यार असले सक्सेस आमी आनीक येवचे पिढयेंकय आमी दिवचे तसो आमकां एक अवकाश मेळटा म्हळ्यार एक हांव गॅरंटी सांगू येता तशें हांव सक्कडे युथांक रिक्वेस्ट कसो करतास म्हळ्यार सक्कडे आमकां जालें तितलें किंचित रुपार कितलें आमच्यान जाता तितली एक समाज सेवा आमी कोरका करता आसा ती ना म्हणा तशी जावन त्या देवान आमकां आनीकय मुखारसून जेवचे तसले एक अवकाश देवान घडसून दिवन आमगेले कारण काम करून घेवका म्हळ्यार म्हगेले एक उद्देशार प्रार्थना दवरता हांव तशें जावन सक्कडे युथांकय देवान बरें करता म्हूण मागून घेता देव बरें थँक्यू आतां आमगेलो आमगेल्याची JSP समाजाच्या एक नमुनेरी पिल्लर्स म्हणून येतात तांणी असं चांगलं आम्ही आता निमगू बी तांगेले अनुभव मागीर खंयचे रितीरी हें एक सारस्वत संमेलन इतलें यशस्वी जावच्याक तांणी कसं म्हूण लेखताची म्हणून जगण आसा नितीन आसा तशीच अमितण आसा तशीच वाशी दीपकण आसा जयंतण आसा तशीच मागीर राजवण आसा नमस्कार आमच्या कसं म्हणटाचे नमस्कार ह्या विश्व सारस्वत फेडरेशन फॉर्म जावन आज एक 23 वर्स जाल्या 23 इयर्सांत केलो विशय कारण आमी ते एक्सपॅन्ड आनी करूं जाय न्ही आमकां जाल्यार ही सुदीन सोमायल अनुग्रहन सुदीन सोमायल डिरेक्शनारी हें फॉर्म जालेलें आनी सुदीन सोमायल एक विजन आशिल्लें कसो म्हळ्यार ऑल ओवर द वर्ल्ड तेचे खातीर विश्व म्हूण नांव बरयलां
विश्व सारस्वत त्यांनी सगळ्यांनी एकत्रित जावन एक कोर व्हॉलंटियर फोर्स तयार जावका आणि एक युनिफिकेशन जावका त्या युनिफिकेशनाचे केलो रिजल्ट येता त्या रिजल्ट्सान तूं एक उदाहरण तर हेजेरी आतां कश्मीर ह्या जाग्यारी आमगेलें एक देवस्थान जावची की आमी त्या भुमी वापस रिक्लेम करची की तशीची विंगड विंगड आमगेले ऐतिहासीक देवस्थान आशिल्लो जागो गोवा आसच्या पुरो खंय खंय सारस्वत आमगेले हिस्ट्रींत आमी मायग्रेटरी म्हूण एक फिनॉमिनन आमगेले वेरी हें जाल्लेलो आसा त्या मायग्रेटरी फिनॉमिननाक आमी स्ट्रेंथ म्हूण घेवन एक एकत्रीत जावन कशी एक फोर्स जावं येता आनी कशी एक विंगड विंगड समाज एक गौड देश म्हळ्यार बंगाल दुखून उत्तर प्रदेश दुखून बिहार दुखून पंजाब दुखून काश्मीर दुखून कोच्ची ताईं तितले आमगेले लोक स्प्रेड जावन आसा आनी हेंतल्यान कितलींय वर्ग विदेशां आसाची हे सगळ्यांक एकत्रीत करून हेंकां कशें आमी चॅनलायज करून एक सिंगल ब्लॉक जावं येता म्हूण एक सुदीन स्वामीले एक विजन आशिल्लें त्या विजना अंतर्गत आमी आतां हे स्टेप्स घेवन हे तिनूय कार्यक्रम जाल्लेलो आसा 1-1.5 वर्स भितरी आनी एक सक्सेसफूल प्रोग्राम तेजी सक्सेस जावच्या कारण कसं म्हळ्यार आमगेले सक्कड मठाधीश तेंगेलो आशिर्वाद आनी आमगेले कोण वॉलंटियर्स आसाची स्वयंसेवक तेंगेले कश्ट तेजे निमित्त हे सक्सेस जाल्लेलो आतां हे सक्सेसान तूं कसं आमगेले केलो फेलियर जाय आसता ते आमी एवरी टायम रिव्यू करून ताका कशें इम्प्रूव करचें तेजे वयल्यान कशें आमी नेक्स्ट हें करूं आतां दिपकान सांगिल्लें आमी नेक्स्ट गोवान तूं नेक्स्ट इयर एक कन्वेंशन करता म्हूण लेखलां त्या सक्कड इश्यूज आमी नेक्स्ट इयर हें करता एड्रेस करताची कशी वायडर पार्टिसिपेशन जावं येता ते सकट आमी चॅक करून तेजे वयर डिलिब्रेशन करून आमी ताका एक स्वरूप दिताची त्या स्वरुपाक अंतर्गत आमगेल स्वाम्याल एक विजन आसा आनी आमी तें विजन पार पाडका म्हूण आमी लेखील आसा करोडो लोक येवका आनी मुखार आमगेल कन्वेंशनाक अस्सल वेवस्था करता आसतना देवान आमकां शक्ती दिवका आनी त्या सरस्वतीन आमकां आमगेल पाठीबलार राबून आमगेल कारण तें करून घेवका म्हणून आमी देवालय आनी सरस्वतीला मागचें धन्यवाद देव बरें आतां आमगेलो मुंबई JSP सभा नवी मुंबईचे अध्यक्ष तशीच काशीमठ खेड आजे अध्यक्षनाचे जयंत नस तांगेले निमगुव्या तांणी बॉम्बे लागून हांगा हरिद्वाराक सुमारपण येवन शपथ जाल्यार ह्या सारस्वत संमेलन जावच्या टायमार एक येवचें म्हळ्यार ते एक विशेष अनुभव त्या विशीं तांणी कसं म्हणटा म्हण नमस्कार जयंत जाणा कसं म्हणटा नमस्कार पुरेनाक विश्व सारस्वत संमेलन हांव आयकलेल्या प्रकार 27-year-old इनिशिएटीव सुधींद्र स्वामीन सुरू केल्लें म्हळ्यार सारस्वताच्या समाजाचे पुरा इंडियान न्हय तो ग्लोबली पुरा कडेन तो आसता ती तांकां एकत्रीत करता पुरायना ओट्टू हाडका म्हणचे एक उद्देशार हें सुरू केल्लें म्हणून आयकलां आनी हे सारस्वत संमेलन हांगा हरिद्वारांत जावचें एक व्हडलो विशय हें म्हळ्यार गंगा तीरांत तशें सुधींद्र तीर्थ सोमेलय हांगा हें आसा चैतन्य प्लेस तशी हांगा वेदव्यास देवालय देवस्थान आसा ह्या व्हडल्यो विशयो आनी हांव पळयल्या प्रकार 1000 जनाले हांगा ओट्टू जाल्ले ती आनी पुराय नाले एनर्जी पळयल्यार वॉलंटियर जनान पुराय काम करचें पळयल्यार भारी खुशी येता इथं म्हळ्यार हें असल इनिशिएटीव सुरू केल्ले निमित्ती पुराय यंगस्टरां ओट्टू हाडयत पुरा आमची गेल्यान विंगड विंगड गांवांत आसले तांणी येवन तांणी ओट्टू जावन आनी मुखार कसं असल कार्यक्रम करता तांचो आमगेल्या समाजाक कशी हेल्प जाता आमगे समाज कशी उद्धार करूं येता आनी समाजान तो केलो निडी आसा तांकां कशें हेल्प करूं येता त्या प्रकार पुरा विचार जाता आसा हें व्हडलें एक विजन हें मुखार जावन आनीक सुमार जाणांन येवन हें सक्सेस करून दिवका म्हणून हांव पुरेनाल निमगिता आनी पर्टिक्युलरली हांव हांगा हें सेकंड सारस्वत संमेलन हांव एटेंड केलेलें फस्टाचें बॉम्बे जालेलें बॉम्बेत कसं म्हळ्यार पुरा अरेंज करचें म्हळ्यार पुरा तूं 4 जाणां आपोवन मांटो घाली तें हें कर म्हळ्यार पुरा अरेंज करचें इजी म्हूण दिसता हांगा पुरा आमचे गेल्यान एक वार फूड येवन त्या जेवणा कार्यक्रम हे हॉल हें आसा की जेवणाचे प्लेस आसा की ताजे मागीर मांटो घालचें हें पुरा काम केलां भारी खुशी येता म्हळ्यार मुखारी हें सक्सेस जावंक म्हणून हांव पुरेनाक विनंती करतां देव बरें कर या सेवा जीवन की नींव है आत्मानुभूति ही जीवन
का लक्ष्य है। आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, 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 सारभरित जीवन, सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन, सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार
सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन हेलो 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 हेलो
सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है
आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, 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 सार भरित जीवन, सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन, सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन।
One small announcement at VIP area, wash area, we found this Rudraksha Mala. If anybody has missed it, kindly come to the stage. Rudraksha Mala. Found this. सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन 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 सार भरित जीवन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा
जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। 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 सारभरित जीवन। सारभरित जीवन। गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज। बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की। बोलो श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज। बोलो श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की। बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु की। जय जय गुरु महाराज 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 की। बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की। शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का
ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, 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 सार भरित। अभी वेद घोष से समारोह कार्यक्रम प्रारंभ होता है। अभी सभी को आई रिक्वेस्ट यू टू स्टैंड। बटमम्मा का विनंती करता तन येऊन वेद घोष कर का म्हणून। हरे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्गणैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्यासेम देवहितयदायुः। ॐ द्रविणोदा द्रवीणसस्वरस्य द्रविणोदासनारस्य प्रियं सदा द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारा सदा दीर्घमायुः। नवो नवो भवति जायमानो केतुर्षसामेत्यग्रम् भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरते दीर्घमायुः। उच्चादिविदक्षिणावन्त अस्तुर्ये अश्वदा सूर्येण हिरण्यदामृतत्वं भाषन्ते वासो दासोऽमप्तिरन्तायुः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। I request the President of the Vishwa Saraswat Federation, Pradeep Ji Pai, to welcome the gathering and Swamiji. यहाँ की आराध्य देव वेदव्यास जी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रप्रथम मैं हमारे परम पूज्य गुरुवर्य वृंदावनस्थ श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी के महाचैतन्य को विशेष प्रणाम करता हूँ। कारण 1998 में पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी ने हिंदुस्तान का कैपिटल राजधानी न्यू राजेंद्र नगर में बहुत सुंदर सारस्वत संस्कृति भवन निर्माण करके हमारा सारस्वत हिंदुस्तान में एकीकरण करने के लिए विश्व सारस्वत फेडरेशन का स्थापना की। आज इधर विराजमान हमारे पूज्य स्वामी जी काशी मठाधीश श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी जी के नेतृत्व में एक तीसरा सम्मेलन हो रहा है। उनको भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पूज्य स्वामी जी चित्रापुर मठाधीश सद्योत शंकराश्रम स्वामी जी को भी साष्टांग प्रणाम नमस्कार करता हूँ। मोक्ष नगरी हरिद्वार में चलने ये सारस्वत सम्मेलन को गोकर्ण परतगाड़ी मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी और कैवल्य मठाधीश श्रीमद शिवानंद सरस्वती स्वामी जी ने भी हमको आशीर्वाद संदेश भेजा है। दोनों स्वामी जी को भी
साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हमारे VSF का दायित्व हमारे परम पूज्य गुरु श्रीमद संयमींद्र स्वामी जी ने लेके 2020 में प्रथम संगम हरिद्वार से ही आरंभ करने की विचार था, मगर कोविड के कारण हरिद्वार में नहीं हो सका। 2021 में पहला सम्मेलन कर्नाटक के मंगलूर कोंचाडी में किया। दूसरा सम्मेलन 2022 में मुंबई के वाशी में आयोजित किया। ये याद आप सबको रहा होगा। कल से चल रहे ये सम्मेलन में हमारा नामी सारस्वत भाई बहन जो अलग अलग स्तर पे देश की सेवा कर रहे हैं, उन सब ने उनका कीमती वक्त इस सम्मेलन में आने के लिए निकाल के अपना मूल्य विचार हमारा साथ प्रकट किया है। मैं उन सबको विश्व सारस्वत फेडरेशन के तरफ से प्रणाम करता हूँ। ये सारस्वत संगम में हिंदुस्तान के कोने कोने से केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के बीकानेर से, कश्मीर से, न्यू दिल्ली से, गाजियाबाद से और मथुरा से आए हुए भाई बहनों को मैं आदरपूर्वक स्वागत करता हूँ। हम सबको आज गर्व है कि पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब सारस्वत एकीकरण करने में सफल होंगे और देश का बहुत अच्छे लीडरशिप माननीय मोदी जी के टाइम में हमारा सारस्वत ध्वज भी हिंदुस्तान में उड़ेगा, ऐसा बोल के प्रार्थना करके मेरा दो बात विराम लेता हूँ। I request Dr. Vinod Ramchandra Rao, IAS, Gujarat cadre, to address the gathering on the topic Saraswat Unity through Saraswat Revivalism. हरिद्वार व्यास मंदिरांतू विराजन आशिल्ले वेदव्यासाक प्रणाम करून आमगेल व्हड स्वामी श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी हांक उडगास करून हांगा प्रत्यक्ष दोन्ही गुरुवर्यांक साष्टांग प्रणाम करून दोन उतर। Saraswat unity through Saraswat revivalism. Unity is always a result of commonly shared self-identity. For example, people feel united based on commonly shared national identity, gender identity, linguistic identity, political identity, ideological identity, or at least a narrow family identity. What is the identity of a Saraswat? Should genetic identity be the sole or even the primary factor of Saraswat identity? Is belonging to a common ancestry and a common genetic stock the primary factor for Saraswat identity? I think birth and genetics has a limited relevance. But if that is the primary bonding factor of a collective identity as Saraswats, it will be challenging to keep it strong beyond this generation. Why? Because this generation will be the most disruptive of all generations. In an exponentially modernizing and westernizing world, the young minds do not necessarily resonate with the traditional social constructs like caste, race, religions, and nationalities. Today, meta-narratives and causes like environmental protection or animal rights or gender rights make greater impact on young minds than the traditional religious and social identities. This Saraswat Sammelan should hence look beyond the identity of Saraswat entitled by birth
and aim at cultivating Saraswat qualities and encouraging Saraswat activities in our community. Bhagwan Krishna said in 4th chapter of Bhagavad Gita, Chaturvarnyam maya srashtum gunakarma vibhagasaha. I have created the 4 varnas, differentiated on qualities, guna, and actions, karma. The varna system as per Krishna was not based on janma and thus not through entitlement by birth or inheritance. It is relevant to our context too. Merely being born into a Saraswat family is not sufficient. One has to inculcate the values, qualities and principles of a Saraswat. One has to adopt these into their actions and become a Saraswat. What are these qualities that we are referring to here? Again, Bhagavad Gita has answers to this in the 18th chapter, Moksha Sannyasa Yoga. Shamodamastavashaucham, Shantirarjavamevacha, Jnanam Vijnanam Astikyam, Brahmakarma Swabhavajam. Tranquility, restraint, austerity, purity, patience, integrity, knowledge, wisdom and belief in a life hereafter. These are the intrinsic qualities and activities of Brahmins. Saraswats are whom Shvetasvatara Upanishad exhorts, Vayam Amrutasya Putraha. We are the sons of the immortal. What are these sons of the immortal meant to be? What are these divine children of the Supreme Divine meant to be? Bhagavad Gita again gives 26 qualities of the divine in 16th chapter, Devasura Sampat Vibhaga Yogaha. Abhayam Sattva Samshuddhir Jnana Yoga Vyavastitihi, Danam Damascha Yajnascha Swadhyayastapa Arjavam, Ahimsa Satyam Akrodhas Tyagas Shantirapavishunam, Daya Bhuteshvaloluptam Mardvam Hirachapalam, Teja Kshama Dhriti Shaucha Madroho Natimanita, Bhavanti Sampadam Devi Mavichatasya Bharata. Fearlessness, purity of mind, wise management of knowledge. Just knowing doesn't suffice, wise management of the knowledge. Charity, self-control, sacrifice, study of scriptures, austerity, uprightness, non-violence, truth, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion to all living beings, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steadiness, absence of fickle-mindedness, vigor, forgiveness, fortitude, purity, freedom from malice, absence of excessive pride. There is a longer list of Asuri qualities, mainly comprising of vanity, arrogance, pretension, anger, cruelty, ignorance, impurity, absence of religious discipline, absence of truthfulness, absence of faith in God, endless desire for sense pleasure, delusion, false values, worry, attachment, greed, egoism, slander. If I were to assess my own qualities, I will have to confess that Asuri qualities in me might outnumber the divine qualities, at least in weak moments when provoked. So the first truth that we have to realize and accept is that somewhere we need to inculcate and nurture divine qualities and activities that would create a commonly shared Saraswat identity. Indian social ecosystem has always seen a very peculiar phenomenon termed by eminent sociologist M.N. Srinivas as Sanskritization. Sanskritization is a process in which the lower castes adopt the cultural patterns of the higher castes to raise their status in caste hierarchical order. This embodies the collective aspiration of a community to move up the social hierarchy through earnest efforts to win over acceptability of other stakeholders. There is an antithesis to it in sociology. Desanskritization. You are not following. There is an antithesis to this in sociology. Desanskritization is the process by which a high caste person stops following his beliefs, customs, traditions, and practices, and thereby lowers his social and ritual position. This leads to loss of his previous high identity over a period of time, resulting in a downward movement in social hierarchy within a generation or two. Saraswats need to seriously introspect where they stand amidst these conflicting socio-cultural trends. We need to realize and accept that desanskritization has caught up with many within the larger Saraswat fraternity. This is a crisis of dharma that would intensify in this disruptive generation like never before. Here comes the second truth. Unity is not possible without a collective self-identity, but unity is also not possible without a commonly shared purpose, a commonly shared dharma. Even Yadavas could not be united despite Krishna's effort,
because after Mahabharata war, they had no commonly shared purpose to unite. Unity is also very dangerous if it is for a wrong purpose or misunderstood purpose. Even Kauravas were united. This unity for a wrong cause or an incomplete understanding of Dharma proved detrimental to everybody. Unity is put to test in adversity. For this, you need a commonly shared adversity. Few years back, entire mankind forgot all narrow identities and united to fight a pandemic. At that time, national borders or political animosities did not matter. Similarly, Saraswat unity was always at its best in times of adversity. The historical journey of Saraswats have been a journey of commonly shared adversities, adversities of geography, climate, ecology and environment, adversity of destruction, persecution and conversion, adversities of recurrent migration, cultural assimilation and linguistic preservation. However, this has mostly to do with our past and not our present. As for the present, many of our adversities today are faced collectively but felt and fought individually. Be it adversities of inequitable opportunities in governance systems or demographic distortions in the society or dilution in cultural value systems, we face these adversities as Saraswats collectively but feel or fight them individually. Hence, there is no collective Saraswat angst against the collectively faced adversities. The immediate purpose of Saraswat unity should be Saraswat revivalism and understanding of Dharma in today's context, reigniting the divine qualities and collective progress through the path of service of all and with the objectives of welfare of all. The longer and larger purpose of Saraswat unity should be Vishwa Kalyan, to help our country lead the world as Vishwa Guru. For decades, we were taught that a mausoleum built on Yamuna river in the 17th century was the symbol of love. How far from truth it was. A memorial built by a ruler for his wife who died frail and ill, giving birth to the 14th child. A memorial built by a husband who went on to marry many more. A memorial that served the purpose of pomp, vanity, ostentation and oppression. 6 centuries before this memorial was built on the banks of Yamuna, a widowed queen built a memorial for her deceased husband in the 11th century on the banks of another river, our own river Saraswati. And what did she build? Not an edifice, not a tower, not anything to serve the pomp and pride of royalty. Rani Udaymati built a beautiful, intricately designed stepwell for the public to draw water from, for public welfare, for public utility, keeping public interest above personal pride. What does a deep stepwell on the banks of river Saraswati signify in the 11th century? Very evidently, the water table would have gone down and Saraswati might have become by then a seasonal river. Through a very deep stepwell, the queen was addressing the most felt public purpose of water security of citizens and addressing seasonal drought. It took 2014 and the efforts of the central government to get Ranki Vav recognition as World Heritage Site by UNESCO. We all have seen it on our new ₹100 note. आप सबने 100 रुपए के नोट के पीछे ये रानी की वाव देखा है नया नोट के पीछे, लेकिन हमने उसका सिग्निफिकेंस अभी तक समझा नहीं. Many of us would not be aware of the historical significance and especially cultural significance for us as Saraswats. Between 2007 and 9, I happened to serve as district collector of Patan district. The historical cities of Patan, which was for a long time the capital of Chalukyas, and the Puranic place of Siddhpur, famous as Matra Gaya, where Kapila imparted wisdom to his mother Devahuti, are situated on the banks of Saraswati. Every year during monsoons, Saraswati becomes live and flows with rainwater and often overflows and floods Patan. Patan district is from where Saraswati entered the Gulf of Kutch and eventually the Arabian Sea.
Patan and its historic Rani Ki Vav symbolizes the purpose of dharma of Vishwa Kalyan, and Saraswats should inculcate this value. Most of what we speak about Saraswat unity has to do with what we wear more than what we are. Resurrecting the past glory may not appeal to a generation that is fast modernizing, westernizing and globalizing than never before. For a generation which is increasingly mobile, migrant and connected with the larger world than never before, preserving ethnic and cultural self-identities based on commonly shared past becomes very difficult. The roots of our past can often become our burden if not accompanied by the wings of future. A commonly aspired future can be more motivating than a commonly shared past. No wonder when our Honorable Prime Minister thought of a befitting motto for India's presidency of G20, he thought of one world, one family, one future. As much as a collective past, it is this message of one future, the collective aspiration for a better future, that should bring about Saraswat unity. And what is that collective future of Saraswats? Gone is the age of wars and revolutions where brute military power helped rule the world. Gone is the age of capital where in money power, machine power and mass industrial production and trade helped rule the world. Today we are in an age of knowledge where information, technology, data and intelligence help us rule the world. This is what our Saraswat forefathers have always been doing. Saraswati being goddess of Vidya, Saraswats have traditionally been the sadhaks of Vidya, Buddhi and Jnana. To put it in the words of modern management guru Peter Drucker, Saraswats are knowledge workers, the executives who should be thought leaders of organizations. To serve the cause of Vidya of students is what Saraswats should be obsessed with. I feel blessed to be serving as Secretary to the Education Department of Gujarat State and hence being part of this divine cause of imparting Vidya. If Saraswat as an ethnic identity has to remain strong, it has to focus on its human resource development to help our younger generations excel in education, information technology, data sciences, artificial intelligence, biosciences, 21st century skills and futuristic technologies. Let us focus on startup incubations, entrepreneurship, job creation, and in this knowledge age become job providers rather than be half-educated, semi-skilled job seekers. This is the surest way to revive Saraswat identity and strengthen Saraswat unity. If a developed India is poised to lead the world in the coming decades, it will bank on its resurgent Saraswats to raise India to become the Vishwa Guru. Let the generator of Saraswat unity be recognizing who we are as Saraswats. Let the propeller of Saraswat unity be realizing why we are as Saraswats. Humble prayers at the divine feet of Dharma Gurus to guide us and bless us along this path of Saraswat Dharma. Om Sahana Vavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvina Vadhitamastu, Ma Vidvishamahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om may He protect us together. May He nourish us together. May we work jointly with great energy. May our pursuit of knowledge be intense. May we not have any mutual disputes. Om, let there be peace, peace, peace. Namaskar. Gurupada Pujata Jata. I request the Sangatana Pramukh of Sanskrit Bharati, Dinesh Kamaji, to come on to the dais.
भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन 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 सार भरित जीवन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्तिं ध्यायेत् ब्रह्मचन्द्रशलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टं जीवन का लक्ष्य है आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित पत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओमे पुरोषं व्यगा
से स्थापित नारिकेल कदली फल यामी ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय ध्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा प्राणापान व्यापारसमानाः ओम तेर्महनैवेद्यम् आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है Yesterday we had given Saraswat Samman 2023 awards to 4 Saraswats. Yesterday Mr. Ram Gopal Sharma, Sri Ram Gopal Sharma वो नहीं थे, आज इधर आए, वो आकर के लिए आपसे विनंती करता हूँ. After this, we have the presentation program for the speakers. The speaker. Swamiji's Nitin Gokarn IAS, Principal Secretary, Uttar Pradesh Government, Nitin Gokarn. दिनेश कामत, संगठन प्रमुख संस्कृत भारती. दुर्गेश चंद्र वर्कर.
दिनेश कामत, दुर्गेश एस चंदावरकर, नंदमोहन शणे, स्मिता शणे, डॉक्टर विनोद रामचंद्र राव, IAS गुजरात कैडर, एक डॉक्टर विनोद रामचंद्र राव, IAS, स्मिता शणे, शफाली वैद्य, राघवेंद्र पै, सारस्वत सज्जन सारभूत जीवन सरसि जाक्ष श्री हरि को करते सरसि जाक्ष श्री हरि को करते प्रवीण कडले, किशोर जी मसूरकर, सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नीव है आत्मानुभूति जीवन का लक्ष्य है आत्मानुभूति जीवन का डॉक्टर राम सारस्वत, भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही
भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है किशन गोस्वामी, गिरीश सारस्वत, संपत सारस्वत, केदारनाथ शणे, सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य अनूप सारस्वत, त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन मनमोहन जी सारस्वत, सज्जन मनमोहन जी सारस्वत, भरित जीवन अजित भाई फ्रॉम डिलीवरी, जीवन
संपत सारस्वत, राजस्थान बीकानेर से. He has brought 336 delegates to this worldwide conference. Uday Kumar P. Gurkar, मनमोहन जी सारस्वत इधर आए हो तो स्टेज में. सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसी जाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन. सरसी जाक्ष श्री हरि को करते हैं. Professor Narendra L. Naik, Professor Narendra L. Naik, Ajit Gunjikar, Ajit Gunjikar, they are also the sponsors, silver sponsors for this conference by Xera Pharma Private Limited. सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है. आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है. आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है. सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन. भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है. भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है. विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है. विश्वरूपी C. Nandagopal Shane, शरीर का आत्म ही भारत है. सारस्वत सज्जन सार C. Nandagopal Shane and Devagiri T. Devagiri T is silver sponsor for this project, for this conference. सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसी जाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन. सरसी Deepak Bhaskar Shane. हरि को करते हैं. Deepak Bhaskar Shane is company Medic Dragon Private Limited. He is the platinum sponsor for this Saraswat conference. On behalf of the company as well as he was the speaker today, I request him to take the prasadam.
Ajit Kamath. He was the speaker as well as he was the platinum sponsor. He is the managing director of the company Arc Pharma Labs Limited. On his behalf, I request Jayant Prabhu from Mumbai to collect the prasadam from the Swamiji. Jayant Prabhu. Jayant Prabhu from Mumbai to collect the prasadam on behalf of Arc Pharma Labs Limited. Ashok Kini, Pradeep Pai. GSB Seva Mandal was our sponsor. Events partners, I request Amit Pai from Mumbai, who is a member of the GSB Seva Mandal, to collect prasadam. Hangyo Ice Cream was our silver sponsor. I request Jagdish Pai from Hangyo Ice Cream to take the prasadam. Bliss GVS Pharma Limited is our silver sponsor for this conference. I request Rajiv Wadyar from Mumbai to collect the prasadam. सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन Samyati Capital is our associate sponsor. On his behalf, I request C.A. Shivaram Kamath to collect the prasadam.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟ್ರು. Poltron Pro is our gold sponsor. I request Amit Pai to collect the prasadam, receive the prasadam on behalf of the company. Our media partner is Youth of JSB Worldwide. They have extensively covered this program for the last 2 days. They have been working on this program for the last few weeks, and we should give a. We request Naresh Prabhu, the director of Youth of JSB Private Limited, and Chetan Kamath. Anjana Suchi. I request Ankush Naik. Yesterday he has given a wonderful program, Ankush Naik, to collect the prasadam. And Balchandra Prabhu. Today evening he is going to give a good bhajan program. Balchandra Prabhu. I request C.A. Girdhar Kamath, who has been coordinating with our Secretary Madhav Kamath Arbet for the last 2 days. Scholarship. ಯೋಗೇಶ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಹಾಂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 24 ಮೂಮೆಂಟ್ Aniki. ಸಣ್ಣ ಸರಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ ನಾವು Kunala, agalla. Lanka tag jana artist agalla. Kali moment दिलं दोन लोक पॉलिंग याच्यापेक्षा म्हटले खाली moment तरी काढून जातं. अनेक छान असं I request Shailesh Mamin Kurve, Rajesh Bhagwat and Sridat Prabhu, the side artist for the music program, to collect the mementos from the Swamiji and prasadam from the Swamiji. Shailesh Mamin Kurve is the main artist.
I recognize the presence of a representative from Gokarnmat. I request Yogesh Kamath from Kumta to come on to the stage and receive the prasadam from Swamiji. I will also request the representatives of Kaulemat who have come all the way to attend this program to receive the prasadam from Swamiji. Representatives from Kaulemat. Representatives from Kaulemat. Last year, in the month of March, we had distributed 35.85 lakhs as scholarship to 250 Kashmiri students. This year also we have shortlisted 191 applications that we are waiting for their bank accounts and other details. Today, symbolically, we are giving them a certificate, and 9 students from Kashmir have come already. I will call their names. They should come and collect the prasadam from the Swamiji. Last year, we had given it to 258 students of 36 lakhs, 35.85 lakhs in the month of March at Jammu on behalf of Vishwa Saraswat Federation. This year, we have shortlisted already 191 students, out of which 8 students have already come. I will call their names. Please come onto the stage and take the prasadam from Swamiji. And symbolically, they should take the certificate also. Lakshita Kaul, Rajveer Singh, Anuj Raina, Ayavu Kaul, Rakshat Bhatt, Adarsh Tikku, Arpana Pandit, Kushbu Kaul. These are the 8 students who have traveled all the way from Kashmir. It was our vision of our Swamiji that we should support the Kashmir students who had faced lot of difficulties. We have already shortlisted 191 applications, and our Madan Jivan is here. We have requested him to collect the details of the bank account and other things so that we can make online payment of scholarship. It will be done on 28th of this month. लिस्ट भेजा है, लेकिन इस लिस्ट में अकाउंट नंबर नहीं है ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए। आज उसने एश्योरेंस दिया है वो मंडे के अंदर वो परफेक्ट लिस्ट भेजते हैं। सो हमने सोचा आज 8 बच्चे को सांकेतिक रूप से एक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के एक सर्टिफिकेट दे दो, एंड बाय 28th द स्कॉलरशिप विल बी क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट।
आत्म अनुभूति कॉपी ना योगेश कामत. Hello. So back on someone who's still with us. I would ask what next time स्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. मस्त खुशी जातस ह्या कार्यक्रमांतूं तुमकां सगळ्यांक पळोवन आनी विशेष करून हो सम्मेलन सारस्वत सम्मेलन मुंबापुरी अथवा मंगळूर अशी महानगरींतूं न्हय अपितू एक ह्या क्षेत्रांतूं मोक्ष नगरींतूं आयोजीत जाला. सो स्वाभाविक आमकां मस्त खुशी जातस. कई सारस्वत सम्मेलन हो चुके हैं. उनमें विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारस्वतों का परिचय होना साध्य हुआ, नहीं तो नहीं होता. हम बैठे हैं कर्नाटक में, आना जाना होता मुंबापुरी. आप लोग बैठे हो उत्तर प्रदेश, बीकानेर इत्यादि, हरियाणा, पंजाब. इन सारस्वत सम्मेलनों के माध्यम से ये मिलना हो रहा है. एक अत्यंत मधुर सम्मेलन. हमें बता रहे थे अब तक जो सम्मेलन हुए सब महानगरियों में हुआ करते थे. इस बार जो है एक पुण्य नगरी में हो रहा है, गंगा मैया के तट पे. हम आए 4 दिन पहले तो काशी मठाधीश ने बड़े प्रेम से हमें पहले देवताओं के दर्शन करवाए
और फिर अगले दिन जो है हमेशा आश्रम, ये मठ है पर एक आश्रम सदृश है, हरियाली है, बहुत अच्छा लगा। सब जगह लेके गए हमें। यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर पे गौशाला है, वहाँ पे भी लेके गए। फिर वहाँ पे वनस्पति और जो उपज हो रहा है वहाँ पे वो भी बताया। उनके हृदय में इतना एक रस है, आनंद आ रहा था, बता रहे थे ये धरती इतनी पवित्र है और यहाँ पे जो उत्पन्न हुआ वो तो हमें नैवेद्य में मिलता है, प्रसाद में मिलता है, वो सब बता रहे थे। फिर यहाँ पे आए और फिर उन्होंने इस स्थान की महिमा तो है ही, हरिद्वार है, फिर भी ये क्षेत्र में ये जो आश्रम बना है इसके बारे में बता रहे थे। आप लोगों को भी जानना चाहिए, क्षेत्र और समय को समझ के सब अच्छा कार्य होता है। देश काल संकीर्त्य कहते हैं। तो एक महापुरुष हमारे अभी जो काशी मठाधीश है उनके गुरु, तो उनको ये जगह बहुत पसंद थी, उनके लिए बनाया गया था। तब ज़्यादा यहाँ पे आबादी नहीं थी, सब हरियाली चारों ओर थी और गंगा मैया यहाँ पे बैठे बह रही हैं। तो उनको ये क्षेत्र बहुत पसंद आता था। बहुत समय जो है वो यहीं पे व्यतीत करने लगे। एक प्रौढ़ावस्था थी, मठ संभालना वगैरह शिष्य स्वामी को दिया गया और वो यहाँ पे रहते थे। और उनका संकल्प भी था, शरीर का त्याग करना है उस समय यहीं पे करना होगा। तो जब स्वामी जी हमें बता रहे थे कैसे उनकी संकल्प की शक्ति थी, उनकी आँखों में वो एक तेज था, होना ही है, गुरु स्मरण करें तो फिर एक जोश तो आए ही, एक अभिमान आए ही। फिर जब बता रहे थे तो मैंने देखा उनके तेजों में, आँखों में जो तेज है वो कुछ आर्द्रता भी थी उसमें, क्योंकि गुरु का स्मरण करते हैं तो गुरु का वात्सल्य का भी अनुभव होता है, तो फिर आर्द्रता आना स्वाभाविक है। बड़े प्रेम से बता रहे थे। तो इस प्रकार से एक विलक्षण यहाँ पे वातावरण निर्माण हुआ है और यहाँ पे आके जो एक सम्मेलन हो तो वो तो सिद्ध होना ही है। जिस उद्देश्य से हम मिलते हैं वो और भी वो उद्देश्य हमें स्पष्ट होना चाहिए। बस यही हम प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आ रहे हैं लोग, यही पहला कदम तो लिया, आगे क्या करना देखना है। हमारा भी संपर्क हुआ है, वैसे हमारे मठ में भी आए हैं, शिविर वगैरह हुए हैं बीकानेर से इत्यादि। प्रतिवर्ष उत्तर भारत जाना होगा तो और क्षेत्रों में भी हम जाएंगे। संपर्क बनाए रखना रहता है। उत्तर भारत में जो आक्रमण हुए हैं शायद उनके कारण एक भावना है सारस्वतों में कि बहुत कुछ लुप्त हुआ है, पुनः वो संस्कार जो हैं जागृत करने हैं। संस्कार हैं, सुप्त हैं संभवतः। तो फिर दक्षिण भारत में जो प्रणालियां हैं उनको भी हमने अपनाना है। तो आइएगा प्रेम से, सभी मठाधिपति भी प्रयत्न कर रहे हैं। कोविड चल रहा था, फर्स्ट वेव गया, सेकेंड वेव, वैसे तो अभी भी पाबंदियां थीं, पर परमिशन लेके काशी मठाधीश कहाँ, कश्मीर चले, वहाँ पे जाके लोगों को उद्बोधन किया, जागृति लाई। अब आप लोगों का कर्तव्य रहता है ये संबंध बनाए रखें, केवल सम्मेलनों में नहीं पर और भी कार्यक्रम आयोजित करके, या तो फिर जहाँ मठ हैं वहाँ पे आके कौन सी संस्कृति है। देखिए प्रत्येक क्षेत्र की एक विशेषता रहती है, भोजन की हो, भाषा की हो, तो उसे भूलना नहीं है। पर जो वैविध्य है उसको समझ के अनुस्यूत एक हम जिसको कह सकते हैं भारतीय संस्कृति, ये तो सारस्वत संस्कृति है, उसको समझाना, उसको समझना है, उसको पहचानना है और उसे दृढ़ करना है। तो ऐसे एक लिस्ट नहीं दिया जा सकता, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पर कुछ एक बातें हैं हमें करनी ही हैं। विभिन्न प्रांतों से आए हो, अरे यहाँ पे गंगा पूजन हम करते हैं,
गंगा मैया है, अब वहाँ पे डैम बन चुका है और ठंड है, बर्फ़ पिघला नहीं है अभी तक, इसीलिए वो उस भवचार जैसे वो पानी नहीं आए। 5 धाराएं हैं यहाँ पे, गंगा मैया में भी यहाँ पे। फिर से वो क्या होती हैं, फिर से मिलती हैं, तब जाके वो नदी बने। और नदी किसको कहते हैं? स्रोत है, उद्गम स्थान है, पानी बहने लगा, बहा 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 और फिर किसी रेगिस्तान में लुप्त हो गया तो उसको नदी नहीं कहेंगे। जब तक वो अपने पति सरित सागर से नहीं मिले, जब तक समुद्र में वो विलीन नहीं हो, उसका विसर्जन नहीं हो, तब तक नदी नहीं कहलाए। तो ये गंगा मैया है, विभाजन सा दिखता है, फिर वहाँ पे एक होके वो बहती है सबको पावन करते हुए। इस प्रकार से भले ही कितने ही प्रांतों से हम लोग आए हों, मिल के करना होगा। अभी पूर्व वक्ता ने अच्छी तरह से बताया था, यूनिटी इज़ ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ कॉमनली शेयर्ड सेल्फ आइडेंटिटी। ये तो यूनिटी संगठन का सर्वोत्तम लक्षण है, डेफिनेशन कहें तो। अरे आपको भी ये पसंद है तो आपको भी ये पसंद है, चलो मिल के करेंगे, इस प्रकार से संगठन होता है ना। अच्छा आप उस गांव के हो, देखो फिर मिलना वगैरह होता है। तो एक सेल्फ आइडेंटिटी है, हम पहचान सकते अपने में और किसी अन्य में जो अन्य माना जाता है, फिर हम एक हैं, इस प्रकार से कहें तो वो संगठन का कारण बन सकता है, यूनिटी का। पर कभी कभी है ना, आपको भी वही पीड़ा है, मुझे भी वही त्रास दे रहा है, चलो मिल के करें उसका करके आपातकालीन परिस्थिति में संगठन हो सकता है। अब इतना दोनों हमारे लिए ऑप्शंस हैं, फिर भी अगर यदि अच्छी तरह से संगठन नहीं हो, प्रांतीयता या तो ये मेरे लोग हैं करके इस प्रकार से विभाजन करते जाएं, तो सारस्वत संस्कृति पहचाने नहीं आप, इतना ही कहना पड़ेगा। सो सावधान रहिए, विभिन्न प्रांतों से आए फिर भी अंततोगत्वा हम एक ही हैं। इस प्रकार से वो प्रस्तुत करना हम अब तक नहीं सीखे, अपने आप में झगड़ते रहते हैं। कश्मीर में वो जो कांड हुआ था, फिर जाके कुछ औपचारिक कैंप्स वगैरह बनाए गए, लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की गई उन सारस्वतों के लिए, पर वहाँ पे भी भिड़ंत, वहाँ पे भी करप्शन। अरे मिल के और कुछ मांगते, वो भी नहीं कर पाए। ये क्या हो रहा है? तो बुद्धि में है, एक प्रकर्ष लाना है और प्रार्थना धियो यो न प्रचोदयात् प्रचोदन दो, उस बुद्धि को मैं अच्छे कार्य में नियुक्त करूं ताकि संगठन आए। अपनी विशेषताओं को रखते हुए भी संगठित होना, यह प्रयत्न चल रहा है। इस उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम होते हैं, ये नहीं भूलना। विभिन्नता को लाइए, पर हैं तो सारस्वत। सारस्वत यानी क्या, वो कौन सी संस्कृति है? तो भारतीय संस्कृति ही है। तो उसको धीरे धीरे से पहचानने का हमारा तात्पर्य प्रयोजन है। गंगा मैया की बात देखिए, भगीरथ ने प्रयत्न किया, दिव्य लोक में थी वो, अपने पितरों का उद्धार करना है, उस दृष्टि से तपस्या की, वर प्रदान हुआ और गंगा मैया से बताया गया कि जाना है कहाँ, भूलोक पे। चिढ़ गई, मैं दिव्य क्षेत्र में, दिव्य लोक में विहरण करने वाली, मुझे इस भूलोक पे भेज रहे हो? बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आया तो क्या, ऐसे मैं उतरूंगी भूलोक पे, उसको फोड़ दूंगी करके। तब क्या हुआ, गंगा अवतरण में शंकर जी से प्रार्थना की गई, अपने जटाओं में उसको बद्ध कर दिया। तब गंगा जो है मंदाकिनी बन गई, मंद गति से चलने लगी, भूल गई कहाँ जाना, क्या करना। योग बल से ही उस शक्ति को हम धारण कर सकते हैं, नहीं तो बुद्धिवादी भले ही बने पर वो बुद्धि जो है एकाग्रता नहीं आएगी, कहाँ कहाँ बिखरने लगेगी। तो एक लक्षण है जब हम इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, जटाधारी हैं, योग के प्रति है। ये नहीं कि सब जटाधारी बन जाएं तो करें तो फिर वो योगी हैं, पर वो एक लक्षण है। नियंत्रित हो गई, संभाल पाई अपने को, तब जाके रिलीज़ की गई और तब जाके भूलोक पे वो अवतरित हुई, तब जाके उद्धार होने लगा लोगों का। त्रिपथगा है, पाताल तक पहुँचे, पितरों का तक उद्धार करे, ऐसी वो शक्ति, प्रचंड शक्ति हमें प्राप्त हुई है।
तो हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, विभिन्नता को लेते हुए, उसका एक सौंदर्य देखते हुए, नीरसता नहीं, रसता पूर्वक हम सारस्वत जो हैं हम अपनी संस्कृति को पहचान लें। और उसको पहचानना यानी थोड़ा तो प्रयत्न करना पड़ेगा। अब बहुत परिचय हुआ है, अच्छा लगता है। हमें बीकानेर बुलाया गया था और फिर अब डूंगरगढ़ आए। महाशिवरात्रि कुछ दिन पहले डूंगरगढ़ में की, पहली बार आ रहे हैं। कौन है, परिचित तो नहीं है। हमें आश्वासन दिया गया नहीं है, सारस्वत हैं, अभी परिचय नहीं है, तो चलो कर लेंगे। हमारे साथ भी कोई लोग आएंगे, एक 10-20 लोग बैठ के शिवरात्रि व्रत तो हो जाएगा, चारयाम पूजा है। लोग आए नहीं आए, पर बड़े प्रेम से आए, बहुत प्रेम मिला, कुछ एक संबंध जुड़ रहा है। शिराली हम बुलाते हैं, माताएं भी आती हैं, क्यों? समुद्र दर्शन होगा पहली बार। फिर गोकर्ण जाना चाहते हैं। इस प्रकार से वैविध्य को देख के आश्चर्य होता है। फिर हमेशा कहते हैं बहुत कुछ लुप्त हुआ है संस्कृति में, हमें भी थोड़ी सी भी प्रणालियाँ सीखनी पड़ेंगी। सीखें, आराम से सीखें, आप में वो संस्कार है तो सीखना है। तो हमारा एक है कि संस्कृत का प्रयोग सीखिए। प्रांतीय भाषाओं में जो स्तोत्र वगैरह हैं हमारे लिए वरेण्य हैं, महापुरुषों की रचना है, पर फिर भी मूल जो है संस्कृत में है, उसका भी उच्चारण वगैरह सीखें। वो सीखने में जो प्रयत्न होता है वो सरस्वती के वहाँ पे आराधना हो रही है, तो उससे संकोच न करिए। वाणी में शुद्धि आने लगेगी, भगवती की आराधना हो रही है, चाहे एक श्लोक हो, 2 श्लोक हैं, एक स्तोत्र का पाठ करना सीखें तो वो वहाँ सौष्ठव आने लगेगा और फिर प्रसन्न होकर वाणी में एक तेज आने लगेगा। तेज आने से बुद्धि में भी एक शुद्धि आने लगेगी, सही संकल्प कर पाओगे और संकल्प के अनुसार वो कार्यान्वित भी कर पाओगे और कार्य जो किया है उसका फल भी मिलने लगेगा। इस प्रकार से यदि प्रत्येक सदस्य करे और संगठित होकर करें तो फिर हमें कौन रोक सकता है। अपनी बेवकूफ़ियाँ, अपना वो क्षुद्रता जो है उसको छोड़ के मैं लड़ूंगा तो सबके लिए लड़ूंगा। इस प्रकार से एक धैर्यपूर्वक यदि हम कार्य करने लगे तो बस हमारे द्वारा भगवान बहुत ही सुंदर कार्य करवा लेंगे। रसतापूर्वक करना है, उसमें एक आनंद लेना है। तो हम प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति पंथान अनुचरेम सूर्याचंद्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। स्वस्ति पंथान अनुचरेम, पंथ हैं, पथ हैं, तो किस पथ पे चलें? सत्संग बनाए रखें। एक बात जो बताया है उस पर विमर्श हो, ऐसे नहीं कि कुछ सुन लिया बस बहुत अच्छा लगा, उस पर विमर्श भी होना चाहिए। 100 लोग बैठ के सुने तो छोटे छोटे ग्रुप्स में उस पर विमर्श चिंतन वगैरह होना चाहिए, तब जाके वो हृदयंगम होगा। नहीं तो वर्षों से सुनते आए हैं, वेदांत सुनते आए हैं, भागवत सुनते आए हैं, रामायण कथा सुनते आए हैं, शिवलीला सुनते आए हैं, पूछे तो वो तो पता नहीं कथाकार जाने, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, भोजन प्रसाद भोजन मिला, सुनना अच्छा लगा, बस उतना ही। कुछ कमाया, कुछ समझे उससे, कुछ तात्पर्य ग्रहण हुआ। ये कब होगा? जब साधक मिलके विमर्श करें, तो इसकी भी बड़ी आवश्यकता रहती है, तब जाके सरस्वती वस्तुतः प्रसन्न होती है। इस प्रकार से स्वस्ति पंथान अनुचरेम, अनुचरण करें हम। कैसे? किसका अनुचरण? सूर्या चंद्रमसाविव, सूर्य और चंद्रमा सदृश जैसे हम देखते हैं, सूर्य की गति देखते हैं, ठीक है, सूर्योदय होता है, नियत समय पे सूर्यास्त होता है, सूर्योदय हुए सूर्यास्त हुए, उससे हमारा सारा जीवन का ढांचा चले। वैसे ही चंद्रमा का मंगल करते हैं, तो ऐसे मेरे जीवन में उनका मैं अनुचरण करूं, यानी एक कोई क्रम आए, अच्छे के लिए करूं और मेरे द्वारा जो कार्य होता है उससे मेरे कुटुंब का, मेरे लोगों का, मेरे समाज का, देश का भी भला हो। इस प्रकार से एक उद्देश्य को लेके मैं चलूं। स्वस्ति पंथान अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव।
क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, कुछ संकेत दिया गया है। पुनर्ददता घनता जानता संग में मही, संग हो, हम मिलें, पुनः पुनः हमें एक अवकाश मिले ऐसे लोगों से मिलने का जो ददता अघ्नता जानता है। ददता यानी देने में जो समर्थ है, देते हैं, आर्थिक हो, ज्ञान हो, जो भी हो, पर ये मेरे पास है, बहुत है, तेरे पास कुछ नहीं है, ठेंगा तुझे, ऐसे नहीं, चलो ले लो, मैं दे सकता हूँ, ऐसे लोगों का संपर्क बना रहे। अब यहाँ पे सम्मानित होते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह दिए गए, और जो दानी हैं, दान दिया, उनको भी बुलाया जाता है, सम्मानित के। एक आदर्श बने भाई, कमाओ कमाओ कमाओ, किस लिए, कितना बचा पाओगे, देने को भी सीखो। तो इस प्रकार से अच्छे उद्देश्य से देने वाले लोगों से हमें पुनः पुनः संपर्क बना रहे। दत्ता अघ्नता, पर वो जो देने वाले हैं ना, वो अघ्नता हो, घ्न यानी घृणित हो, पाप, अघ्न जो निष्पाप हैं, अच्छे उद्देश्य से दे रहे हैं। ऐसे तो दिया बहुत जाता है, मांगता है एक व्यक्ति, फिर ऋण में डूब जाए, है ना, IMF से लोन मांगे फिर ऐसे फूकट थोड़ी देंगे, ऐसे कस के रखेंगे, जी हुजरी करनी पड़ेगी, जो बताए वैसे करना पड़ेगा, अपना राष्ट्र भी नहीं चले। इस प्रकार से हम नहीं लेना चाहते लोगों से, दें, अच्छे उद्देश्य से दें। दान करना भी एक कला है, तो हमें भी वो योग्यता आए कि जो प्राप्त हो उसको लेके लाभान्वित हो, उसमें गड़बड़ न हो। दत्तता अघ्नता जानता, और फिर जो प्राप्त हुआ है उसका उपयोग भी कैसे करना, वो भी मार्गदर्शन देने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का हमेशा हमें सत्संग प्राप्त होता रहे। तो वो एक उद्देश्य रहता है। यहाँ पे जो विचार विमर्श होता है, अपने क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, यूँ तो परिचय भी नहीं होता, पर यहाँ पे मिलते हैं तो वो आप वहाँ पे कर रहे हो, शायद हम भी कर सकते हैं, आपसे थोड़ा मार्गदर्शन आइडियाज़ प्राप्त करें तो फिर हम अपने क्षेत्र में भी करेंगे। इस प्रकार से आदान प्रदान होता है, तब जाके समाज समृद्ध होता है और संगठित होता है। तो यही हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आए हो बड़े प्रेम से, पुण्य स्थल है, आचार्यों द्वारा अनुग्रहित यह एक क्षेत्र है, अवसर है, तो आप में वही वो एक ज्योत जो है वो पुनः प्रज्वलित हो सारस्वत संस्कृति की। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे में बहुत अच्छाइयाँ हैं, किसी किन्हीं कारणों से वो जरा लुप्त हो गई होंगी, मैं स्वयं नहीं पहचान सकता, बट जब संपर्क होता है तब पता चलता है ओह हम बहुत कुछ मिलके भी कर सकते हैं। तब जाके अपनी कृपणता को छोड़ दीजिएगा। संगठित, मैं एक व्यक्ति, एक सारस्वत, सभी सारस्वतों की ओर से बोल रहा हूँ, बस मेरा भला हो और उनका बाद में देखा जाए। या तो मेरा जो गुट संगठन है, गुट बनाना नहीं तात्पर्य, याद रखिएगा, संगठन की बात अलग होती है, सब मिलके करते हैं। 4-5 गुट मिलके कभी संगठन नहीं हो सकता। भले ही अपने क्षेत्र में परिस्थितियां हैं, वहाँ पे आप करोगे, सब जगह काम नहीं कर सकते, पर मिलेंगे या चिंतन करेंगे तो एक बन के ही जब करेंगे तब जाके उद्धार हो सकता है, नहीं तो फिर से अटकना, सीखे ही नहीं। कितना प्रहार हुआ, फिर भी जो है संगठित होके एक विरोध उसका नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहाँ वो गई वो चेतना। इसलिए बख्शी जी मेजर साहब जो बताते हैं, वैसे हम कुछ उसका सुने, इस बार सुनना हुआ, वो जोश चाहिए। ये जो अत्याचार हो रहा है, यदि हो रहा हो तो मेरे पे और मेरे सारे सारस्वतों पे, भाइयों पे, बहनों पे नहीं मैं सहन करूँगा। इस प्रकार से एक संगठित हम प्रस्तुत कर पाएँ, एक प्रबल जो है शक्ति, तब जाके सुरक्षित रहेंगे। और उस संगठन में सारी जो आंतरिक खूबियाँ हैं, प्रत्येक सज्जन की हो, क्षेत्र की हो, वो भी खिलने लगेंगी। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, परस्पर बोधयन्तः, भगवान का स्मरण करते हुए, अनुस्मरण करते हुए, आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए संगठित हो, ताकि जो आपका एक हेरिटेज है
अग्रसर होना है, मार्गदर्शन करना है समाज को, संपूर्ण समाज को सहजतया आप कर पाए, ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं। नटराज, शिव जी की आराधना होती है, शिवलिंग में उपासना होती है। अभी नटराज की बात कही, बच्चे पूछते हैं नटराज नृत्य ठीक है, वहाँ पे पंचकृत्य परायण है, सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह, ये 5 कृत्य चल रहे। और फिर वो छोटे बच्चे पे पैर रख के खड़े पूछते हैं, वो बच्चा नहीं है, उसको कहते हैं अपस्मार, वो एक राक्षस है, उसका नाम क्या है? अपस्मार, अपस्मृति। अपस्मृति यानी जो अपने आप को भूलना रहता है। तो यही अवस्था दशा है सारस्वतों की। अपनी जो धरोहर है, अपने में जो शक्ति है, वो भूल चुके हैं। तो गुरु आते हैं या तो भगवान आते हैं, पहले उस अपस्मृति को कुचल देते हैं। उठना नहीं, योर रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, योर सेंस ऑफ डिप्रिवेशन, हमारे में कुछ नहीं है, हमारे पे इतना अत्याचार, बस यही रोना रोना, इसको चुप करो। पहले आंतरिक जो खूबियाँ हैं फिर खिलने लगे, संगठित बन के करो, ये प्रेरणा मिलती है। तो उसको दबाए रखना, रोना नहीं, इवन लर्न, डिमांड करना हो तो संगठित होकर हम करें, तब जाके दुनिया सुने। भिख मांगे को कौन मूड दाए? तो मेरे में अधिकार है पूछने का, मेरा है, मुझे दीजिए कहें तो वरदान मिले, समाज भी सुने, गवर्नमेंट को भी सुनना पड़े। इस प्रकार से संगठित होकर करना है। यहाँ पे इसकी बीज तो वपन नहीं होता, इसका पुष्टिकरण हो रहा है, इसलिए प्रेम से करें, आनंद से करें। एक पहले भजन करें, हम एक भजन करते हैं स्वामी। सरस्वती लेंज करिए, ऑन करिए, शिव श्री जगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। वीणावादिनी सरस्वती वीणावादिनी सरस्वती वेदविलासिनी पालय माम्। वेदविलासिनी पालय माम्। विद्यादायिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती विनयस्वरूपिणी पालय माम्। विद्यादायिनी सरस्वती विनयस्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती
संवित्स्वरूपिणि पालय माम्। हंसवाहिनी सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती हृदय विकासिनी पालय माम्। हंसवाहिनी सरस्वती हृदय विकासिनी पालय माम्। स्फाटिकमालिनी सरस्वती स्फाटिकमालिनी सरस्वती सत्त्वस्वरूपिणि पालय माम्। स्फाटिकमालिनी सरस्वती शान्तस्वरूपिणि पालय माम्। श्रीजगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणि पालय माम्। अपार करुणे सरस्वती अपार करुणे सरस्वती अमृतवर्षिणि पालय माम्। अपार करुणे सरस्वती अमृतवर्षिणि पालय माम्। अचिन्त्यशक्ते सरस्वती अचिन्त्यशक्ते सरस्वती अक्षररूपिणि पालय माम्। अचिन्त्यशक्ते सरस्वती आनन्दरूपिणि पालय माम्। श्रीजगदम्बे सरस्वती संवित्स्वरूपिणि पालय माम्। भगवती देवी सरस्वती भगवती देवी सरस्वती ब्रह्मार्धांगिनी पालय माम्। भगवती देवी सरस्वती ब्रह्मार्धांगिनी पालय माम्।
विनाशिनी सरस्वती पाप विनाशिनी सरस्वती प्रज्ञारूपिणी पालय पाप विनाशिनी सरस्वती प्रज्ञारूपिणी पालय श्री जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी पालय संवित् स्वरूपिणी पालय महादेव। ऐसे क्षेत्र में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बहुत ही बढ़िया एक उद्देश्य लेके। आप वापस जाओगे अपने घरों में, अपने क्षेत्र में, इसका स्मरण कीजिएगा, उसको अनुस्मरण कहते हैं। गंगा मैया का तट आचार्य परंपरा से अनुग्रहित एक तपस्वी महात्मा भूतपूर्व काशी मठाधीश, उनके लिए ये एक तपोभूमि। यहाँ के हर वनस्पति, हर पेड़ फूल को वो बहुत प्रेम करते थे। तो ऐसे क्षेत्र में हम मिले, खूब यहाँ पे तपस्या हो चुकी है और फिर अच्छे संकल्प लिए। इस वातावरण का भी अनुभव कीजिए आप, है ना। घर में जाओगे वो बंधन का अनुभव नहीं, आंखें बंद करके प्रत्याहार, इंद्रियों को अंदर लिया, धारणा यानी यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग। यहाँ का कितना सौंदर्य है, एक नैसर्गिक सौंदर्य मात्र नहीं, उसमें पावित्र्य मात्र नहीं, भयंकर शक्ति भी है। तो उसका आवाहन करना रहता है। जब आप घर में जाके सुबह जब करने बैठते हो, उसका ध्यान करना ऐसे वातावरण का, फिर जाके अपना जप इत्यादि करना। सारस्वत हो, कुछ प्रणालियाँ थी लुप्त हो गई हैं। युवा पीढ़ी को हम कहते हैं व्यायाम किया करो, और जो भी उम्र का हो अपने पैरों पे चल पाए तो उससे कहते हैं भाई थोड़ा तो प्राणायाम कीजिए। ये जो एक चांचल्य आता है बुद्धि को लेके, डर बैठ जाता है, स्वार्थ वगैरह आता है, जहाँ ये उदारता चली जाती है, सारस्वत का लक्षण घटने लगता है, उसको जलाना पड़े। कैसे? प्राणायाम कीजिए, कम से कम कपालभाति भस्त्रिका का, और अनुलोम विलोम करते समय डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, निनाद की प्रक्रिया को लेके श्वास प्रश्वास को संभाल कर करना। तब जाके वो आंतरिक एक शक्ति रहती है, वो प्रसन्न होती है, प्राण संचार कहते हैं। वाणी में सौष्ठव आने लगता है, बल आने लगता है, सरस्वती का अनुग्रह हो रहा है। और केवल एक प्रकटन मात्र नहीं, आंतरिक अंतःकरण में वाणी का संचार होता है। ये तो बोली हुई वाणी विखरन के कई सूक्ष्म स्तर हैं, वहाँ पे भी प्रसाद होने लगता है। जिसको आप विचार कहते हो वो वाणी का सूक्ष्म स्वरूप है। सो वहाँ तक वो अंदर ले जाए, अपना अनुग्रह प्रदान करे, ताकि जैसे एक साधक की अभिवृद्धि होती है, केवल बोलने चालाकी से नहीं, बोलने का सौष्ठव यानी उतना मात्र नहीं, शुद्धि तो आएगी ही, विचारों में भी परिवर्तन आने कल शाम को तो किसी ने व्यक्त किया, हमारे प्रांत में भी एक मठ कर दो। स्वामी जी हंसने लगे
हम कह रहे थे मठ करना, मठ बनाना कोई मखौल है, संभालना बहुत मुश्किल है भाई। ऐसे नहीं कि एक मंदिर, दो सेठ जी मिल गए, मंदिर बना दिया, पुजारी को बिठाया, एक मेहनत कर दिया और चल रही है गाड़ी, ट्रस्टी संभाल रहे। ऐसे नहीं होता है जुरा, आवश्यकता भी नहीं है। जो है मठ पर्याप्त है, सबको स्वीकार करते हैं। संपर्क बनाए रखिए मठों से, मठों के अनुयायियों से। आपको जहाँ एक मेल सा बनाए, कुछ संस्कृत में रुचि रखते हैं तो संस्कृत कोर्सेज हैं, उससे बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, कितना कार्य हो रहा है, चलो सारस्वत मिलके करें। इस प्रकार से मिलके कीजिए, पर्याप्त मात्रा में मार्गदर्शन मिलता रहेगा और अपनी जो एक यत्ता ये सारस्वत कहलाते हैं आप, वो भी जागृत होगा, वो चेतना जागृत होगी, तब जाके आप आदर्श बनोगे और अपने लिए रोना वो बंद हो जाएगा। चलो क्या चाहिए, आप बनोगे ददता अघ्नता जानता। संग मेरा करो, मेरे में ये खूबी है, मेरे में सामर्थ्य, ऐसे बोलने का सामर्थ्य आएगा, तब जाके आप सारस्वत कहलाओगे। वो नहीं कहाँ मिल रहा है भाई पैसा का, उस ऋषि से नहीं, मुझे मेरे में ऐसे सामर्थ्य आए कि मेरे पास जो है वो कहे हाँ मुझे एक अच्छा व्यक्ति मिला है जो देता भी है, उसमें कोई क्लॉजेस नहीं है, अपने वश में ही रखेगा, ऐसे नहीं है, और मार्गदर्शन भी करता है। प्रत्येक साधक को ऐसे बनना है, ये हमारा आदर्श है और ये साध्य भी है। इसलिए संपर्क बनाए रखें, प्रेम से कीजिएगा, परस्पर मिलने होता रहेगा। अपनी वैयक्तिक साधना है अवश्य बढ़ाएगा। फिर से हम कहते हैं नियमित रूप से पुरुष वर्ग ने तो संध्या वंदन करना ही है, कम से कम गायत्री जप तो करें। हमसे मंत्र दीक्षा लेने आते हैं और फिर कहते हैं गायत्री मंत्र तो छूट गया। पिता पुत्र परंपरा से प्राप्त, यदि वो छूटा है पुरुष वर्ग नहीं करे तो फिर मैं क्या करूं भाई। 28 बार 54 टाइम्स उतना करना सीखिए। एक नियम, हमारे कई शिष्य हैं देश विदेश में घूमते हैं, बिजनेस वगैरह पे कितना कैसी दिनचर्या रहती है उनकी, पर फिर भी कभी उनका वो नित्य क्रम जो है वो छूटता नहीं है, करना ही है। तब जाके वो किसी मीटिंग में जाते हैं या बिजनेस कुछ करना रहता है, उस समय छक्के नहीं छूटते उनके, स्थिर रहता है मन, प्रेरणा मिलती रहती है, भगवती के अनुग्रह वहाँ पे भी मिलता है। 24 घंटों में 15 मिनट भी अपने लिए व्यक्ति नहीं निकाल पाए, वो बचे हुए से क्या करेगा, संभाल ही नहीं पाएगा, बस रोता रहेगा। इसके कारण ये नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उसके कारण ही, बस बहाने बनाना। वहाँ पे बहुत बुद्धिमत्ता, ऐसे नहीं। इसको भी मैं ठीक करूँगा, उसको भी मैं समझाऊँगा, इनको संभाल के लिए जाऊँगा, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, सारस्वत हूँ। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, उस पर अनुसंधान करना, अनुशासन लाना, ताकि वाणी के जो सूक्ष्म स्तर हैं वहाँ पे भी ध्यान केंद्रित होने लगे। जो वाणी निकले, मन में जो विचार हैं शुद्ध सात्विक मात्र नहीं, तेजस्वी वाणी में बल आए। और वाणी मात्र नहीं, वाणी ने केवल बोलना नहीं, अभिव्यक्ति की बात है। जो भी करते हैं उसमें सबको एक समाधान होना चाहिए, ये अच्छा व्यक्ति है, मिल के हम इसके साथ कर सकते हैं। नेता बनने का प्रयत्न नहीं करना, लीडरशिप की बात करते हैं। नेता ने कैसे, 5 लोग हम मिलके कर रहे हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करे, पर उसमें से प्रत्येक जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार रहेगा ये कार्य सफल करने में। तब उस प्रकार का जागरण आए, वो समाज समृद्ध हो सकता है, वो संस्था समृद्ध हो सकती है, वो कार्य जो है सफल होगा। ऐसा होगा, हो रहा है। बड़े प्रेम से मिल के करें। आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लगा, खूब आशीर्वाद लीजिएगा, खूब ग्रहण कीजिएगा। भोजन कैसे लगा आपको? उत्तर भारत से हैं, क्या बढ़िया बना रहे, अरे वाह। पुड़ियाँ भी बनती हैं, चावल भी मिले, चपाती भी मिले, बढ़िया, हमें तो अच्छा लगा। हैं? खीर बहुत बढ़िया थी। कल पता नहीं हम बैठे थे कमरे में, नाम सुन रहे थे, somebody was describing कोंकणी क्विजीन बनता था जैसे वर्णन, बहुत अच्छा। वो एक अलग है, उसका रस, वो भी स्वीकार कीजिए, सीखना है ना। जिह्वा को भी एक संयम आता है, सूक्ष्म रस रहता है। हम गेल नारला खीरियन म्हणता थी अंताजे मस्त मसाला ना थी श्रेय स्वामी जी,
सूक्ष्म रस भी रहते हैं, उसको भी चखाना, रस करना। इस प्रकार से जिह्वा से आस्वादन भी हो रहा है, सुंदर व्यवस्था की है। भोजन की प्रशंसा यानी जो व्यवस्था की है उसकी, उन लोगों की प्रशंसा हम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दो बस एक ये दे दे वो दे दे, बस उतना नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, रस भी चाहिए। वो रसता वही है सारस्वत के लक्षण। तो जिह्वा के गुण है, रस भी मिला, वाणी में एक माधुर्य आए पर तेज भी आए। इसको लेके हम प्रयत्न करें तो सरस्वती है वो तो प्रसन्न है ही। इतना जो कर रहे हैं, संगठन हो रहा है, और भी प्रसन्न होगी, वो मार्गदर्शन करेगी, नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। अभी तो अंधकार अंधकार दिखता है, 2 कदम आगे दिखते हैं, वो प्रकाशित करेगी। आंतरिक भी एक तेज आएगा और बाहरी परिस्थितियों समाज में भी एक बहुत अच्छा होने लगेगा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशां भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं। महादेव मामा। प्रथम से भगवान और हमारा गुरु का स्मरण करके यहाँ हम सभी मिले हैं सारस्वत, उन सबको शुभाशीर्वाद दे रहे। हमको हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल है। हमने पहले बार तो हिंदी में बोला तो वो तो कश्मीर में है। हमारा आदमी हिंदुओं से नहीं म्लेच्छों से किया था प्रथम बार, वो तो वहां का कौन बोलेंगे हम, उनसे पहले बार उनसे ही किया था। अभी बोलना है, हमारा ओरिजिनली बोलेंगे तो हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी होना है, हिंदी नहीं है संस्कृत होना है, क्योंकि संस्कृत सर्व भारत का भाषा है, देवों का भाषा है, हमारा सब कुछ उसमें है। उसमें से ही भारत में यो कोई कभी भी कोई भी भाषा आई है वो सभी संस्कृत से। ये हिंदी बोलते हैं हम, कहां से आए हैं वो? संस्कृत से प्राकृत हुआ, प्राकृत से हिंदी, कोंकणी प्राकृत में भेद है। हमारा कोंकणी बोलते हैं वो भी प्राकृति है। कौन सा प्राकृत? मैथिलीय प्राकृत। ऐसा मलयालम वो भी संस्कृत से है, तमिल वो भी संस्कृत से है। वो बोलेंगे वो तो पॉलिटिक्स के लिए, वो भी संस्कृत से ही है। सभी द्राविड़ भाषा या उत्तर भारत के भाषा कोई भी हो वो भी सभी संस्कृत है, संस्कृत से ही हुआ है। हम तो अभी हमारा देश का भाषा कौन बन गया? राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम ये भी यहां बोलने को इच्छा करते हैं क्योंकि हम यहां मिले हैं। कहां मिले हैं? मुंबई में मिले थे, पहले मंगलुरु में मिले थे, यहां मिले हैं। कहां? सप्तनगरी मोक्षदायी की, उसमें मध्य में आने वाले हैं माया नगरी। इस नगरी को इतना नाम है कहीं नहीं मिलेगा आपको।
इसका नाम हरिद्वार है, हरद्वार है, माया नगरी है, सप्त स्रोदस है, गंगा द्वार है, यमुना द्वार है। ये हम ऐसे बोलते नहीं हैं, पुराणों में ये लिखा है। अब वागद में मिलेंगे तो सप्त स्रोदसी बोलते हैं, गंगा द्वार बोलते हैं। इतना पुण्य क्षेत्र है ये। धृतराष्ट्र ने अपना देह त्याग यहां ही किया था, भागवत भी यहां ही हुआ था। ऐसा गांव है ये। और भी हम सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण में भेद है, सारस्वत है, गौड़ है, द्राविड़ है, गुर्जर है, इसमें भेद है। उत्तर भारत में पंच ब्राह्मण, दक्षिण भारत में पंच ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जन्म से कौन होता है वो है ब्राह्मण, गुण से नहीं है। शास्त्रों ने इतना उसका अर्थ किया है, हमारा शास्त्र, हमारा ऋषियां इतना बुद्धिवंत है, बुद्धिमान है, हम सोच नहीं सकते हैं। एक एक अक्षर का, एक एक मात्रा का अर्थ करता है वो। एक अक्षर से कोई अर्थ नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? युद्ध करो, युद्ध करो, अपना कर्म करो। वो अर्जुन का नहीं, सभी आदमी को, नर को नहीं, सभी नर कुल को ऐसा बना दिया। उसमें सभी आपका कर्म करो। अंत्य में बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेग शरणम व्रज। सर्वधर्म छोड़ दो, मुझे शरण आओ। इतना श्लोक बनाकर, इतना हमको उपदेश देकर, अंत्य में वो श्लोक का अर्थ सर्वधर्म परित्यज्य क्या होता है? इसका अर्थ क्या करेंगे हम? उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वदा फलम। एक श्लोक का अर्थ करना इतना सुलभ नहीं है। उपक्रम क्या होता है? हम तो शास्त्र नहीं बोलने की इच्छा करते हैं, किंतु ब्राह्मण कौन है वो बोलने की इच्छा करते हैं। एक श्लोक से अर्थ नहीं होता है, बहुत अर्थ जन्म से ही होता है। हम ब्राह्मण हैं। हम इस धरती, आज मिले वाले धरती में एक हमारा संबंध है। कौन सा संबंध? हमारा पूर्विक, यो सारस्वत या द्रविड़ कोई भी हो, उनका पूर्विक सब सप्तऋषि है। मूल पुरुष सप्तऋषि सबका, ब्राह्मणों का। ये सप्तऋषियों ने या तपस्या की है, उस धरती में है हम। अभी भी सूक्ष्म रूप से उनका ये करते हैं, तपस्या करते हैं। यहां इस धरती में हम मिले हैं, पुण्य क्षेत्र गंगा के। गंगा, यहां कोई कौन है देवता? कोई भी पूछे तो काशी विश्वनाथ बोलेंगे, मथुरा में जाते हैं कृष्ण बोलेंगे, अयोध्या में जाते हैं राम बोलेंगे। यहां कौन है देवता? मनसा देवी नहीं, यहां गंगा। गगनाथ गाम गदा इति गंगा। भगीरथ ने प्रयत्न कर कर, तपस्या कर कर, भगीरथ प्रयत्न बोलते हैं, उन्होंने गंगा को यहां ले लिया। सभी गंगा, हम बोलते हैं, हम अलकनंदा मिलता है हमको बद्री में, वो कौन है? वो भी गंगा ही है। प्रयाग मिलते हैं, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, हम तो यहां तो जाएंगे तो सभी गंगा ही है।
क्योंकि महादेव ने जटाजूट से गंगा का एक एक कण मिला था भूमि में, धरती में, वो अलग धारा होकर आ गया। गंगोत्री भी है, अलकनंदा भी है, एक एक गांव से। ये सभी मिलकर कहाँ एकत्र होता है? वो तो ऋषिकेश के पास। यहां कोई देवता नहीं है, यहां का देवता गंगा ही है। इस धरती में हम मिले हैं, किसके लिए मिले हैं? संकटन संगे शक्ति कलो युगे बोलते हैं। हम तो संगठन होना है। संगठन का दो अर्थ है, एक मिलना और एक झगड़ा करना। झगड़ा करना है क्या? हम तो सारस्वत है, हमने बहुत सारस्वतों से तो हमारा समाज में है, हमको पता है, और कश्मीर में मिले उनको भी पता हुआ। एक ही एक गुण है, संगठन करना वाले। संगठन मिलना नहीं, एक एक को मिला तो कैसे उनको मार डालेंगे। ऐसा गुण हमको मिला है, वो संगठन करने के लिए मिला है क्या? नहीं। कितना सारस्वत है, बहुत सारस्वत। एक एक राजस्थान में है, बिहार में है, कश्मीर में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है, महाराष्ट्र में भी है। एक एक देश का एक एक आचार है, एक एक कल्चर है, एक एक विचार है। वो विचारों को एकत्र करना हमारा कल्चर है, वो संस्कार। अभी यहां बहुत हमने ये देखा है, दिखाया है हमको, सभी विषय में चर्चा हुई। एंटरप्रेन्योरशिप, ये कैसे हम G20 में कैसे भाग लेंगे, और 500 मिलियन में कैसे हम 5 ट्रिलियन, हमको वो पता नहीं है। उस पे हमारा भागत्व क्या है? वो है ब्राह्मण का उद्देश्य है, हमने नहीं बोला नहीं है। हमका धर्म है, हमारा आचार है, हमारा विचार है, वो हमारा धर्म का भी होना है। हम उस बारे में कौन सोचते हैं? हमारा शास्त्र है, षडंग है। वेदांत में अर्थ का निर्णय करना भागत्व होगा, किंतु व्याकरण में, तर्क में, मीमांसा में, ये सभी हमारा शास्त्र है। कौन पढ़ते हैं उसमें? उसका विचार संस्कृत, क्योंकि देव भाषा, कौन उसके लिए प्रयत्न करता है? उस बारे में हम कोई भी सोचा है क्या? भगवान बोलते हैं ब्राह्मणों मम देवता, कृष्ण बोलते हैं ब्राह्मण मेरा देवता है। क्यों? भगवान परमात्मा कृष्ण ने सुदामा को लेकर उनका पाद पूजा कर दिया। क्यों? उनके पास वेद का, शास्त्र का है, श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे। भागवत में बोलता है श्रुति और स्मृति ये मेरा आज्ञा है, वो ब्राह्मण के पास है। वो हमारा भी, वो भी हम सोचना है, उस बारे में भी सोचना है। कोई नहीं सोचता है।
हम कश्मीर में गए थे, उस समय एक दुबे, वो तो कश्मीरी नहीं है, कश्मीरी पंडित नहीं है, वो आगे हमारा वहाँ, हम तो रखने वाले जग में ईश्वराश्रम, वहाँ हम हवन ये सब कुछ किया। वो तो जम्मू का है, उनके मन में ऐसा करता है आप लोग। स्वामी जी मुझे एक इच्छा है। बोलेंगे? बोलो क्या है? आप एक 10 आदमी को हम भेजा तो जम्मू से, आप पढ़ाई कराएंगे का? हमने बोला उनसे क्या है, करेंगे, किंतु हमारा संप्रदाय अलग है, क्योंकि संप्रदाय का छोड़ना ठीक नहीं है। वो संप्रदाय अलग है, पढ़ाई कराएंगे क्या? ये ऐसा है, आपको अच्छा लगा तो भेज दो, हम सिखाएंगे। सिखाया अभी भी है एक आदमी, 10 कितना हो, 10 को भेजो, हम पढ़ाई करेंगे। अभी एक है, हम यहां बोल रहे हैं कोई भी हो, उस वहां शास्त्रार्थ नहीं है, थोड़ा पूजा पुरस्कार, कोई भी हो हम भेजेंगे, हम सिखाएंगे। वो का धर्म का विषय, हम अलग। ये 3 साल हो गए, अभी 2.5 ईयर हो गया ये विश्व सारस्वत फेडरेशन होकर। क्या लाभ मिला हमको? हमने 3 सम्मेलन किया, इससे कोई लाभ मिला है क्या? आप आए हैं, मिला है, हम बोलेंगे तो कैसे मिला है? अभी चित्रापुर स्वामी जी बीकानेर, हमको उस गांव का नाम नहीं आता है, डूंगरगढ़, हाँ, वहां हम सब जगह में गए, उनको उद्बोधना की, क्योंकि हम सारस्वत है, हमारा मन में वो आना है, हमारा धर्म का परिपालन होना है, हमारा संस्कार का परिपालन होना है। गए, क्योंकि अभी एक आदमी गए और एक स्वामी जी गए तो बहुत फर्क, व्यत्यास है। हाँ, एक आदमी आया, क्या होगा? हाँ, वो आदमी आया, बोले उनको भी कोई भी स्वार्थ होता है। एक सन्यासी या एक मठाधीश आए तो उनको क्या स्वार्थ है? हम तो मिलना है। इससे हमको पता नहीं होता है, अंदर से काम होता है। वो ये दूसरा 3 साल पहले कोई पी को कश्मीरी सारस्वत है, इसका बोधन था, ज्ञान था। कौन है वो? अभी वो भी सारस्वत है, क्योंकि पहले हमारा एक विश्वास है गौड़ सारस्वत, हम पहले कश्मीर से आए थे, गौड़ देश गए, वहां से गोमंदक आई, सरस्वती नदी से माइग्रेशन है। सारस्वतों का एक उद्देश्य है माइग्रेशन, अभी भी माइग्रेशन हो रहा है, इसीलिए इनका नाम वर्ल्ड सारस्वत फेडरेशन, इसलिए हमारा स्वामी जी ने वो नाम दिया। ये उनको भी क्या हुआ, पिछले साल उस बच्चों को स्कॉलरशिप, इस साल भी उनका प्रयत्न किया, अभी तक था क्या? नहीं। कल हमारे एक आदमी आए थे, अभी भी बोला स्वामी जी यह हम बीकानेर से बहुत आदमी आए हैं, उनको काम नहीं मिलता है, एजुकेटेड है, कोई भी काम देंगे? हमने बोला उनको
अच्छे आदमी तो हम बोलेंगे हमारा समाज से, हमने बोला तो हमारा समाज करेगा, ये विश्वास है हमको। स्वामी जी का ये कोई भी बोला तो वो करेंगे, क्योंकि आज ठीक के लिए काम कर रहे हैं। हमारा बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, छोटा छोटा स्मॉल स्केल। कर्नाटक में 80% कैशूनट फैक्ट्री है, वो हमारा आदमी के हाथ में ही है। छोटा छोटा हम काम करने वाले के हमारा ये है वो हाथ में ही है वो। हम अच्छे तो देंगे, इसका लाभ मिलता है हमको पता नहीं होता। इसीलिए संगठन होना है। हम संगठन करना पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, वो हमको समझना है। हमको कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, हमारा धर्म और हमारा समाज और हमारा देश, ये है हमारा पॉलिटिक्स। हमको समझना है, हमारा मन में आना है। हमको पॉलिटिक्स नहीं है, हमको सभी इस 75 इयर्स में क्या हुआ, एक 4 साल 5 साल पहले हमको भी थोड़ा गरीब आदमी है अपर कास्ट में, उनको थोड़ा रिजर्वेशन दे दिया, अभी दे दिया। किंतु हमारा ये ब्राह्मण समाज, वो कोई भी हो, कुछ भी हुआ नहीं। क्यों? अग्निर मानव कहा, ब्राह्मण को अग्निर बोलते हैं। क्यों? अग्नि नीचे कर दिया तो भी ऊपर आता है। कितना प्रयत्न करो, ऊपर ही आता है। ब्राह्मण के सामने दिमाग में ज्ञान है, बुद्धि है, उनका अभी का भाषा में बोले तो डीएनए, वो डीएनए वैसा है हमारा। और भी हम तो हमारा मन में ऐसा आना है, कोई पॉलिटिक्स होना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारा सनातन धर्म में विश्वास करके, सनातन धर्म, हिंदू हो तो ब्रिटिशों ने नाम दिया है, हमारा धर्म का नाम सनातन है। उस सनातन धर्म में हमें सभी, आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। 8 साल हो गए अभी हमारा अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए। काशी में 60 साल हो गए, 75 इयर्स हो, 300 साल। क्या वहां इतना बड़ा कॉरिडोर हम देखा है? ये सब कुछ अभी देख के आया है, 1 महीने पहले गए थे, अभी हो गया है। और भी हमको एक सनातन धर्म को एक ये है, क्या है, आरंभ शुराहा। हम तो आलस्य देंगे, वैसा नहीं है, हम कड़ा होना है। पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, सनातन धर्म के काम करने वाले से वो हमारा दिमाग में आना है। वो सभी लोग एकत्र हो रहा है, ये क्रिश्चियन या मुस्लिम म्लेच्छ कहते हैं उनको हमारा शास्त्र में। हम भी एकत्र होना है, एकत्र होकर काम करना है। क्यों? हमारा धर्म का इतना साल, हमारा धर्म का नाश नहीं है, ग्लानि है। नाश नहीं होता। इतना साल 2000-3000 साल ब्रिटिशों या मुगल या और कोई भी, गोवा में पोर्चुगीज ने इतना भी कर दिया, और भी हमारा धर्म का नष्ट हुआ नहीं हुआ। क्या क्या प्रयत्न किया उसके लिए, कुछ थोड़ा होगा, हम नहीं बोलते।
किंतु हमारा मन में आना चाहिए, हमारा सनातन धर्म का विश्वासी है हम, उसके लिए काम करना है, हम एकत्र होना है। एकत्र संगठन के लिए नहीं, मन एकत्र होना है, मन एकत्र होकर काम करना है। इसीलिए हम हमारा स्वामी जी ने 30 साल पहले ये विश्व सारस्वत फेडरेशन बना दिया था। क्यों? स्वामी ने सभी सारस्वतों का, हम तो घूमते रहते हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत सभी कुछ में, एक जगह में नहीं रहते हैं, जाते रहते हैं। हम देखा, हमने भी देखा सभी जगह में सारस्वत है। ये सारस्वतों का एकत्र करना है। स्वामी जी के मन में आ गया हमको एकत्र होना है। इसीलिए स्वामी जी ने दिल्ली में, हमारा देश का इंद्रप्रस्थ बोलते हैं उन पांडवों का राजधानी, वहां एक संस्कृति, उसका नाम गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज नहीं नाम दिया, वहां बोल दिया, कृष्ण मंदिर नहीं दे दिया, सारस्वत संस्कृति भवन। क्यों? सभी सारस्वत, हमारा दिल्ली है, पांडवों का राजधानी है, अभी वो होगा, पहले ही है इंद्रप्रस्थ, वहां बना दिया और एक संगठना भी की, काम नहीं कुछ हुआ। अभी थोड़ा हम प्रयत्न कर रहे हैं, करना है, हम एकत्र होना है। पहले हमारा आचार और विचार, हम ब्राह्मण है, हमको ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व रहने वाले को प्रथम से हम गायत्री का उपासना करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। हमको उपासना करना ही है, संध्या वंदन, क्योंकि वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण है, उनका एक है, और उत्तर भारत के ब्राह्मण को अलग, ऐसा नहीं है। अर्थ के बारे में ऐसा कुछ भी होगा, किंतु करना ही है। धर्मशास्त्र सभी ब्राह्मणों के एक ही है, सभी को लिए धर्मशास्त्र में, और इनको सारस्वत ब्राह्मणों को एक धर्मशास्त्र, और ये गौड़ सारस्वत को एक शास्त्र, ऐसा नहीं है, सभी को एक ही धर्मशास्त्र है। उसमें थोड़ा संप्रदाय के बीच में व्यत्यास होगा, फर्क होगा, किंतु एक ही है। यह है हमारा, बोलते हैं नानात्व में एकत्व, ऐसा नहीं है, सभी एक ही पहले ही है। वो नेहरू ने नहीं बोला है, पहले ही हमारा शास्त्र में, हमारा धर्म वैसा है, ऐसा होना है। हम एकत्र होकर मन में, हमारा कोई भी मना, वो उनको देखा इनको देखा, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अच्छा काम करते हैं, हम उनके पीछे रहना है, वो अच्छा काम करते हैं, हमको मन में आना है। इसे तरह हम काम करके 2 दिन हो गए, हम कहाँ रहे हैं। ब्राह्मण का प्रधान उद्देश्य वेद है, वो वेद का विभाग किसने किया? वेद व्यास। हमारा स्वामी जी ने ऐसा बना दिया, यहां कुछ नहीं था पहले। इसका उद्घाटन 1988 में किसके लिए किया? भगवान वेद व्यास हमारा सभी सनातन धर्म का मूल पुरुष है। क्या उसने ज्ञान नहीं दिया तो पुराण या ब्रह्म सूत्र या उपनिषद या वेद नहीं दिया तो क्या होगा? वो है हमारा सनातन धर्म का मूल पुरुष, क्योंकि वेद का विभाग करके वेद व्यास बल नाम आ गया उनका। वो भी कौन है? वासिष्ठ प्रवृत्ता, वशिष्ठ ने यहां ही रहते हैं, उस जगह में सप्तऋषि, उस जगह में हमारा स्वामी जी ने वेद व्यास का प्रतिष्ठापन। और शुक महर्षि, क्यों? वो रुद्र का अंशावतार है, महादेव का अवतार है वो।
उनको क्यों बेटा भी नहीं है? भगवान को कौन बेटा? हम भी भगवान का बेटे ही, वो भी बेटा है, उनका प्रतिष्ठापना। और वेदाचार्य है 4 पहले याज्ञवल्क्य, सभी का प्रतिष्ठापना की। और सप्तऋषि ऐसे जगह में हम रहे हैं, इतना बड़ा हमको भी कुछ हो रहा है। इतने साल हम तो अलग अलग में जगह में जाते हैं, अलग दक्षिण या उत्तर भारत में। ये हमारा गांव है, हमारा गांव में आप आए हैं क्योंकि हमारा स्वामी जी को इस धरती का बहुत प्रीति था। आश्रम इनको हमारा स्वामी जी ने हरिद्वार काशी मठ ऐसा नहीं बोला है, हरिद्वार व्यासाश्रम, व्यास का आश्रम, आश्रम ही रहना है। आश्रम में क्या होता है? नदी होता है, खेती होता है, वनस्पति होता है, गाय होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि पहले हमारा ऋषि परंपरा थी। बुद्ध ने वो तो मोनेस्ट्री ऐसा किया, शंकराचार्य ने वो को मठ परंपरा कर दी। भारत में ऋषि परंपरा थी पहले, ऐसा नहीं है। ओ पहले शंकराचार्य के में बात मठ परंपरा आ गई। पहले तो बुद्ध का, बुद्ध का वो बौद्ध, वो भी सनातन धर्मी ही है। हम अभी ये बोलेंगे तो ये होता है कंट्रोवर्सी, सत्य बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी होता ही है ना, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र में उनका उल्लेख है, जैन है उनका भी उल्लेख है। वो छोड़ो, हम कंट्रोवर्सी के लिए नहीं है, किंतु सत्य बोलते हैं। अभी पता होता है सभी को। वो इसीलिए वेद व्यास का आश्रम एक ऋषि आश्रम है, ऐसा बना दिया। हमारा आपने बोला हमको ऐसा हो गया, हमारा आदमी यहाँ बहुत प्रोग्राम हो गया है, क्योंकि यहाँ करना बहुत खुश है और दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था है। 1 लाख आदमी ये तो यहाँ रहने का कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आश्रम है। यहाँ आते हैं गंगावतार के दिन में 10 लाख से अधिक आदमी आता है एवरी ईयर। सोमवती अमावासी के समय में मिनिमम 5 लाख आदमी आता है यहाँ, अधिक से बंगाल से। यहाँ आने वाले अधिक से बंगाल से ही है, इतना और क्षेत्र है। आप यहाँ आए, कुछ हमारा मन में भी था कोई हमारा आदमी तो हम चलेंगे, आप भी हमारा आदमी है, किंतु ये है ना, भगवान ने हमको भी कुछ हुआ, हमारा व्यवस्था सब कुछ ठीक से हुआ है। आप स्वामी जी ने भी बोला, आपने भी बोला किंतु हमको पता नहीं हमारा ये आहार व्यवस्था सब कुछ दाक्षिण्य का था, किंतु क्या है ऐसा कर दिया। भगवान से प्रार्थना करता है आप सभी मिले हैं, ये मिलना वाले और भी बढ़ जाए हमारा प्रीति, क्योंकि प्रीति हो तो सब कुछ विस्मरण होता है। प्रीति होना है, हमारा बीच में प्रीति होना है, वो प्रीति बढ़ जाओ और भगवान का अनुग्रह, धर्म का, देश का सेवा करने का भाग्य भी हमारा सारस्वतों को हो जाओ, ऐसे बोलकर भगवान वेदव्यास और हमारा भगवान रामचंद्र और नरसिंह और हमारा लक्ष्मीपति वेंकटेश बालाजी और मुख्य प्राण और हमारा स्वामी जी के महाचैतन्य से प्रार्थना करके सबको भाग्य मिलो, हमारा भाग्य में वृद्धि हो, ऐसे पुनः प्रार्थना करके हम विराम कर रहे हैं। I request all the trustees of Vishwa Saraswat Federation to come onto the stage to receive prasadam from Swamiji. At the same time, last couple of days during the confluence, you have tasted almost all the sweets, right from the dry jamun, kala jamun, cham cham, kheer, kadam and everything. I hope you have enjoyed.
And he is Mr. Ramesh Malya from Mangalore, Shreya Sweets. He has come all the way from Mangalore to prepare the sweets for you. And I request Ramesh Malya to receive the prasadam from Swamiji. Two days of confluence. We have almost 1,000 plus registrations coming all the way from Rajasthan, UP, Punjab, Delhi, South India, Maharashtra, and many more places. We have almost registrations have cost 1,000. And today you can see the audience here. And we are blessed by our Kashi Mathadipati Srimad Sayammin Tirth Swamiji. Initially Muldan was given by Swamiji for this program in the month of January. So we are very happy. These blessings, because of the Swamiji's blessings as well as the blessings from Sadhujat Swamiji, this conference was very successful. Lot of deliberations, discussions were there. And I thank all the speakers who have come all the way from various parts of the city to give lectures to unite Saraswat all over India. First of all, I should thank the registration desk who were very, with patience they have registered almost 1,000 delegates, Gautam Pai, Sanjana Pai and Sumant Bhatt and others. Almost 10 people were there for the registration counter. I thank them. Food distribution was one of the important thing. The cooks all the way, they came from Udupi, Ganesh Naik in his 11 members team and Vijay and others from Mumbai. I thank them also. And but for the volunteers, this program would not have been so successful. Almost 40 volunteers have come from Udupi and rest of the places. They dedicated themselves for this conference. And because of their support and active involvement, this program was very successful. I should thank our accommodation in charge, Mr. Sudhir Shane, who has been traveling very comfortably, many places he has traveled for the last 3-4 months. Sudhir Shane, if he is there, he should come and take prasadam from Swamiji because almost he was on this duty for a couple of months, almost more than 2-3 months. Sudhir Shane, if he is there, I request him to come to take the prasadam from Swamiji. Cameraman Santosh Shane, Youth of JSB, Santosh Shane, Ramesh, our photographers, Malya from Mudbidri, Ramit Malya from Mudbidri, they were very active in taking photographs, taking videos and other things. I thank Archaks also, who have been kind to do the Veda Goshas during our conferences. And more important is sponsors. But for the sponsors' support, this program would not have been so successful. In the shorts, I thank JSB Sevamandal Mumbai who have been supporting us through scholarships for students of Kashmir. Sri Bhuvendra Tirtha Swami Charitable Trust, they have also supported us for giving scholarship for students. Then All India Saraswat Charitable Organization, our president is there, Masurkar. He is also supportive to us. Platinum sponsors ARC Pharma Labs Limited, Med and Dragon Private Limited, and gold sponsors Century Builders, SVS Cooperative Bank Limited, and Paltrona Pro. Silver sponsors Devgiri Tea, Hangyo Ice Creams, Bharat Group, Entod Pharmaceuticals, Masurkars, Gunjikars, Bioxera Pharma, Nursing Commerce, Bliss GVs Pharma. Associate sponsors Nivedita G. Prabhu, Swami T Capital, and our media partners are Youth of JSB. Even though there are 1,500 delegates here who can view in person, lakhs of persons have seen from all over the world this conference. They have supported us very well. Vishwa Saraswat Federation is very happy to announce that next year, a Confluence of Saraswat worldwide event will be held in Goa. Dates are 3rd and 4th March 2024. I request everyone to come to Goa because that is the place of all Kuladevatas. I repeat, it's the 3rd and 4th March 2024, Goa. The next conference will be held there.
After this program, there is a Bhakti Sangeet Bhajan program by Balchandra Prabhu. I request all of them, you to sit here. After the program, take your food and then depart with a good memory, as already told by Swamiji. When you go home, you go with good memories of this conference, and try to attend 3rd and 4th March 2024 conference at Goa. सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन। सारस्वत All the food items, maybe it is breakfast or lunch or dinner, wherever it was there. I thank Ajit Pai also, who has taken all the trouble to take the volunteers from Udupi. He was very supportive of us in all our programs. I also thank the members of the Vyavasthapak Samiti of Vyasashram for their full cooperation for this 2 days conference. Please be seated for the bhajan program. Wonderful bhajan program for next 1.5 hours to 2 hours. Enjoy the program. So I request all to be seated here in the auditorium only.
कृपया सभी लोग खड़े हो जाइए। अभी स्वामी जी अपने मठ के लिए निकल रहे हैं। हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। हेलो हेलो, बोलो श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज की बोलो। श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामी गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज की। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। बोलो श्री काशी मठ संस्थान की। बोलो श्री चित्रापुर मठ संस्थान की। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। बोलो गंगा मैया की। बोलो गंगा मैया की। बोलो गंगा मैया की। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसी जाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसी जाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन 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 सारस्वत
सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है
आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, 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 सार भरित जीवन, सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन, सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि, कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन।
सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारभरित जीवन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं
नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन 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 सार भरित जीवन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार
सारभरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन
चंद्र प्रभु बेंगलुरु से आके हमारे साथ है, श्री नरेंद्र एल नायक हारमोनियम और राजेश भागवत तबले में और श्रीदत्त प्रभु बकवास में है। श्री शैलेश माविन कुर्वे मुंबई से, श्री बालचंद्र प्रभु बेंगलुरु से, श्री नरेंद्र एल नायक हारमोनियम में, श्री राजेश भागवत तबला में और श्रीदत्त प्रभु पकवाज में। इन्हें साथ दे रहे हैं ताल में श्री अनंत पाई जी। मॉनिटर में ज़्यादा चाहिए। सामने वाला मॉनिटर में और भी चाहिए। सामने वाला ये एक ही साइड में आ रहा है क्या? पीछे सिर्फ वही सुनाई दे रहा है, वो नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं मॉनिटर में और गेन चाहिए। हाँ 4 dB। आपसे एक निवेदन है, कृपया सभी
चुप बैठ के इस गायन का आस्वादन करना है। ये लोग तो बहुत दूर से आए हैं अपना गायन प्रस्तुत करने के लिए, कृपया इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। थोड़ा सा मिड दे देना मॉनिटर में, मिड। हाँ, दरना दरना ना ना रना दना दना। ठीक है। हाँ, वॉल्यूम थोड़े ना दे ना दे ना रे दे ना ना और कानपुरा। हेलो हेलो। So, good evening, my dear Saraswat, brothers and sisters, mom and pachis. I feel deeply honored. I am representing the entire team now. So when I say I, it means we. So I feel personally honored and blessed that I have been invited for this performance here. And would like to thank all the organizers and the organizing committee for giving me this opportunity, giving us this opportunity to be performing in this confluence of Saraswats worldwide. Thank you very much. अब थोड़ा हिंदी में
पावन नगरी हरिद्वार का माहौल और हमारे स्वामी जी के समक्ष वो जहाँ भी हैं हमको देख रहे हैं। गाने का मौका मिलना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है और फिर आप सब भाई बहनों के यहाँ मौजूद होना ये हम सब के लिए सोने पे सुहागा ही है। तो आप शांति से कार्यक्रम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, यही उम्मीद रखकर हम शुरू करते हैं। कृपया शांति बनाए रखेंगे तो आप भी एंजॉय करेंगे और हम भी। थैंक यू।
हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे
हेलो शिवशंकर सत उमानंदना सिद्धि विनायक श्री गजानन तगति लंबोदर विघ्नेश्वर गणेश गणपति जगद्रक्षक आदित्वं प्रणामदा 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 ओम आदित्वं प्रणामदा 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 ओम आदित्वं प्रणामदा 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 अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार सिद्धि बुद्धिदायक विद्या प्रदायक सिद्धि बुद्धिदायक विद्या प्रदायक सिद्धि बुद्धिदायक विद्या प्रदायक सिद्धि बुद्धिदायक विद्या प्रदायक सिद्धि बुद्धिदायक सिद्धि बुद्धिदायक विद्या प्रदायक सिद्धि विनायक पार्वती सुपुत्र सिद्धि विनायक पार्वती सुपुत्र सिद्धि विनायक पार्वती सुपुत्र शिव शंकर पुत्र तो गणनायक शिव शंकर पुत्र तो गणनायक अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार
इष्टार्थदायको मोक्षप्रदायको इष्टार्थदायको मोक्षप्रदायको इष्टार्थदायको मोक्षप्रदायको इष्टार्थदायको मोक्षप्रदायको इष्टार्थदायको मबनि मबनि मबरे मबरे मरे धनि धनि मब 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 इष्टार्थदायको मोक्षप्रदायको इष्टार्थदायको निरि मम मबनि मम निरि मम निरि मम मम मरे मम रे धनि निरि धनि 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 निरि मम मब इष्टार्थदायको मोक्षप्रदायको इष्टार्थदायको मोक्षप्रदायको मब मनि मब निरि निरि मम रे मब निरि मम रे मब मरे मरे धनि धनि मब निरि मम बब मरे मम रे धनि धनि नि धनि धनि मम रे मब 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 नि सा नि मब नि सा रे 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 सा रे रे सा सा धनि मब नि सा धनि मब नि मब रे नि धनि मब मम रे धनि मनि सा नि धनि धनि मब रे मब 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 इष्टार्थदायको मोक्षप्रदायको इष्टार्थदायको इष्टार्थदायको मोक्षप्रदायको विघ्नविनाशको पाशाङ्कुशधरो विघ्नविनाशको पाशाङ्कुशधरो मूषकवाहनो नित्यभयदायको मूषकवाहनो नित्यभयदायको अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपार्ग नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार
हेलो। गणेश जी की इस स्तुति के बाद गुरु का स्मरण करते हैं। तो संत धर्मदास जी ने लिखी हुई एक गुरु की स्तुति पर आधारित रचना, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मनवा, सबद ने मारी जगा दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे। सर्दी के वजह से पखवाज का ट्यूनिंग थोड़ा सा बिगड़ गया है, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज़।
गुरु पैया लागो लखा दीजो रे गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे जन्म जन्म का सोया मनवा जन्म जन्म का जन्म जन्म का जन्म का सोया मनवा जन्म जन्म का जन्म जन्म का सोया मनवा सबदन मारी सबदन मारी जगा दियो रे गुरु पैया लागो नाम लखा दियो रे गुरु पैया लागो नाम लखा दियो रे घट अंधियारा नैन नाही सूझे घट अंधियारा घट अंधियारा नैन नाही सूझे नैन नाही सूझे ज्ञान का दीपक जला दीजो रे ज्ञान का दीपक जला दीजो रे ज्ञान का दीपक जला दीजो रे विष की लहरिया उठत घट अंतर विष की लहरिया उठत घट अंतर अमृत बूंदे अमृत बूंदे अमृत बूंदे छुआ दीजो रे गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे हे नाम लखा दीजो रे नाम लखा दीजो रे गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे आ
अगला भजन जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये एक कोंकणी भजन है, मैंने खुद ने कंपोज किया और लिखा है माधव कामत अरबेट में। ये भजन काशी मठाधिपति श्री स्वामी जी के ऊपर है। रक्ताची अंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र 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 शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंकार स्वामी संयमींद्र
अगली रचना गोस्वामी तुलसीदास रचित है। हमारे आराध्य दैवत शंकर, शिव जी, भोले बाबा, जो भी कहें आप, तो उनकी स्तुति में उन्होंने लिखा था ये शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, करुणामय उदार कीरति, बलि जाऊं हर हूँ निज माया, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया।
विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया की राधा गोरी सुनवा रे बाजे मुरलिया बाजे
भवानी 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 दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी महावाक्यवाणी सुरनरमुनि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी 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 दयानी भवानी दयानी भवानी भवानी दयानी भवानी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुरमर्दिनी महिषासुरमर्दिनी जग जननी जग जानी महिषासुरमर्दिनी ज्वाला मुखी चंडी अमर पददानी भवानी दयानी भवानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी 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 दयानी भवानी 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 भवानी
very much, Balachandra Prabhu, Shekesh, Marvin Kurve, Narat Naik, Ma'am, Anand Pai, Ma'am, Rajesh Bhagwat, and Sridhar Prabhu. We are officially closing this 2 days confluence. Saraswati is the goddess of art, knowledge and music. We started with the artwork, then we continued through the knowledge journey, and we are closing with the music. Thank you very much. See you next time in Goa with much bigger energy, bigger crowd, and with much more bigger event. Thank you all. सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन 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 सार भरित जीवन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन
सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्व रूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन।